We'll try to prove ourselves. Well said. There's nothing to prove much in the points table, but you definitely have a poor point. But you and your team and the players are wonderful. Thank you very much. May the better team win. All the best. Yeah, thank you, thank you. Thank you very much. That was Nagendra. The news from the center is that Vijay Kumar Patil, the captain of Arjun Veer, Sri Sai Social, has won the toss and is elected to ball first.
टैक्सी वाला कुछ बचा
Mohan More, and Mohan More don't have anything much to prove. Nevertheless, they'll be proving for themselves. That is what their captain told me this morning when I was talking to them. Vijay Kumar Patil won the toss this morning and elected to bowl first, asking Mohan More team to bat, and in doing so, the openers out there in the middle for Mohan More are Nagendra Patil and Rudra Gowda Patil. So Patil brothers maybe. Nagendra Patil, the captain himself, leading from the front today, and along with him is the wicket-keeper batsman Rudra Gowda Patil. And for Arjun Veer Sai Socials, it is Anil Gowda Patil. Anil Gowda coming in from the police quarters and police line end to the batsman Rudra Gowda with his bowling quotas first over and innings first. Well, outside the off stick, wide signaled by umpire Sadiq Kittur, acknowledged by my scorer. 1 run on the board in the form of extra and a wide there. So the scorecard ticks. And also to tell you that 2 officials officiating in this match are Mansoor Badebhai and Sadiq Kittur, both being experienced and qualified umpires of the zone. Of course, I have my co-commentators Arif Balekundri, Pramod Jappe. Oh, big swing and a miss there into the hands of the keeper. Rudra Gowda trying to do that a big drive there. He saw the ball slightly pitched up to the batsman, up to him. He wanted to play it over mid-wicket long on, but in vain. A good take there by Sujay Sateri behind the stumps. Importantly, a dot ball. Well, as I was telling you that all my colleagues, my commentators like Arif Palekundri and Pramod Jappe, we're really thankful. Well, again coming back to the match, another extra in the form of a wide signal by umpire Sadiq Kittur, acknowledged by my scorer. 1 more for the taking. With that 1 run, the scorecard moves to 2. Still no runs of the bat there. Nevertheless, Anil Gowda Patil deflecting from the line. As I was telling you, I'm really grateful to all my co-commentators who help us in relieving and commenting beautifully. Again trying to hit a big one, slightly slower than anticipated there. The ball coming in and hitting the thigh height as well. Good bounce for the bowler Anil Gowda there. Rudra Gowda Patil rubbing his thigh there, wanting to play it onto the onside. Again beaten up by the pace and bounce. The ball hitting the thigh pad and rolling on to the pitch area. The bowler himself fielding in its follow through. Nevertheless, a dot ball. Well, I think the new ball there, it is shiny, and the swing, the white ball slightly swings more than the red ball. So Anil Gowda slightly missing the line. That's the reason he's given away 2 wides, 2 extras. Nevertheless, once again, Anil Gowda to Rudra Gowda. Oh, flicked it off his pads there. Good shot there towards the square leg and fine leg boundary for a boundary. First boundary at the bat of Rudra Gowda Patil. 4 signaled by umpire Sadhu Kittur, acknowledged by my scorer. 4 more for the taking. With that 4 runs, the scorecard ticks along to 6 runs. So this is a good contest between bat and ball. As I was trying to tell you, an offside given to the bowler Anil Gowda. Third man point, gully, cover, extra cover, and long off. Just the 3 men on the onside in the form of mid-on, mid-wicket and fine leg, and Rudra Gowda flicks it off his pads towards the wideish fine leg, or you can call it a long leg as well, and the scorecard ticks along to 6 with that boundary. This time again picked it from middle and off and straight into the dugout of Arjun Veer for another boundary. Good shot there by Rudra Gowda Patil. Ball pitched up and picking it from middle and off and hitting it towards the boundary. With that boundary, the scorecard moves to 10 runs. So intentions are pretty clear here by Rudra Gowda. Doesn't want to waste much time there. He knows that he has a point to prove. Again played it uppishly. Eyes of catch it. Oh, he puts it down there. A very easy lollipop catch. He had all the time in the world. Well, I think it is Sudeep. Well, it is Sudeep, nicknamed as the boss. The boss makes the mistake today. He had all the time in the world.
and he puts it down. Catch goes begging, and the batsman crossover and survive. With that single taken, the scorecard for them moves to 11 runs. One more delivery before the completion of this over. That gets Nagendra Patil, the captain, on strike for the first time. Rudra is batting on 9 runs of the 5 deliveries. Nagendra yet to open the account and face Anil Gowda for the first time. Trying to hit it, make some room, and Nagendra trying to hit it on the onside. Got a thick edge of the bat and the ball rolling onto the pitch area. Nevertheless, a dot ball. With that dot ball, the scorecard. It's Rahul Vaijantri comes into the act now. Rahul Vaijantri coming in from the commentary box end to the batsman Rudra Gowda. And to tell you that 1 over has been balled, and the scorecard reading 11 runs. No wickets lost as yet. They've gone to a fly-off start as of now. Oh, half-hearted appeal, knows his umpire down the leg side there. Understandably wanting to play it off his pads there. Got to wait for the umpire. Leg by signaled by umpire Mansoor. And with that leg by, another extra added on, and the scorecard moves to 12 runs. Oh, what a shot that is at the bat of Nagendra Patil for a huge 6 there. With that 6, the scorecard further ticks along to 18 runs. With that 6, Nagendra opens his account. With that 6, the ball was pitched up to the batsman by Rahul Vaijantri, and Nagendra, making no mistake, hitting a big shot there over wideish of long on for a 6. With that 6, the scorecard further ticks along to 18. Thick as there, cries of catch it this time, and no mistake there. So Nagendra Patil has to walk back. Catch taken at the third man there. A regulation catch, a thick edge of the bat of Nagendra. So first wicket goes down for Mohan More in the form of Nagendra. Caught Anil Gowda. Anil Gowda Patil at third man. Maybe Nagendra width was offered and trying to scoop it and cover it. And played a lofted cover drive, got a thick edge of the bat there, and the ball flying towards third man for an easy catch. Well, Dhruv Nayak walks onto the crease at the fall of Nagendra Patil, the captain, back in the hut, in the back in the dugout, and he just made 6 runs of the 3 deliveries. So at the fall of Nagendra Patil, Dhruv Nayak comes onto the crease to face Rahul Vaijantri.
Outside the off stick there, wide, signaled by umpire, Bade Bhai, acknowledged by my scorer. One more for the taking. With that wide, the scorecard for the ticks along to 19 runs. Rahul Vaijantri trying to do that extra bit and losing control of the ball and missing on the line outside the off stick for another extra. With that extra in the form of a wide, the scorecard ticks along to 19. Oh, good cut shot there. Oh, fumble there, but nevertheless covered by the fielder at the sweeper cover. I think it is Vaibhav Kurivagi there in the circle there at point region, wanting to cut it, odd bounce, maybe the ball going past Vaibhav Kurivagi. Good shot there by Dhruv to open his account for a single and take the scorecard ticking along to 20. Dhruv Naik off the back foot, did he cut it, punch it towards the sweeper cover? That gets Rudra on strike. Again, trying to hit a big one there, getting the toe wedge, lower end of the bat. The ball rolling towards cover. That is Amay Bhatkande, I believe. Yes. No run been taken. Importantly, a dot ball. So one more delivery before the completion of this over, and the scorecard reading 20 runs. Rahul Vaijantri has given away 8 runs in the 5 balls that he has balled up till now. So one last time in this over, Rahul Vaijantri to Rudragowda Patil. Played it uppishly, cries of catch it. Oh, he looked it so in Alim Madivale. It was an easy catch there. He had all the time in the world. It looked as though it is coming to him. And he was little slightly slower than anticipated. The ball flying past over Alim Madivale at mid-off. Mid-off being up in the circle there. He misjudged it completely. And with that boundary for the taking. So boundary for Rudragowda to end the overs. That 2 overs have been balled and the scorecard reading 24. They are going at a run rate of 12 runs per over. 2 overs have been balled and the scorecard reading 24. Very important match for these two teams, as Mon More have nothing to prove a point in the points table, but definitely they have a prove a point for themselves as how a good team they are and how good players they are. But Arjun Veer need to win this to keep themselves alive. Oh, slightly short of length there. Anil Gowda Patil, Dhruv Naik, also a tall man, was stepping out. The bowler saw that Dhruv Naik is coming out of the crease and trying to take a charge. So he quickly banged in shot there, made the batsman stand tall and play. Importantly, a dot ball. Again, driven it straight to the cover there, slightly fumble after the ball hitting the knee of the fielder in the cover region. Not a clean take there. It is Shubham Gaundwadkar, the fielder there. After the ball hitting the knee of the fielder in the cover region, Shubham Gaundwadkar going towards mid-off, the batsman crossover for another single, as the ball was far from the fielder. So with that single and the batsman crossed over, scorecard moves to 25. Played it uppishly there. What a good shot. Arjun Patil, just a spectator in the cover region. He did jump to take that, but he knew that it was well over him for a boundary in the sweeper cover region. With that boundary, the scorecard for the ticks along to 29. They're going at a very healthy run rate of 11.6 runs now. Mon More, 29 for 1. What a shot that was at the bat of Rudragowda Patil. Rudragowda Patil quickly moves to 17 with that boundary of the 9 deliveries that he has faced. So Gowda to Gowda. Once again trying to play it, caught on the crease there, no width offer this time. Importantly, a dot ball. After the defensive shot played there, the ball rolling onto the pitch area, the bowler himself fielding in his follow through for a dot ball. So with that dot ball, score still stands at 29, loss of 1 wicket.
Oh, good shot there over the mid-on for a boundary. It looked as though that mid-on is going to take it. Nevertheless, boundary for the taking. With that boundary, scorecard ticks along to 33 now. 2.5 overs have been bowled. One more delivery before the completion of this over. So 33 already on board. So the Mohan More have gone to a fly-off start, what they were looking for. And this morning, to tell you that Vijay Kumar Patil won the toss and he elected to bowl first, asking the Mohan More to bat, and in doing so, they've already put up 33. Once again, a dot ball there. With that dot ball, it also completes the overs. After the completion of 3 overs, a scorecard reading 33, and they're going at a run rate of 11 runs per over. Both these batsmen together have put up 15 runs of partnership between them, Dhruv Naik and Rudra Gowda. Rudra Gowda Patil is batting on 21 of the 12 deliveries, and Dhruv Naik is batting on 2. 2 for Dhruv Naik and 21 for Rudra Gowda Patil. 3 overs have been bowled and the scorecard reading 33. They have gone to a fly-off start that they wanted. So once again, it is Rahul Vaijantri. Rahul Vaijantri coming into the act with his bowling quotas second over and innings fourth to the batsman Dhruv Naik. Oh, good Yorker length delivery there, right into the block hole. The batsman did well enough to get his bat down quickly and block it, dug it out of the block hole there. Importantly, a dot ball. Good dot ball there by Rahul Vaijantri into the block hole, crimping the batsman, cramping him, not giving any width and room to the batsman. Played it uppishly there. Good shot by the batsman. Wide-ish of third man there over the gully region. Making use and advantage of the field restrictions that they have. Width was offered by Rahul Vaijantri. This time Dhruv Naik in a flash of the front foot. A lofted drive over the gully region for a boundary. With that boundary, Dhruv Naik goes to 6 runs. And the scorecard ticks along to 37. Well, the previous one was a very good ball by Rahul Vaijantri, putting into the block hole. This time width offered outside the off stump, and batsman Dhruv capitalizing. Stepping it out and try to hit a big one there. Dhruv Naik again straight to the fielder, Vaibhav Kuribagi there for a dot ball. Since the batsman trying to step out, he turned the ball, the full pitch delivery, into a Yorker length for himself. Importantly, a dot ball. The ball going towards the point region for fielding. Vaibhav Kuribagi, this time no mistake, and a dot ball. Importantly, this is very good contest between bat and ball. Dhruv Naik in attacking mode and Rahul Vaijantri bowling well. Good ball there. This time no width offered. That is the kind of bowling that you would look, and the fielding captain and the fielding side will definitely appreciate that. This time no width offered and cramped him again, not allowing the batsman to fling his arms freely. Caught on the crease there. Well played as well by Dhruv Naik, getting the bat quickly down on the front foot. A forward defensive shot for a dot ball. Trying to play it. Cries of catch it, but over cover region. Hamai baat khande there. This time just for spectator. And at the boundary for the taking. With that boundary, the scorecard further ticks along to 41. Oh, front foot showing the face of the bird, driving it half drive and shot there, but the ball going on towards the mid of Aleem there in the circle.
Another single for the taking. Almost walking did that shot was played by Dhruv Naik. So 4 overs have been bowled and the scorecard reading 42. 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 42 एक विकेट के नुकसान पर. वो एक विकेट जाने वाला था कप्तान नागेंद्र पाटिल का, जिन्होंने 6 रन बनाए 3 गेंदों में. That was the 1/6 that he played. So Vijay Kumar Patil, the captain himself, comes on to the crease now. He takes the bowling spin into the attack. Vijay Kumar Patil himself coming on, and Vijay Kumar Patil comes up with his bowling quotas. First over and innings of 5th over to the batsman Dhruv Naik. Very interesting contest. Spin is introduced in the 5th over. Try and contain the runs there. Nevertheless, Dhruva to play Vijay Kumar. Oh, good shot there, and Vijay Kumar in his own follow through trying to field it. Oh, we got to wait and watch and see now. It is not intentional, I believe. Batsman was not even looking. We got to wait for the umpire signal. Well, that was not intentional, I believe. That is what he's talking to. Well, that is in the fairness of the game. Definitely fair play award for the batsman. He knew that he was not doing it intentionally. Very good decision by the umpires and asking the players, and fair play award will definitely go to Rudra. Beautifully played. He is not asking, he is not claiming runs. It is not of the bat. And let me tell you, Rudra was not even seeing the ball. He was just running towards the wicket keeper, and the ball hitting the batsman and deflecting and going down to a boundary. Nevertheless, no runs taken there, just a single. Going onto the back foot and again pulling it off the carpet towards wideish mid wicket for a single as the batsman crossed over. But that single, the scorecard goes to 44. Going onto the back foot and cutting Dhruva, trying to cut him there, beaten all ends up. Onto the back foot and driven it towards cover fielder. I think Shubhi. Oh, fumble there by Arjun Patil in the cover region there for a boundary. It looked like easy fielding. Boundary signal by umpire Sadiq Kittur, acknowledged by my scorer. 4 more for the taking. This is shabby fielding there. The shoulders down for Arjun Veer. Arjun Patil should have fielded it. He's one of the better fielders, definitely. But misjudged it completely, not going down to the ball there, not bending enough than required, missing it completely. Oh, good bowling by Vijay Patil. Dhruv Naik completely beaten there with the pace and bounce of the ball there. So good bowling by Vijay Kumar Patil. He gives away 6 runs at the completion of this over. So with that over been completed, scorecard reading 5 runs for the loss of 5 overs, 48 for 1. Nothing to lose. They're proving a point for themselves. They don't have to prove anything on the points table. But they're proving a point for themselves. Auction है कल दूसरे auction को चलना तो फिर खेल है जी हम खेल है ऐसा करने का तो फिर क्या easy खेलने जीतने को देना क्या. Well, again, change in bowling there. It's Vaibhav Kuribagi now. One more spin attack into this power play. 5 overs have been bowled and the scorecard reading 48 for the loss of 1 wicket. Dhruv Naik is batting on 15 and Rudra Patil is batting on 23. So both these batsmen together have put up a partnership of 30 runs. Dhruv Naik and Rudra Gowda have put up a partnership of 30 runs between themselves. Rudra Gowda is batting on
23, and Dhruv Naik is batting on 15. Onto the back foot and pulled it towards the wideish of mid wicket. The fielder coming and fielding quickly. It is Vijay Kumar Patil, the captain himself, leading from the front by example. Good piece of fielding there to give 2 more runs. With those 2 runs, scorecard moves to 50. Oh, played with soft hands there again. Watchfully played by Rudra Gowda. He was in 2 minds whether to go forward, behind, caught on the crease in the end. Played a defensive shot there. Slight adjustment in field as well. The ball drifting down towards the leg side. I think Sujay is just helping out with the field. This time stepped out and trying to hit a big one there onto the pads. Did it wrap? We got to wait. Leg by signaled by umpire Mansoor Bade by. Another extra added on. With that extra, the scorecard ticks along to 52. Also Sachin Salunke there running around with all the help and support required. We really thank and appreciate Sachin Salunke. Oh, trying to hit a big one, but umpire not interested at all. The foot well grounded within the line. A good take there, and in a flash did the bails go off. Sujay Sateri, very professional cricketer there, good stumping, but nevertheless just for in vain to take the bails off. The foot grounded well enough. Played with soft hands there. Tickle there. Oh, wanting to say directed. Oh, survives luckily. There was no run for the taking. Rudra was in a flash. Did he wanted to cross over? Dhruv Naik was not interested at all. And the fielder, Sujay Sateri, quickly runs in. Well, he picks up and had a shy at the stumps. Good fielding there by Sujay Sateri, the wicket keeper. Going to short square leg and fielding it. Somebody had to come in to cover it. That is what he's telling. Maybe Shubham or somebody should have come there, or Sudeep, I don't know. A direct hit, definitely that would have been a run out. Again, trying to play it on the onside. The ball going towards a short fine leg. The fielder coming from square leg and fielding at short fine leg before Alim could come and field. The batsman crossover for another single. With that single, it also completes the overs. So after the completion of 6 overs, the scorecard reading 53 for the loss of 1 wicket. To tell you that 6 overs have been bowled and the scorecard reading 53. At the end of the power play is completed now. And to tell you that 6 overs have been bowled and the scorecard reading 53 for the loss of 1 wicket. And that 1 wicket to go down was of Captain Nagendra Patil. Was caught by Anil Gowda of the bowling of Rahul Vaijantri. And he got 6 runs there. So Nagendra Patil out on 6 today. And both these batsmen together have put up a partnership of 35. It's been clean bowled there. Well, as there would be change in the batsman now, there would be change in commentary. I asked my co-commentator Pramod to take on. गड़बड़ मत करो जी। अभी क्या बोलो कितना 17 बॉल है हो गया इसका बॉल बोलो अभी को ना रवि पिल्ला है ना धन्यवाद चेतन बैलूर। तो अभी रुद्र गौड़ा पाटिल अपना विकेट खो रहे हैं। आज कई कैचेस छूटे रुद्र गौड़ा पाटिल के, उसके बाद रन आउट करने का मौका भी गंवा दिया था, लेकिन अब कहीं जाकर विजय पाटिल ने उनका विकेट लिया है। क्लीन बोल्ड किया उनको, लेकिन बड़ी अच्छी पारी उनकी तरफ से
पेश हुई। 27 रन वो बना रहे थे, 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया था। लेकिन अब देखिए 53, 2 विकेट के नुकसान पर 6.1 ओवर का खेल अब तक खत्म हुआ। रवि पिल्ले को अब बढ़त देकर भेजा है नागेंद्र पटेल कप्तान ने। अब देखना ही होगा कि ये बढ़त जो मिली है उनको, इसका फायदा कैसे उठाएंगे। ये गेंद अच्छी फ्लाइटेड गेंद करवा रहे थे विजय पाटिल। इस गेंद को ड्राइव करने की कोशिश, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लिया, गेंद पॉइंट की दिशा में गई, वहां पर फील्ड होने के बाद कोई रन नहीं। विजय की ये गेंद, अच्छी गेंद, फिर एक बार कलाई के सारे मोड़ दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग के इलाके में। राहुल बाजंद्री डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े हैं, जब तक कि वो आकर गेंद को फील्ड करते। 1 रन के साथ अपना खाता खोलने में कामयाब रवि पिल्ले। ध्रुव नाइक खेल रहे हैं 15 रन बनाकर और मोहन मोरे का स्कोर बनता हुआ 54, 2 विकेट के नुकसान पर। स्टंप के बाहर थी, पंच किया उस गेंद को, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के इलाके में और सीधे फील्डर के तरफ गेंद गई। रन की कोई गुंजाइश नहीं और गेंद फील्ड होकर वापस लौट रही है विजय कुमार पाटिल के पास। फिर एक बार बल्ले का मुंह खोला, तिरछा किया, तिरछा करते हुए खेला, लेकिन पॉइंट की दिशा में। वैभव कुरीबागी के तरफ गेंद को खेलने के बाद ध्रुव नाइक को कोई मौका नहीं है रन लेने का, तो 2 विकेट खो रही हैं 54 पर मोहन मोरे लेवल। विजय की गेंद थोड़ी शॉट डाल रहे थे, ड्राइव किया उस गेंद को कवच के इलाके में, डीप में से फील्डर बाउंड्री के करीब आकर जब तक कि गेंद को रोकते, 1 ही रन बनाकर पूरा करते हुए ध्रुव नाइक। इस 1 रन के साथ अब ध्रुव नाइक का व्यक्तिगत स्कोर बना है 16 और पारी की रन संख्या बनी है 7 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 55। रवि पिल्ले 2 बॉल 1 और 18 बॉल 17, 55 स्कोर। गेंदबाजी का मोर्चा वैभव कुरीबागी संभाल रहे हैं। 55 वाला 55 है ना जी। फ्लाइटेड गेंद थी, छकाने में तो कामयाब जरूर हुए वैभव कुरीबागी। अच्छी टर्न ली, टप्पा पड़ने के बाद ध्रुव नाइक उस गेंद को पहले मन बनाकर ड्राइव करना चाह रहे थे, लेकिन बाद में देखा उस टर्न को और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। कुरीबागी की गेंद हाफ वॉली बनाकर खेला जरूर है, अच्छी फ्लाइटेड गेंद के ऊपर, लेकिन मिड ऑफ के ऊपर गेंद को जब फील्डर फील्ड करते, केदार उसूल कर खड़ा है उस इलाके में, लेकिन रन की कोई गुंजाइश नहीं और गेंद फील्ड होकर वापस कुरीबागी के पास। फ्लाइटेड गेंद, हवा स्ट्रोक खेला, लेकिन बॉलर के सर के ऊपर से गेंद मिड ऑन पर जब तक कि गेंद को वहां पर फील्ड करते हैं। अनिल गौड़ा पाटिल मिस फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन राहुल पीछे से आकर गेंद को उठा रहे हैं, लेकिन 1 ही रन बना। 17 पर जा पहुंचे अब ध्रुव नाइक। रवि पिल्ले खेल रहे हैं 1 रन बनाकर। रन संख्या बनी है 56। अच्छी गेंद थोड़ी नीचे रहकर आई, नीचे रहने के बाद इस गेंद को खेलने में कवच के इलाके में कामयाब तो जरूर हुए रवि पिल्ले, लेकिन रन नहीं मिलेगा उनको और गेंद वापस वैभव कुरीबागी के पास। बड़ी किफायती गेंदबाजी करते हुए वैभव कुरीबागी। और बहुत बढ़िया गेंद थी, फिर एक बार थोड़े सोचने के लिए मजबूर किया, विवश किया, उस उछाल को समझ नहीं पा रहे थे ठीक तरीके से और गेंद वापस लौट रही है वैभव कुरीबागी के पास। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आते हुए कुरीबागी। फिर एक बार मात देने में कामयाब हुए हैं, लेकिन ये वाइड का इशारा होता हुआ लेग स्टंप के बाहर गेंद डाल रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से बैट्समैन को बीट कराने में कामयाब जरूर हुए थे रवि पिल्ले को। लेकिन 1 रन के साथ अब रन संख्या बनी है 57, 2 विकेट खोने के बाद। फिर एक बार अच्छी फ्लाइटेड गेंद करवा रहे थे, लेकिन इस बार
रक्षात्मक स्ट्रोक खेलने में कामयाब और ये ओवर समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर इस ओवर में 2 ही रन आ रहे हैं वैभव कुरीबागी के। तो बड़ी किफ़ायती गेंदबाजी चल रही है और 8 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 57 रन मोहन मोरे की टीम बना रही है 2 विकेट के नुकसान पर। तो अर्जुन वीर साई सोशल्स के कप्तान ने टॉस जीतकर एक बार और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और उसके जवाब में मोहन मोरे अब तक 8 ओवर की बल्लेबाजी में 57 रन बना रही हैं 2 विकेट खोने के बाद। विजय पाटिल की ये गेंद बैकफुट पर गए, पंच किया, लेकिन पंच सीधा कवच के इलाके में उस गेंद को फील्ड किया। रन की कोई गुंजाइश नहीं और वापस चले विजय पाटिल। ओ इस गेंद को थर्ड मैन की तरफ स्टीयर करना चाह रहे थे, थोड़ा से देरी से स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे, ध्रुव नाइक सफल नहीं हुए। ये गेंद लेग स्टंप के ऊपर डाल रहे थे, बैकफुट पर जाकर कलाइयों के सहारे मोड़ दिया उस गेंद को मिड विकेट की दिशा में और डीप में जब तक कि फील्डर आकर गेंद को उठाते 1 रन दौड़कर पूरा किया। 18 पर जा पहुंचे ध्रुव नाइक। पारी की रन संख्या 58 रन मोहन मोरे 2 विकेट के नुकसान पर। राइटेड गेंद, रवि पिल्ले ने ड्राइव जरूर किया लेकिन कोई दमखम नहीं था स्ट्रोक में और सीधे बॉलर की दिशा में भी खेल रहे थे। फॉलोथ्रू में गेंद को उठाया, कोई रन नहीं। थोड़ी लेग स्टंप के ऊपर डाल रहे थे इस गेंद को, कलाई के सारे मोड़ते हुए खेला रवि पिल्ले ने स्क्वायर लेग के इलाके में और डीप में से जब तक कि फील्डर आकर गेंद को उठाते 1 रन के साथ अब रवि पिल्ले जा पहुंचे 2 पर और पारी की रन संख्या बनी है 59। 2 विकेट खोने के बाद मोहन मोरे। फिर एक बार ऑन साइड पर खेला इस गेंद को ध्रुव नाइक ने उस मिड विकेट के इलाके में। डीप में से फील्डर आ रहे हैं और 1 रन के साथ ये ओवर अब समाप्त हुआ। विजय पाटिल का किफ़ायती ओवर रहा। पिछले ओवर में 2 रन, इस ओवर में 3 रन, तो रनों को रोकने में कामयाब हुए हैं इस वक्त अर्जुन वीर साई सोशल्स के गेंदबाज। पहले 5 ओवर में काफ़ी सारे रन दे रहे थे, तब रुद्र गौड़ा पाटिल बल्लेबाजी उनकी चल रही थी, वो बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगा रहे थे, 2-3 जीवनदान का सहारा भी वो ले रहे थे। 27 रन बनाकर अंत थे वो आउट हुए, लेकिन वो आउट होने के बाद रनों की रफ्तार बिल्कुल धीमी नज़र आ रही है। पहले 5 ओवर का लेखा जोखा अगर हम देखेंगे तो 48 बने थे, अब 60 बने हैं। इनसाइड आउट खेला इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के बाहर 4 रन और ये चौका ध्रुव नाइक को आगे बढ़ा रहे हैं 23 पर और पारी की रन संख्या बनी है 64। वैभव कुरीबागी की पहली गेंद थोड़ी सी फ्लाइट दे रहे थे लेकिन बहुत बेहतरीन इनसाइड आउट का ये स्ट्रोक खेला 4 रन के लिए। एक और फ्लाइटेड गेंद, एक और दमदार ड्राइव लॉन्ग ऑफ के इलाके में। अनिल गौड़ा खड़े हैं वहाँ, उन्होंने गेंद को रोका लेकिन 1 रन का इजाफा होता हुआ 24 पर जा पहुंचे अब ध्रुव नाइक। पारी की रन संख्या 65, 2 विकेट के नुकसान पर 65 for 2। अच्छी गेंद थी, रन लेने की कोशिश रवि पिल्ले कर रहे थे। कवच के इलाके में गेंद को खेला जरूर था, अमय भातकांडे थे उस इलाके में, लेकिन ध्रुव नाइक ने खतरे को देखा, निकाला उस रन को। ये गेंद फिर एक बार अच्छी थी, अच्छी उछाल लेकर आई। इस बार भी अमय भातकांडे हरकत में आ रहे हैं उस गेंद को रोकने के लिए। फिर एक बार कोई रन नहीं बना। बैकफुट पर गए, कट शॉट खेला एक बार और अमय भातकांडे हरकत में आ रहे हैं। लगातार गेंदें अमय भातकांडे की तरफ जा रही हैं और जितनी भी बार गेंदें उनके पास गई हैं उन्होंने साफ सुथरी फील्डिंग के चलते रोका है। फ्लाइटेड गेंद थी, स्लॉग स्वीप करने का प्रयास चल रहा था घुटनों के बल जाकर। थोड़ी से 2-3 डॉट गेंद खेलने के बाद थोड़ा सा दबाव हटाने की कोशिश कर रहे थे रवि पिल्ले, लेकिन इस मरतबा गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। 5 रन का ये ओवर था वैभव कुरीबागी का, वो अब समाप्त हुआ। तो अब 10 ओवर में
6.5 रन प्रति ओवर के रफ्तार से 65 रन बना रही है। 2 विकेट खोने के बाद ध्रुव नाइक 24 बनाकर खेल रहे हैं और 25 गेंदों का उन्होंने सामना किया और रवि पिल्ले 2 रन बनाकर खेल रहे हैं 11 गेंदों का सामना करने के बाद। विकेट की अगर हम बात करें तो विजय पाटिल को 1 विकेट मिला और राहुल वाजंत्री को 1 विकेट मिलता हुआ। जलपान का समय। के बाद खेल जारी 66 पर 2। बैकफुट पर गए, पुल करना चाह रहे थे लेकिन फिर ध्रुव नाइक के बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, पैड पर लगी गेंद, कोई रन तो नहीं बना। खराब गेंद डाल रहे थे, बहुत खराब गेंद डाल रहे थे। अली माड़ी वाले उस गेंद को रोक नहीं पाएंगे। गेंद फाइनल के इलाके में गई 4 रन के लिए। बहुत कमज़ोर गेंद लेग स्टंप के बाहर डाल रहे थे। ध्रुव नाइक ने उस गेंद को लपेट कर स्वीप किया और स्वीप करने के बाद गेंद फाइनल के इलाके में गई 4 रन के लिए। इस चौके के साथ अब मोहन मुरी की रन संख्या आगे बढ़ रही है 71, 2 विकेट के नुकसान पर। विजय की ये गेंद फिर एक बार लेग स्टंप के बाहर को गेंद डाल रहे थे। परिणाम स्वरूप सादिक कित्तूर अंपायर ने वाइड का इशारा किया। बैकफुट पर गए, पुल किया उस गेंद को मिड विकेट के इलाके में। डीप में खराब फील्डिंग। आज पता नहीं क्यों अर्जुन वीर साई सोशल्स के खिलाड़ियों ने आज बहुत खराब फील्डिंग का नमूना पेश किया है। कहना कोई गलत नहीं होगा। कहीं आसान कैचेस उन्होंने छोड़े, मिस फील्डिंग्स के जरिए कई सारे रन दिए।
तो फील्डिंग का दर्जा आपका बड़ा अच्छा रहना चाहिए इस मैदान पर, और फील्डिंग बड़ी अहम भूमिका निभाती है क्रिकेट में। और जहाँ पर 1 रन बनना चाहिए था वहाँ पर मिस फील्डिंग के चलते 4 रन बने। रन संख्या बनी है 11 ओवर के बाद 76, 76। ये महंगा ओवर था 11 रनों का विजय पाटिल का। तो एक तरफ से रन रोके जा रहे हैं एक छोर से, तो दूसरी छोर से रन दिए जा रहे हैं। वैभव कुरीबागी अब तक 3 ओवर 11 रन दिए हैं उन्होंने। बड़ी किफ़ायती गेंदबाजी की है, नफीदुल्ली गेंदबाजी की है। विकेट तो अब तक उनको नहीं मिला, लेकिन अब अपने कोटे का चौथा ओवर लेकर आने के लिए तैयार वैभव कुरीबागी। बैकफुट पर गए, जगह बनाई, पंच किया, जरूर था। रवि पिल्ले रन नहीं बना पा रहे हैं। सीधी गेंद फील्ड हुई उस एक्स्ट्रा कवर के इलाके में। और ये गेंद फिर एक बार डॉट स्वरूप हो रही है। जिस मकसद से रवि पिल्ले को भेजा गया है वो मकसद तो अब तक पूरा नहीं हुआ उनका, क्योंकि 14 गेंदें खेल रहे हैं, 3 ही रन बना रहे हैं। और लाइसेंस देकर भेजा था उनको कि आक्रमण करें, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं आक्रमण। ये गेंद, इस गेंद को स्टीयर किया, लेकिन अब देखिए बहुत सारी गलतफहमियां हो रही हैं बल्लेबाजों के बीच में। तालमेल की कमी, समझबूझ की कमी। रवि पिल्ले रन लेना चाहते थे, आगे की तरफ निकल कर आए। शायद ध्रुव नाइक वैभव कुरीबागी का सामना नहीं करना चाह रहे होंगे, इसलिए वो रन से मना कर रहे थे। रन बन सकता था, चाहते थे तो। ये बल्ले का बाहरी किनारा लिया है और गेंद जा रही है थर्ड मैन के इलाके में। अर्जुन पाटिल गेंद का पीछा करेंगे, लेकिन गेंद की जीत हो रही है और ये चौका बनता हुआ रवि पिल्ले के लिए। काफ़ी देर के बाद इस वक्त रवि पिल्ले के खाते में कुछ अच्छे रन आ रहे हैं। अब इस चौके के साथ उनका व्यक्तिगत स्कोर है 7 और पारी की रन संख्या बनी है 80, 80 for 2। 80 for 2। पारी का 12वां ओवर प्रगति पर है। रनों की रफ्तार तो बहुत बढ़िया है और बढ़ानी होगी रफ्तार। अच्छी गेंद, फ्लाइट गेंद डाल रहे थे, लेकिन पूरा सम्मान देकर उस गेंद को खेला रवि पिल्ले ने सीधी बॉलर की दिशा में, और फॉलो थ्रू में गेंद को उठाकर वापस लौटे अपने बॉलिंग मार्ग पर वैभव कुरीबागी। आखिरी मर्तबा इस ओवर में वैभव कुरीबागी। और इनसाइड आउट खेला रवि पिल्ले ने। अनिल गौड़ा पाटिल गेंद के नीचे, लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। 4 रन। अब धीरे धीरे रवि पिल्ले लय में आ रहे हैं। इस ओवर में उन्होंने 2 चौके उनके खाते में हासिल किए हैं। उनका व्यक्तिगत स्कोर है अब 11। पारी की रन संख्या बनी है 84। 12 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रनों की रफ्तार जो है, मौजूदा रन रेट जो चल रहा है वो 7 का चलता हुआ। पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो मोहन मोरे की टीम 6 मैचेस खेले हैं उन्होंने अब तक। 2 में जीत, 4 में हार। यह 7वां और अंतिम मैच है मोहन मोरे टीम का इस लीग में। और जहाँ तक अर्जुन वीर साई सोशल्स की अगर हम बात करेंगे तो पहले 4 मैचेस खेले हैं, 2 में जीत, 2 में हार, ऐसा उनका प्रदर्शन रहा है। ये उनका 5वां मैच चल रहा है। इसके बाद और 2 मैचेस उनको खेलने हैं। विश्व स्ट्राइकर्स 8वें स्थान पर हैं, 5 में 2 में जीते हैं, 3 में हारे हैं। स्पोर्ट्स ऑन 5 मैचेस अब तक लीग में खेल चुकी है, 2 में जीत, 3 में हार। अर्जुन की अगेन ड्राइव, करारा ड्राइव, लेकिन एक बार और ये मौका बन सकता था, लेकिन ध्रुव नाइक दौड़ पड़े सामने वाले छोर से। रवि पिल्ले मना कर रहे थे रन लेने के लिए। शायद शुभम गोमनाडकर खड़े हैं उस इलाके में। उन्होंने गेंद को सफाई के साथ रोककर विकेट कीपर सुजय सातरे की तरफ थ्रो भी किया था, लेकिन जल्दी पलटकर भागकर अपने लक्ष्मण रेखा पार कर गए ध्रुव नाइक। नुकसान तो कोई नहीं हुआ, रन भी नहीं बना। डॉट गेंद हो रही है अर्जुन पाटिल की। 86 रन 2 विकेट के नुकसान पर मोहन मोरे। टॉस जीता था अर्जुन वीर साई सोशल्स के कप्तान ने और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। 86 पर 2 मोहन मोरे।
और क्या गेंद थी, ज़बरदस्त गेंद, अच्छी सीम पर पड़ने के बाद थोड़ी सी एंगल बनाकर उछाल लेकर गेंद जा रही थी, कोन बनाकर गेंद गई, चारों खाने चित हुए। उस गेंद के ऊपर ध्रुव नाइक सुजय सातिरी विकेट के पीछे खड़े हैं, उन्होंने गेंद को गैदर किया और वापस गेंद आ रही है अर्जुन पाटिल के पास। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी हैं, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, फाइन लेग। बैकफुट पर गए, इस गेंद को कवच के इलाके में खेला, डीप में फील्डर मौजूद राहुल के रूप में, उन्होंने गेंद को रोका, थ्रो किया, लेकिन 1 रन का इजाफा होता हुआ 87 पर 2, 87 for 2। तो ऑन साइड पर फाइन लेग, उसके अलावा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट 30 गज दायरे के अंदर, लॉन्ग ऑन के इलाके में एक फील्डर, मिड ऑफ के ऊपर एक फील्डर, एक्स्ट्रा कवर, स्वीपर कवर, पॉइंट और थर्ड मैन। ये है ऑफ साइड पर फील्डर्स। 5-4 की फील्डिंग की रचना की गई है अर्जुन पाटिल के लिए। शॉर्ट गेंद डाल रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब ये खतरनाक होगा, दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर, और ये बहुत ही खराब रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन हो रहा था। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गई थी पॉइंट की दिशा में, ओवर थ्रो भी थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन फील्डर बैकअप करने के बाद कहीं ना कहीं जाकर अब रवि पिल्ले को रन आउट होकर वापस जाना पड़ेगा पवेलियन में। कई बार हमने देखा कि इन दोनों के बीच में अच्छी तालमेल नज़र नहीं आ रही थी, रन लेने में थोड़ी सी आनाकानी कर रहे थे, हिचकिचाहट हो रही थी। अंततः जो होना नहीं चाहिए था वही हुआ। रवि पिल्ले और ध्रुव नाइक एक ही छोर पर आकर खड़े रहे और बाकी का काम किया। वहाँ पर फील्डर ने रन आउट का मौका जो मिला वो हासिल करने में कामयाब। वापस लौटेंगे रवि पिल्ले। बड़ा दुर्भाग्य कहना चाहिए, कोई बल्लेबाज रन आउट होना पसंद नहीं करता, लेकिन अब रन आउट होकर रवि पिल्ले वापस लौटे पवेलियन में। 20 गेंदों का सामना किया, 12 रन ही वो बना रहे थे, 2 चौके उनके खाते में शामिल थे, लेकिन अब एक ब्रेक थ्रू जिसकी ज़रूरत थी वो दिलवाने में कामयाब हुए हैं फील्डर्स मिलकर। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं ध्रुव नाइक का साथ देने के लिए। दर्शन मयकर जी नहीं, प्रसाद मोरे आए हैं, जी हाँ बिल्कुल। अब एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ प्रसाद मोरे को साथ निभाना होगा ध्रुव नाइक का। शुभम शुभम गौंडाडकर के पास गेंद है। ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर डाल रहे थे। शुभम आते ही वाइड गेंद दे रहे हैं, वाइड रन दे रहे हैं। रन संख्या बनी है 88। बैकफुट पर गए, कवच के दिशा में धकेला, लेकिन रन नहीं मिलेगा। कैच इट, लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं है। विजय कुमार पाटिल खड़े हैं लॉन्ग ऑन के इलाके में, उनके बहुत आगे की तरफ गेंद गिरी। 1 रन दौड़कर प्रसाद मोरे पूरा कर रहे हैं, खाता खोलने में वो कामयाब। पारी की रन संख्या बनी है 89, 89 for 3। और ये गेंद अच्छी टर्न और बाउंस लेकर जा रही थी, अच्छी कैरी कर गई गेंद। जगह बना रहे थे पहले ही, लेकिन जैसे गेंद की उछाल को देखा ध्रुव नाइक ने अपना इरादा बदला, गेंद को जाने दिया सुजय सातरी के दस्तानों में।
हाफ वॉली बनाकर खेला उस गेंद को। मिड विकेट के इलाके में डीप में से फील्डर आ रहे हैं राहुल वाजंत्र के रूप में, लेकिन ध्रुव नाइक के पास समय था। 1 रन उन्होंने दौड़कर पूरा किया। पारी की रन संख्या अब आगे बढ़ती हुई 90 36 पर जा पहुंचे ध्रुव नाइक। प्रसाद मोरे 1 रन बनाकर। इस बार ड्राइव करने की कोशिश, एक फ्लाइटेड गेंद थी, लेकिन फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, खड़े खड़े बल्ला चला रहे थे प्रसाद मोरे। छकाने के बाद गेंद गई, कोई रन नहीं बना। लेग ब्रेक गेंद थी, नटराज मुद्रा में आकर उस गेंद को पुल किया। मिड विकेट के इलाके में गेंद जाएगी 4 रन के लिए। ये बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ स्ट्रोक को खेला था और अच्छा पुल शॉट, और इस पुल शॉट के चलते 4 रन प्रसाद मोरे के खाते में जाने के बाद ये ओवर समाप्त हुआ शुभम गौंडाडकर का। 7 रन आए इस ओवर में और 14वें ओवर का खेल अब तक समाप्त हुआ और 14वें ओवर के बाद 94 रन 3 विकेट के नुकसान पर मोहन मोरे 11 की टीम बना रही है। रनों की रफ्तार 6.71 हर एक ओवर में चल रही है। मौजूदा रन रेट 6.71 पर ओवर। इसी लिहाज से अगर वो खेलेंगे तो कम से कम 140-50 रन तो निश्चित तौर पर बना सकते हैं, लेकिन इस मैदान पर 170-80 रन चाहिए, तभी जाकर कुछ हौसले बुलंद रहेंगे गेंदबाजों के अगले इनिंग्स में। लेकिन फिलहाल तो गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए अर्जुन पाटिल। अर्जुन की गेंद अच्छी बाउंसर गेंद थी, समझ नहीं पा रहे थे, थोड़ी हड़बड़ाहट हुई ध्रुव नाइक को इस गेंद को खेलने में। कहीं ना कहीं हैंडल से गेंद लगी, सिली पॉइंट की दिशा में गेंद गई, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ी सी विचलित होकर उस गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे ध्रुव नाइक। अच्छी बाउंसर थी अर्जुन पाटिल की, एक डॉट गेंद। करारा स्क्वायर कट, बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में गेंद, और बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर राहुल की। ऐसा प्रतीत हुआ कि निश्चित तौर पर 4 रन बनेंगे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग हमें देखने को मिली उस बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ। लंबी दौड़ लगाई, लंबे लंबे डग भरते हुए गए, बाउंड्री के ठीक अंदर गेंद को रोका और इस बेहतरीन स्ट्रोक पर 1 ही रन बना। 95 for 3। 37 पर ध्रुव नाइक, 5 पर प्रसाद मोरे। इस बार ड्राइव किया इस गेंद को, लेकिन रन नहीं मिलेगा। उस एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद फील्ड हो रही है और बिना किसी रन के गेंद फील्ड होकर वापस आ रही है अर्जुन पाटिल के तरफ। प्रसाद मोरे सामना करेंगे अर्जुन पाटिल का। ओ क्लीन बॉल, नीचे रह कर आई गेंद और नीचे रहने के बाद थोड़ी डिफेंस भी वो कमजोर बनाकर खेल रहे थे, जगह थोड़ी खुली छोड़कर खेल रहे थे। बल्ला गेंद के लाइन से भी अलग था और शरीर से अलग होकर उस गेंद को खेलने की कोशिश में बोल्ड हुए प्रसाद मोरे। तो अर्जुन पाटिल को मिलने वाली है सफलता। मोहन मोरे एक और विकेट खो रही है और अब ये 4था विकेट का नुकसान होता हुआ। बहुत अच्छी गेंद थी, सीधी स्टंप्स पर थी, नीचे रही, टप्पा बढ़ने के बाद उठी नहीं बिल्कुल और शरीर से अलग उस गेंद को खेल रहे थे प्रसाद मोरे। परिणाम स्वरूप बोल्ड होकर वापस लौटे पवेलियन में 5 रन बनाकर। 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 5 ही रन बनाए और अब 95 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 95 for 4। अब मोहन मोरे टीम की हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए वैसे, क्योंकि 4 विकेट खोने के बाद 95 रन। रनों की रफ्तार अब कम होती जा रही है। 6.71 का था इससे पहले ओवर में, लेकिन अब कहीं जाकर वो 6.48 का रन रेट आ रहा है, मौजूदा रन रेट उनके लिए। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं आनंद कुंभार, बाएं हाथ के बल्लेबाज। तो बैटिंग ऑर्डर में अच्छी खासी परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है।
निचले क्रम के बाजों को कहीं ना कहीं अब मध्य क्रम के लिए भेजकर देख रहे हैं नागेंद्र पाटिल की एक मौका देना चाहिए इन लोगों को, ताकि मध्य क्रम में कोई अच्छा खेले और अच्छे खासे रन बनाए। तो बैटिंग ऑर्डर ज़बरदस्त तरीके से शफल करते हुए देख रहे हैं नागेंद्र पाटिल। अच्छी गेंद थी, गुडलैंड पर टप्पा खिलाया, सीने की ऊंचाई तक उठी गेंद और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से आनंद कुमार ने खेला बगैर किसी रन के। 95 for 4। कभी कभी बैटिंग में अगर बदलाव करते हैं कप्तान तो अच्छा भी कभी कभी साबित होता है, ऐसा नहीं है कि बुरा साबित होता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिन जिन खिलाड़ियों को बढ़त देकर भेजा है कप्तान ने, क्या वो कप्तान के भरोसे पर खरे उतरेंगे, कुछ अच्छे रन बनाएंगे, कुछ तगड़ा टारगेट रखेंगे अर्जुन वीर के सामने, ये आने वाला समय बताएगा। ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, सादिक कित्तूर को वाइड का इशारा करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने वाइड का इशारा किया और इस एक रन की मदद से रन संख्या अब आगे बढ़ती हुई 96। चार विकेट खोने के बाद मोहन मोरे 11 96 रन बना रही है। इस गेंद को फिर एक बार पॉइंट की दिशा में खेला लेकिन रन नहीं मिलेगा। पॉइंट पर फील्डर तैनात विजय पाटिल के रूप में, तो बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर अर्जुन पाटिल की। इस ओवर की अगर हम बात करें तो 2 रन देकर उन्होंने 1 विकेट हासिल किया। तो अब ओवर समाप्त हुए हैं 15 और 15 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 96 रन बना रही है मोहन मोरे 11 की टीम 4 विकेट खोने के बाद। अब मौजूदा रन रेट जो है वो है 6.40 का। तो क्या 150 पार कर पाएंगी मोहन मोरे 11 की टीम? आने वाले 5 ओवर में क्या 50-55 रन बनाने की आवश्यकता है उनके लिए? क्या वो बना पाएंगे या फिर 130 के अंदर रोकेंगी अर्जुन वीर, साई सोशल्स के गेंदबाज और फील्डर्स मिलकर? ये देखेंगे हम आगे चलकर। अब अंतिम 5 ओवर, अंतिम जो 5 ओवर बचे हैं जिसको हम डेथ ओवर्स कहते हैं क्रिकेट के लफ्ज़ों में, कमेंट्री के लफ्ज़ों में, इन डेथ ओवर्स में किस तरीके की गेंदबाजी होगी, फील्डिंग होगी, बल्लेबाजी होगी, इस पर बहुत कुछ निर्भर है। प्रतिस्पर्धी टीम का स्कोर है फिलहाल मोहन मोरे 96, 4 विकेट के नुकसान पर। शुभम गौंडकर मोर्चे पर लगे हैं। अब तक पहले ओवर में 7 रन उन्होंने खर्च किए हैं और उनको अब तक कोई विकेट नहीं मिला। लेकिन एक सेट बल्लेबाज ध्रुव नाइक है, वो कब गेयर बदलेंगे इसका इंतजार हम सभी को रहेगा। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद, 1 रन मिलेगा। डीप में गेंद को फील्ड करने के बाद 1 रन ध्रुव नाइक के खाते में। ध्रुव नाइक जहाँ पहुंचे 38 पर, पारी की रन संख्या 97, 97 for 4। तो फिलहाल कोई बड़े बड़े स्ट्रोक्स नहीं आ रहे हैं, सिंगल डबल से काम चला रहे हैं, बहुत देर से कोई चौका भी नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं जाकर ये बात खल रही होगी मोहन मोरे के बल्लेबाजों को कि अब डेथ ओवर्स का खेल जारी है, कुछ ना कुछ करना होगा वो 150 का आंकड़ा पार करने के लिए। धीमे गेंद डाली ऑफ स्टंप के बाहर, आनंद कुमार ने लपेट कर खेला उस गेंद को स्लॉक स्वीप के अंदाज में। डीप मिड विकेट के इलाके में गेंद गई, 1 रन का ही इजाफा बनता हुआ आनंद कुमार अब जा पहुंचे। खाता खोलने में आनंद कुमार कामयाब हुए। पारी की रन संख्या बनी है 98, 98 for 4। कम डाल करके गेंद, इस गेंद को मिड ऑफ की तरफ ड्राइव किया, 1 रन विजय पाटिल लॉन्ग ऑफ से आकर गेंद को फील्ड करते हुए। लेकिन 1 रन के साथ ध्रुव नाइक जा पहुंचे 39 पर। आनंद कुमार 1 रन बनाकर खेल रहे हैं और पारी की रन संख्या बनी है 99, 99, 4 विकेट खोने के बाद। राउंड विकेट, ये गेंद आनंद कुमार के लिए ड्राइव जरूर किया था लेकिन कोई दमदार किस्म का ड्राइव नहीं था, दमखम नहीं था स्ट्रोक में और सीधे बॉलर की दिशा में गेंद आने के बाद वापस लौटे गेंद को लेकर शुभम गौंडाटकर। शुभम की गेंद हवाई स्ट्रोक खेला,
लॉन्ग ऑन के इलाके में गेंद, विजय पाटिल वहां पर मौजूद, 1 रन बनेगा। 100 का आंकड़ा छूने में मोहन मोरे की टीम कामयाब। 100 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 15.5 ओवर का खेल अब तक समाप्त हुआ। बैकफुट पर गए, जगह बनाई, ध्रुव नाइक ने पंच किया उस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के इलाके में। डीप में फील्डर मौजूद, और जब तक कि वहां पर गेंद को फील्ड करते सुदीप 1 रन दौड़कर पूरा करने के बाद गोंडाकर का ये ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 12 रन कोई विकेट नहीं, तो कुल मिलाकर 16वें ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 101 रन मोहन मोरे की टीम बना रही है 4 विकेट खोने के बाद। अब मौजूदा रन रेट और नीचे थोड़ा सा गिरता हुआ 6.31 अब मौजूदा रन रेट चलता हुआ मोहन मोरे 11 की टीम को। तो जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रनों की रफ्तार में थोड़ी सी गिरावट आ रही है, और जो रफ्तार बढ़नी चाहिए अंतिम क्षणों में वैसे बढ़ाने में कामयाबी नहीं मिल रही है बल्लेबाजों को। अब 4 ओवर का ही खेल बचा है। देखेंगे अर्जुन पाटिल मोर्चा संभालते हुए दूर वाली छोर से, और पंजों के ऊपर खड़े रहकर इस गेंद को कवच के इलाके में खेला। स्वीपर कवर पर फील्डर मौजूद, 1 रन ही बनेगा। 1 रन बन रहे हैं, इससे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है अर्जुनवीर के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि अच्छी खासी पकड़ बना कर रखी है उन्होंने मैच में। शुरू में कई कैचेस छूटे, मिस फील्डिंग्स हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो अब अच्छी फील्डिंग भी कर रहे हैं, रनों को रोकने में भी कामयाब हुए हैं, 4 विकेट भी हासिल करने में कामयाब हुए हैं। तो कुल मिलाकर मिला जुला काम हो रहा है अर्जुनवीर की तरफ से। ओ बाहर थी गेंद और शरीर से अलग होकर बल्ला चला रहे थे, उस गेंद को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे आनंद कुमार, लेकिन सीम पर गिरने के बाद गेंद उछाल भी लिया और अच्छी टर्न भी ली, स्विंग भी हुई गेंद, और बगैर किसी रन के गेंद वापस लौट रही है अर्जुन पाटिल के पास। हवाई स्ट्रोक खेला, मिड ऑफ के ऊपर गेंद, कैच को लेने में कामयाब हुए हैं मय बातकांडे, और एक आसान सा कैच लिया, और आनंद कुंभार की पारी अर्जुन पाटिल ने समाप्त की है। आधी टीम अब घुटने टेक कर वापस लौटी है पेविलियन में। उनके 5 तारे अब जमीन पर आए हैं और 102 रन बने हैं। एक ही बल्लेबाज मैदान पर टिक कर खड़ा है, वो है ध्रुव नाइक। 41 रन वो बनाकर खेल रहे हैं। अन्य बल्लेबाजों के बारे में क्या कहें हम, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करने की क्षमता रखने वाले बल्लेबाज आज कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं अपनी टीम के लिए, और बड़े सस्ते में उनका विकेट गिरता हुआ इस मैदान पर। अब देखेंगे कौन आ रहा है। दर्शन महकर अब आए हैं खेलने के लिए, ध्रुव नाइक का साथ देने के लिए। अब देखिए, अब सोलह 16.3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। दर्शन मैकर अभी आए हैं खेलने के लिए, लेकिन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे ध्रुव नाइक, क्योंकि छोर बदला था स्ट्रोक के बाद। ओ बड़ा स्ट्रोक मन में लेकर बल्ला चला रहे हैं, घुटनों के बल गए, लेकिन गेंद की लंबाई थोड़ी सी कम पड़ी और चकमा देकर गेंद गई सुदीप सातेरी के दस्तानों में बगैर किसी रन के। 102 पर 5। अच्छी गेंद, गुड लेन पर टप्पा खिलाकर अच्छी उछाल लेकर गई, कमर के ऊंचाई तक उठी गेंद, और जैसे देखा कि कमर के ऊंचाई तक गेंद सीधी आ रही है तो पंजों के ऊपर खड़े रहकर सिर्फ रक्षात्मक स्ट्रोक खेलने के अलावा कोई चारा बचा नहीं था ध्रुव नाइक के पास। कोई रन नहीं बना। वापस अर्जुन पाटिल।
अच्छा ड्राइव, लेकिन मिड ऑफ के ऊपर गेंद जब तक कि फील्ड करते 1 रन का इजाफा होता हुआ ध्रुव नाइक के खाते में। 42 पर जा पहुंचे ध्रुव नाइक। ये ओवर समाप्त हुआ। 17वें ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या मोहन मोरे की बनी है 103, 5 विकेट के नुकसान पर। अब 6 रन मौजूदा रन रेट चलता हुआ। मोहन मोरे के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है उनके लिए। वर्तमान श्रृंखला में उनका वजूद तकरीबन खत्म होते हुए हमें नजर आ रहा है, लेकिन जाते जाते कुछ मुंह मीठा करने की कोशिश उनको करनी चाहिए। फ्लाइटेड गेंद इनसाइड आउट खेला, सीधी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद, और ये बड़ा छक्का, लंबा छक्का ध्रुव नाइक के बल्ले से निकलता हुआ। अब कहीं जाकर वो सेट बल्लेबाज जो हैं ध्रुव नाइक, वो चाह रहे हैं कि अब अंतिम क्षणों में कुछ मनोरंजन करे, कुछ बड़े बड़े स्ट्रोक्स खेले, ताकि रनों की रफ्तार जो मौजूदा कम हो रही है उसको बढ़ाने में वो मदद करेंगे। कहीं ना कहीं जाकर थोड़ी सी पीछे चल रही है रनों के हिसाब से T20 के फॉर्मेट में। इसको कहीं ना कहीं जाकर एक सुरक्षित स्कोर लाकर खड़ा करें, इस वजह से एक छक्का। इस गेंद को खेला कवच की दिशा में, अच्छी वापसी शुभम काउंडाटकर की। एक छक्का खाने के बाद एक डॉट गेंद कराते हुए ध्रुव नाइक 48 पर खेलते हुए मैं करने खाता नहीं खोला। फ्लाइटेड गेंद, इस गेंद को फ्लिक किया कलाई के सहारे लेकर उस स्क्वायर लेग के इलाके में गेंद, और जब तक कि वहां पर गेंद को फील्ड करते 1 रन दौड़कर पूरा किया। 49 पर जा पहुंचे ध्रुव नाइक। पारी की रन संख्या 110, 110 for 5 मोहन मोरे। पारी का 18वां ओवर प्रगति पर है शुभम काउंडाटकर का। इस गेंद को आने दिया बल्ले के ऊपर, उसके बाद उन्होंने थर्डमैन की तरफ खेला उस गेंद को, लेकिन रन नहीं मिलेगा। अमय भातकांडे खड़े हैं, उन्होंने गेंद को रोका और वापस गेंद लौट रही है शुभम काउंडाटकर के पास। अच्छा ड्राइव, लेकिन अच्छी फील्डिंग, फॉलो थ्रू में डॉट गेंद। आखिरी मरतबा इस ओवर में शुभम काउंडाटकर बैकफुट पर गए, जगह बनाकर ड्राइव किया उस गेंद को, स्वीपर कवर की दिशा में गेंद। वैभव कुरीबागी उस इलाके में है, उन्होंने गेंद को रोका, खाता खोलने में कामयाब मयकर, और ये ओवर समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर 18 ओवर के बाद नेल्सन स्कोर बनता हुआ 111 पर 5। एक 111 ओवर में अब मौजूदा रन रेट जो है वो 6.17 का चलता हुआ। तो पहले 5 ओवर तक बड़ी अच्छी शुरुआत, दमदार शुरुआत हुई। छठे ओवर तक भी अच्छी शुरुआत थी, पावर प्ले में बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद उस पकड़ को बनाकर रख नहीं पाए मोहन मोरे की टीम। ओ बड़ा स्ट्रोक चल रहा था मन में, उस तरीके से बल्ला भी चला रहे हैं मयकर, लेकिन लेग बाय का इशारा होता हुआ सादिक कित्तूर के तरफ से, और लेग बाय के चलते रन संख्या बनी है 112, 112 for 5। स्क्वायर लेग पर मंसूर बड़े भाई खड़े हैं और सादिक कित्तूर उनका साथ दे रहे हैं। गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं ये 2 जोन के क्वालिफाइड अंपायर्स। स्कोरर है रवि कनबर्गी, हमारे साथ ही कमेंटेटर हैं चेतन बैलूर, ऑनलाइन स्कोरिंग शहजाद पठान करते हुए। अच्छी गेंद, अच्छी उछाल लेकर आई, पलट कर थ्रो करना चाहते थे ज़रूर, लेकिन 50 रन ध्रुव नाइक के खाते में। तो बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में ये 50 रन ध्रुव नाइक के लिए जा रहे हैं, लेकिन 113 रन ही बने हैं अब तक। 19वां ओवर पारी का चल रहा है और 113 रन बहुत बड़ी चुनौती तो कहीं नहीं जा सकती T20 के फॉर्मेट में। इस मैदान के ऊपर खास तौर पर बड़े स्कोर होने चाहिए। हाँ, छकाने में कामयाब दर्शन मायकर को अर्जुन पाटिल। अच्छी स्विंग,
और इस स्विंग के ऊपर बल्ला तो ज़रूर चलाया मयकर ने, लेकिन संपर्क नहीं कर पाए, कोई रन नहीं बना। इस बार भी ड्राइव जरूर किया, अपने आप से खफा है, नाराज है। दर्शन मयकर जानते थे कि स्ट्रोक तो उन्होंने खेला, लेकिन सीधे बॉलर की दिशा में गेंद जा रही है, एक और डॉट गेंद। तो अब 125 क्या बना पाएंगे? 130, 125 देखेंगे, क्योंकि अब इस ओवर की 2 गेंदें हैं, उसके बाद 6 गेंदें, कुल मिलाकर 8 ही गेंदों का खेल बचा है। और अर्जुन मीर के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। पहले पावर प्ले में थोड़े से वो ढीले ढीले नज़र आ रहे थे, फील्डिंग करते करते कहीं कैचेस छूटे, कहीं बाउंड्रीज चली गई। पहले 5-6 ओवर थोड़ा सा कठिन समय रहा उनके लिए, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी करते हुए और बोल्ड किया। एक यॉर्कर लेन की गेंद डाली, जिस पर दर्शन मयकर जगह बनाकर खेलने का प्रयास कर रहे थे, उनकी एकाग्रता भंग हुई। लगातार डॉट गेंदें खेलने के बाद दर्शन मयकर की एकाग्रता भंग हुई और अर्जुन पटेल ने उनको बोल्ड किया। तो एक और विकेट का नुकसान यहाँ पर होता हुआ 6ठा विकेट खो रही है। तो अब 6ठा विकेट खो रही है। दर्शन मयकर 7 गेंदों का सामना करने के बाद 1 ही रन वो बना रहे थे, लेकिन कोई बड़ी पारी उनके तरफ से पेश नहीं हुई। अब नए बल्लेबाज मैदान पर विनीत अडूरकर। अब तक 6 मैचेस खेले हैं विनीत अडूरकर ने, 41 कुल मिलाकर रन बनाए हैं उन्होंने, और सर्वश्रेष्ठ स्कोर उनका 23 रहा है अब तक इस श्रृंखला में। अर्जुन पाटिल आखिरी मरतबा 3 विकेट अर्जुन पाटिल के खाते में जा रहे हैं। अब तक 3.5 ओवर 8 रन और 3 विकेट, बढ़िया किफायती गेंदबाजी। बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया है, गेंद ने फाइन लेग के ऊपर गई है। अलीम माड़ी वाले जब तक की गेंद को फील्ड करते खाता खोलने में कामयाब हुए हैं विनीत अडूरकर। तो कुल मिलाकर 19वें ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 114 रन बना रही है 6 विकेट के नुकसान पर मोहन मोरे। तो श्रृंखला में सबसे बेहतरीन स्पेल में से ये स्पेल रहा है, तीसरा अच्छा स्पेल। 4 ओवर 9 रन 3 विकेट अर्जुन पाटिल। तो कई रिकॉर्ड्स बनेंगे। कल वैष्णव संघमित्रा का शतक, पहला शतक बीपीएल में उनके तरफ से बनता हुआ। 3-4 मेडन ओवर्स भी डाले गए हैं, इसके बाद 2-3 अच्छे स्पेल्स डाले गए हैं, जहां पर बहुत कम 10 के अंदर रन देकर 4 ओवर में 2-3 विकेट 2-3 गेंदबाजों ने हासिल किए हैं। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स धीरे धीरे हमारे सामने आएंगे। फिलहाल तो आखिरी ओवर लेकर आने के लिए तैयार राहुल वाजंत्री, और सामना करेंगे 1 रन बनाकर खेलने वाले विनीत अडूरकर। तो 6 का मौजूदा रन रेट चलता हुआ, तो लगातार 7 का रन रेट जो था वो अब 6 पर आता हुआ। पहले 6 ओवर के पावर प्ले में रन बने थे 52। अब देखिए, बल्ले का अंदरूनी किनारे लिया, लॉन्ग लेग की तरफ गेंद जा रही है, स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद। जब तक कि वो गेंद को फील्ड करते थ्रो करते 1 रन अडूरकर ने दौड़कर पूरा किया। 2 पर जा पहुंचे विनीत अडूरकर, पारी की रन संख्या 115। 6 ओवर में 52। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कितने रन आए, कुल मिलाकर सिर्फ 65 रन आए 13 ओवर में, यानी कि 12.1 ओवर में 65 आए। यॉर्कर लेन की गेंद डाली, लेकिन बल्ले के जड़ से गेंद लगी, और जड़ से लगने के बाद सीधी बॉलर के तरफ आई। अच्छी यॉर्कर डाल रहे थे, स्टॉक गेंद का इस्तेमाल कर रहे थे राहुल वाजंत्री। ये एक ऐसी गेंद है जहां पर रन नहीं बनते, कभी कभी विकेट भी मिल जाते हैं। तो ये एक स्टॉक गेंद का इस्तेमाल राहुल वाजंत्री कर रहे थे, जहां पर वो डॉट गेंद कराते हुए नजर आए। 115 पर 6, 4 गेंदें बाकी। एक और यॉर्कर डाली, फिर एक बार ये मौका है यहाँ पर। जी हाँ, फुटबॉल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए
राहुल वाजंत्री ने स्टंप्स के ऊपर गेंद लगा दी और विनीत अडूरकर वापस लौटेंगे पवेलियन में। बहुत तेज़ भाग रहे थे गेंद के ऊपर राहुल वाजंत्री, जानते थे कि झुककर गेंद को वो थ्रो नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने पैरों का सहारा लेकर गेंद को धकेला और धकेलने के बाद लात मारी उस गेंद को और उसके बाद वो स्टंप्स पर सीधी लगी और विनीत अडूरकर रन आउट हुए। तो ये छठा विकेट का नुकसान होता हुआ 2 रन बनाकर विनीत अडूरकर वापस लौटे पवेलियन में। 7 विकेट के नुकसान पर 115, 115 for 7। नए बल्लेबाज मैदान पर ध्रुव नाइक का साथ देने के लिए आए हैं। हुज़ैफा शेख जी आए हैं। यॉर्कर गेंद, बढ़िया यॉर्कर थी। राहुल वाजंत्री ने कहा कि भाई इतनी अच्छी गेंद डाली फिर विकेट क्यों नहीं मिला, लेकिन ये डॉट गेंद हो रही है। 2 गेंदों का खेल बाकी इस इनिंग्स में, तो एक बहुत छोटे टोटल पर रोका है मोहन मोरे की टीम को अर्जुनवीर की टीम ने। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग के इलाके में गेंद जा रही है। हुज़ैफा ने खाता खोला, 1 रन पर अली माड़ी वाले गेंद को फील्ड कर रहे हैं। रन संख्या बनी है 116, 116 for 7। आखिरी गेंद इस इनिंग्स के राहुल वाजंत्री की। हुज़ैफा शेख जी 1 रन बनाकर ध्रुव नाइक एक छोर पर खूंटा गाड़ कर खड़े थे और अर्धशतक उनके खाते में है। आखिरी गेंद इस इनिंग्स की। राहुल की ये गेंद यॉर्कर डालने का प्रयास लो फुल टॉस में तब्दील करते हुए खेला। 1 रन बनेगा, दूसरे के लिए दौड़ पड़े लेकिन रन आउट होंगे शेख जी। इस तरीके से 8 विकेट खो रही है और 117। तो 117 पर 20 ओवर का ये खेल समाप्त हुआ। तो 118 रनों की चुनौती है अब अर्जुनवीर साई सोशल्स की टीम को। तो मोहन मोरे की टीम कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाई। 6 ओवर में उन्होंने पावर प्ले के दरमियान 52 रन बना रहे थे, लेकिन उसके बाद वो उस पकड़ को वो बरकरार नहीं रख पाए और परिणाम स्वरूप 117 पर पारी समाप्त हुई उनकी। ज़्यादा रन नहीं आए, सिर्फ 65 रन आए उसके बाद 14 ओवर में। तो अर्जुनवीर साई सोशल्स के गेंदबाजों ने, फील्डर्स ने बाद में जाकर बड़ी अच्छी वापसी की। पहले 5-6 ओवर में उनकी तरफ से मिस फील्डिंग देखने को मिल रही थी, कई आसान कैचेस छोड़ रहे थे, लेकिन इसका फायदा भी बड़ा नहीं उठा पाए मोहन मोरे की टीम। तो कुल मिलाकर अब 118 रनों की चुनौती पार करनी होगी अर्जुनवीर साई सोशल्स की टीम को। 10 मिनट का विश्राम रहेगा, उसके बाद मैच।
We're falling hard to find the answer. With this life we live, be all that matters. The life of dreams is moving faster, and no one knows the constant fear of what comes after, and we'll never know. It's weighing me down, got my feet on the ground. Let's hide away from the light and run away from the night. Let's run away. If I walk to the sea, maybe I never say for I fall into the light. Every time I try to breathe, but you're right and carry me. But I've loved and I have died.
Gonna shine bright. So I won't hold back, and you should know that with never gone, just have regrets. So I won't go back. Oh, what I gotta need to forget the time I lost. Won't let me forget. सुजय सातरी को चारों खाने चित करते हुए गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, इस बार स्पिन का गला दबा कर खेला कवच की दिशा में सुजय सातरी ने। कवच में गेंद फील्ड हुई, कोई रन नहीं बना। एक और अच्छी गेंद, अच्छी फ्लाइट दे रहे हैं आनंद कुमार, डरते नहीं हैं फ्लाइट देने में, वो लालच में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार सुजय सातरी बड़े अच्छे तरीके से उस गेंद को कवच में खेला। बैकफुट पर गए, जगह बनाकर पंच किया, एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाएगी, कोई भागेगा नहीं उस गेंद के पीछे। वो जानते हैं कि सिर्फ ऊर्जा ज़ाया हो गई फील्डर्स की, इसलिए किसी ने उस गेंद का पीछा भी नहीं किया और ये दंदनाता हुआ चौका सुजय सातरी के बल्ले से निकलता हुआ। जो नाकाबंदी करके रखी है उसमें भी गैप में ढूंढ कर खेला था इस गेंद को, कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से। खाता खोलने में सुजय सातरी कामयाब। 118 रनों की मामूली चुनौती है, लो टोटल स्कोर ज़रूर है, लेकिन कभी कभी लो टोटल बड़ा खतरनाक होता है, बहुत मुश्किलें होती हैं कभी कभी खिलाड़ियों को, टीम को छोटा टोटल पार करने के लिए। लेकिन अब फिलहाल तो 4 रन बने हैं बगैर किस नुकसान के। अर्जुन वीर साई सोशल का स्कोर।
बैकफुट पर गए, एक और अच्छा ड्राइव खेला, लेकिन ज्योतिबा गिलबिल एक्स्ट्रा कवर पर खड़े हैं, उन्होंने गेंद को रोका, कोई रन नहीं बना। आनंद कुंभार की ये गेंद, अच्छी गेंद, एक फ्लाइट दे रहे थे, मिड ऑफ की तरफ खेला नागेंद्र पाटिल है उस इलाके में, और नागेंद्र पाटिल ने गेंद को रोकने के बाद ये ओवर समाप्त हो रहा है। आनंद कुंभार का 4 रन आए इस ओवर में। अर्जुनवीर साई सोशल्स के लिए 118 का वो जवाब दे रही हैं, और पहले ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 4 रन सुदीप सातेरी बना रहे हैं, सुजय सातेरी 4 रन बनाकर खेल रहे हैं एक चौके की मदद से। और अब पहली मर्तबा अमय भातकांडे 5 मैचेस खेले हैं, अमय भातकांडे ने 17 रन हैं उनके खाते में, सर्वश्रेष्ठ उनका स्कोर है सिर्फ 8। ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला अमय भातकांडे को आज, लेकिन एक अवसर है उनके पास फॉर्म में लौटने का, इसलिए उनको सलामी बल्लेबाज के तौर पर सुजय सातेरी लेकर आए हैं उनको। अब देखना ये होगा कि अमय भातकांडे आज क्या अच्छे फॉर्म में लौटेंगे, ये सवाल है, देखेंगे, इन सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन फिलहाल दूर वाली छोर से दर्शन मयकर मोर्चे पर लगे हैं, अपने कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर लेकर आने के लिए तैयार। सामना करेंगे अमय भातकांडे के लिए एक स्लिप लगाई गई है, एक गली एक पॉइंट। अब स्लिप के खिलाड़ी शायद जाना चाह रहे हैं उस फ्लाइंग गली के इलाके में, तो अब शॉर्ट थर्ड मैन, गली, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, ऑन साइड पर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, जाचा पर का देखा उस गेंद को अमय भातकांडे ने, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी हैं, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट और एक शॉर्ट फाइन लेग। तो 6-3 की फील्डिंग की रचना यहाँ पर हम देख रहे हैं अमय भातकांडे के लिए। तो जाहिर सी बात है कि मयकर ऑफ स्टंप के ऊपर गेंदबाजी करेंगे, लेकिन खराब गेंद डाल रहे थे, लेग स्टंप के ऊपर डाल रहे थे, लेकिन मिड विकेट के इलाके में फील्डर तैनात, उस गेंद को उन्होंने खेला जरूर था। 1 रन के साथ खाता खोलने में अमय भातकांडे कामयाब हुए, और पारी की रन संख्या अर्जुनवीर साई सोशल्स 5 बगैर किसी नुकसान के। सुजय सातेरी खेल रहे हैं 4 रन बनाकर, एक करारा एक्स्ट्रा कवर ड्राइव था उनका पिछले ओवर में, आनंद कुंभार की गेंदबाजी पर वो चौका बना रहे थे। अब सामना करेंगे दर्शन मयकर का। इस बार ड्राइव किया जरूर था, लेकिन फिर एक बार कवच के इलाके में ज्योतिबा गिलबिल की तरफ गेंद को खेल रहे हैं सुजय सातेरी, और रन की कोई गुंजाइश नहीं है। गेंद फील्ड होकर वापस लौट रही है दर्शन मयकर के पास। मयकर की फ्लाइटेड गेंद, हवाई स्ट्रोक खेला, मिड ऑफ के सर के ऊपर से गेंद, और ये गेंद जाएगी दर्शक दीर्घाओं में, लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का। एक बड़ा छक्का यहाँ पर बनाते हुए सुजय सातेरी, और गेंद कहीं ना कहीं जाकर जिमखाना के मैदान से बाहर गई है, उस दीवार के पीछे गेंद गई है, और ये गगनचुंबी छक्का स्कोर को अब आगे बढ़ा रहे हैं 11 बगैर किसी नुकसान के। 10 पर जा पहुंचे सुजय सातेरी, 1 चौका 1 छक्का उनके खाते में शामिल। मोहन मोरे आखिरी लीग मैच है उनका वर्तमान श्रृंखला में, और तकरीबन वो श्रृंखला से बाहर हैं, वापसी के मौके अब नहीं है, सिर्फ एक औपचारिक खेल है आज उनके लिए, लेकिन एक अच्छी टीम फिर भी आखिरी पायदान पर। स्लॉग स्वीप खेला, और हलक में जाकर गेंद अटक गई डीप मिड विकेट के इलाके में। रवि पिल्ले खड़े हैं उस इलाके में, उन्होंने कैच को लिया, और सुजय सातेरी की पारी समाप्त। 1 छक्का लगने के बाद एक स्लॉग स्वीप खेला था, लेकिन इस मर्तबा उनकी टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं बना रहे थे, और 1 छक्का लगने के बाद सुजय सातेरी अपने आप को ठंडा नहीं रख पाए, काबू नहीं रख पाए, उनके रगों में खून तेज़ी के साथ दौड़ने लगा, उनके हाथ पैर फूले। एक और छक्का लगाने की कोशिश वो कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी ताकत कम पड़ी स्ट्रोक के पीछे। रवि पिल्ले खड़े थे बाउंड्री पर मिड विकेट के इलाके में, ठीक डगआउट के सामने, और एक आसान सा कैच लेकर दर्शन मयकर को मिलता हुआ ये विकेट, और वो भी बड़ा विकेट। सुजय सातेरी 10 रन बना रहे थे, और 9 गेंदों का सामना किया, 1 छक्का।
का एक चौका उनके क्रम में शामिल। तो पहला विकेट अब मिलता हुआ मोहन मोरे के गेंदबाज दर्शन माइकर को। तो ब्रेक थ्रू दिलवाने में बहुत जल्दी कामयाब हुए दर्शन माइकर। अब कप्तान आए हैं मैदान पर विजय पाटिल। सोचा नहीं था विजय पाटिल ने कि उनको इतनी जल्दी आना पड़ेगा मैदान के ऊपर, लेकिन अब करें तो क्या करें, क्योंकि अब सुजय सातेरी वापस लौटे हैं पबलन में। 11 पर 1, 118 की चुनौती है। बल्ले का बाहरी किनारा लिया, रन लेने के लिए निकल पड़े। विनीत अडूरकर ने गेंद को रोका उस थर्ड मैन के इलाके में, लेकिन थोड़ी सी हाँ ना चल रही थी, लेकिन अंततः अमय भातखंडे ने कॉल दिया और फिर 1 रन दौड़कर पूरा किया। तो ये ओवर कामयाब था, वो समाप्त हुआ दर्शन माइकर का। इस ओवर में कुल मिलाकर उन्होंने रन दिए हैं 8 रन दिए और 8 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। तो 2 ओवर का खेल अब तक समाप्त हुआ और 12 रन बना रही है अर्जुन वीर साई सोशल्स की टीम 1 विकेट खोने के बाद। आनंद कुंभार के पास गेंद है, 1 ओवर की गेंदबाजी वो कर चुके हैं, 4 रन दिए हैं उन्होंने, कोई सफलता नहीं मिली उनको, लेकिन अभी भी 106 रनों की दरकार और 106 रन बनाने के लिए 108 गेंदों का खेल होना बाकी। कुछ भी हो सकता है इस मैच का नतीजा, क्योंकि लो टोटल का मैच है। कभी कभी बड़ा खतरनाक मैचेस होते हैं, इस तरीके से बड़ा स्कोर हो तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लो टोटल बहुत ही खतरनाक स्कोर माना जाता है। उन रनों का पीछा करना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है टीम्स के लिए, लेकिन अब देखना ये होगा कि आनंद कुंभार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे कप्तान विजय पाटिल। फ्लाइटेड गेंद करवाई, विजय पाटिल ने धकेला और कॉल दिया, और रवि पिल्ले एक हाथ से पिकअप और थ्रो तो कर रहे थे ज़रूर, लेकिन अच्छी तालमेल और समझबूझ भरा ये रन था। विजय पाटिल ने दौड़कर पूरा किया, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 13, 1 विकेट के नुकसान पर 13 for 1। 2 पर विजय कुमार पाटिल, 1 रन बनाकर अमय भातखंडे खेलते हुए। अमय भातखंडे सामना करेंगे आनंद कुंभार का। काफी तेज हवाएं चल रही है मैदान पर, थोड़ी सी राहत गर्मी से मिलती हुई इस हवा के चलते। हाँ, नीचे रही गेंद, बैकलिफ्ट कम करते हुए बिल्ला नीचे लाकर खेला और 1 रन दौड़कर पूरा किया। विकेट कीपर के दस्ताने से लगकर गेंद छिटक गई और जैसे गेंद छिटक कर गई 1 और रन दौड़कर पूरा किया। 2 रन बने कुल मिलाकर अमय भातखंडे के खाते में। भातखंडे जा पहुंचे 3 पर, पारी की रन संख्या अब आगे बढ़ती हुई 15, 1 विकेट के नुकसान पर 15 for 1। आनंद कुंभार तैयार इस ओवर की अगली गेंद लेकर आने के लिए। फ्लाइट हेड गेंद, इनसाइड आउट खेला, सीधी लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद, ओहो छक्का। बहुत बढ़िया टाइमिंग, अच्छी फ्लाइट दे रहे थे, चुनौती खड़ी की, उस चुनौती को स्वीकारा अमय भातखंडे ने और इस गेंद को लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर कर दिया उन्होंने। सीधी गेंद आई छक्के के लिए। इस 6 रनों के साथ अब अमय भातखंडे जा पहुंचे 9 पर, पारी की रन संख्या आगे बढ़ती हुई 21, 21 for 1। बैकफुट पर गए, इस गेंद को खेला, अच्छा कट शॉट था जरूर, लेकिन मयकर के पास कवच के इलाके में अच्छी वापसी, छक्का खाने के बाद डॉट गेंद आनंद कुंभार की। फ्लाइटेड गेंद, स्टीयर किया इस गेंद को थर्ड मैन के इलाके में, जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन अपने खाते में जमा किया। अमय भातखंडे अब जा पहुंचे 10 पर, पारी की रन संख्या 22, 22 for 1। तो कहीं ना कहीं 150 या 160 रन होने चाहिए थे। पहले 6 ओवर का लेखा जोखा अगर हम देखेंगे तो 52 रन बना रही थी मोहन मोरे की टीम।
और एन वक्त पर विजय कुमार पाटिल ने बल्ला हटाकर गेंद को जाने दिया और ये ओवर समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर अब तक 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 22 रन बना रही है अर्जुन वीर साई सोशल्स की टीम। 1 विकेट खोने के बाद सुजय सातिरे आउट हुए 10 रन बनाकर। दर्शन मयकर को वो सफलता मिली थी, लेकिन उसके बाद अमय भातकांडे खेल रहे हैं 10 रन बनाकर और 2 रन बनाकर खेल रहे हैं कप्तान विजय कुमार पाटिल। दर्शन मयकर के पास गेंद है। अब सूरत हाल ये है इस मैच का कि 102 गेंदों का खेल बाकी और 96 रनों की जरूरत है। तो रिक्वायर्ड रन रेट 5.65 यानी कि 6 से भी कम चलता हुआ। मयकर किए गए, बैकफुट पर गए, जगह बनाई और बहुत खराब फील्डिंग का मुजाहरा एक सीनियर खिलाड़ी की तरफ से हमें देखने को मिलता हुआ। गेंद के पीछे नहीं आ रहे थे बल्कि उस गेंद को शरीर से अलग होकर रोकने की कोशिश ज्योतिबा गिलबिले कर रहे थे। परिणाम स्वरूप गेंद उनको छकाने के बाद गेंद गई 4 रन के लिए। इस चौके के साथ अब अमय भातकांडे जा पहुंचे 14 पर। पारी की रन संख्या बनी है 26 for 1। फील्डिंग का स्तर का दर्जा बड़ा अच्छा रहना चाहिए, खासतौर पर इस फॉर्मेट में। ज़रूर अपील कर रहे थे, लेकिन कोई दमदार किस्म का अपील नहीं था, जहां पर हम पर सादिक कित्तूर किसी नतीजे पर पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े विचलित ज़रूर हुए थे। उस गेंद को लेकर थोड़ी असहजता महसूस कर रहे थे अमय भातकांडे। पैड पर लगने के बाद थोड़ी सी अपील, लेकिन अंपायर ने खारिज किया उस अपील को। कोई रन नहीं बना। डॉट गेंद, चौका खाने के बाद एक डॉट गेंद कराते हुए दर्शन मयकर। इस गेंद को मिड विकेट की तरफ उठाकर खेला। सरपट गेंद आई डीप मिड विकेट पर। पिल्ले खड़े हैं उस इलाके में, उन्होंने गेंद को रोका, लेकिन 1 रन का इजाफा होता हुआ अमय भातकांडे के खाते में। अमय जा पहुंचे अब 15 पर। पारी की रन संख्या 27 for 1। ओहो, चारों खाने चित हुए। विजय पाटिल बहुत बढ़िया गेंद डाल रहे थे। विजय पाटिल जैसे कसे हुए बल्लेबाज को कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर रहे थे। दर्शन मयकर बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे थे उस गेंद को, और पलक झपकते ही गेंद को गैदर करने के बाद रुद्रगौड़ा पाटिल गिल्लियों को उड़ाकर दाद तो मांग रहे थे ज़रूर, लेकिन अपने लक्ष्मण रेखा के ठीक अंदर मौजूद थे, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई रन भी नहीं बना। लेकिन बहुत अच्छी गेंद डाल रहे थे दर्शन मयकर विजय पाटिल के लिए। और स्लॉक स्वीप खेला, लपेट कर मिड विकेट के ऊपर गेंद और सीधे डगआउट के ऊपर जाकर गेंद गिरी। थोड़ी सी फ्लाइट दे रहे थे गेंद को, और जैसे देखा कि एक फ्लाइटेड गेंद आ रही है, स्लॉक स्वीप खेला। बहुत बढ़िया टाइमिंग उनकी, और पिछली गेंद पर जो चकमा खा गए थे कहीं ना कहीं जाकर उसकी भरपाई अब कर रहे हैं विजय पाटिल। एक स्लॉक स्वीप का छक्का जड़ा दिया उन्होंने। इस छक्के के साथ अब विजय कुमार पाटिल जा पहुंचे 8 पर। पारी की रन संख्या 33 for 1। और बहुत खराब गेंद डाल रहे थे, लेकिन जितनी खराब गेंद उतनी खराब स्ट्रोक खेल रहे थे विजय पाटिल। वो जानते थे कि वो फ्लिपर किस्म की गेंद आ रही थी, वो फुल शॉट खेलने के लिए चले गए, लेकिन टाइमिंग बहुत ख़राब कर रहे थे वो। कहीं ना कहीं उस अंदरूनी किनारे के साथ गेंद पैड पर लगी, और ये ओवर समाप्त हुआ दर्शन मयकर का। तो कुल मिलाकर हम ओवर समाप्त हुए हैं 4, और 4 ओवर के बाद 33। अब 96 गेंदों का खेल बाकी, और 96 गेंदों में 85 रनों की ज़रूरत। 85 रिक्वायर्ड इन 96 डिलीवरीज।
ज्योतिबा गिलबिले, ज्योतिबा गिलबिले, हाँ सीधा उठा दिया। एक टप्पा पड़ने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई 4 रन के लिए। पहली गेंद फ्लाइट डाल रहे थे, फ्लाइटेड गेंद दे रहे थे, हवा दे रहे थे, और जैसे गेंद हवा में आई उसको हवा में खेला 4 रन के लिए अमय भातखंडे ने। स्कोर बड़ा है 37, 1 विकेट के नुकसान पर। एक और फ्लाइटेड गेंद, इस बार थोड़ी सी गति में परिवर्तन लाकर धीमी गेंद डाल रहे थे। अच्छी लेग ब्रेक बनती हुई गेंद जा रही थी। अमय भातखंडे को छका कर विकेट कीपर खड़े हैं ध्रुव नाइक। उन्होंने गेंद को गैदर किया, कोई रन नहीं बना। अच्छी वापसी, चौका लगने के बाद डॉट गेंद गिलबिले की। फ्लाइटेड गया, एक बार और बढ़िया, बहुत बढ़िया गेंद। जो तजुर्बा है उनका वो काम आ रहा है। पहली गेंद पर थोड़ी तेज डाल रहे थे, उस पर चौका बना, लेकिन उसके बाद 2 गेंदे अमय भातखंडे को छकाया, चकमा दिया। चारों खाली चित करते हुए गेंद विकेट कीपर के पास जा रही है। अच्छी वापसी, चौका खाने के बाद 2 डॉट गेंदे कराने में ज्योतिबा गिलबिले कामयाब। फिर एक बार इस गेंद को फ्लाइटेड गेंद को कवच के इलाके में खेला नागेंद्र पाटिल। जब तक कि झपटा मारकर गेंद को फील्ड करते, 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ अब अमय भातखंडे जा पहुंचे 20 पर। पारी की रन संख्या 38, 38 for 1। 5वां ओवर पारी का चल रहा है और इस ओवर के अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी। विजय पाटिल एक छक्का जड़ाकर 8 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर रहा है। सामना करेंगे ज्योतिबा गिलबिले का। बैकफुट पर गए, कलाई का उपयोग किया, मोड़ दिया उस गेंद को। मिड विकेट जो कि खाली पड़ा हुआ है 30 गज दायरा, उस इलाके में खेलकर 1 रन दौड़कर पूरा किया। डीप में से प्रसाद मौर्य ने आकर गेंद को रोका। 11 पर जा पहुंचे, अब माफ कीजिए 9 पर जा पहुंचे विजय कुमार पाटिल। पारी की रन संख्या 39, 39। बैकफुट पर गए, सीधा ड्राइव खेला लॉन्ग ऑन के इलाके में। विनीत अडूरकर ने गेंद को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। एक और चौका अमय भातखंडे के खाते में जाने के बाद ये ओवर अब समाप्त हो रहा है ज्योतिबा गिलबिले का। कुल मिलाकर 9 रन आए इस ओवर में, 10 आए, माफ कीजिए 10 रन आए इस ओवर में। तो 5 ओवर के बाद 43, 43 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। अर्जुन बीरसाई सोशल्स फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। अब 90 गेंदों का खेल बाकी, 75 रनों की जरूरत। 90 बॉल्स रिमेनिंग, 75 रिक्वायर्ड। तो ज़्यादा कोई रोचकता नहीं है इस मैच में। धीरे धीरे जैसे जैसे रन बन रहे हैं वैसे वैसे रोचकता कम होती जा रही है इस मैच में। कुछ जादू भरी गेंदबाजी होनी चाहिए, कुछ चमत्कार होना चाहिए मोहन मौर्य की तरफ से गेंदबाजी में। 2-4 विकेट उनको अगर जल्दी मिलने में वो सफल हो गए तो कहीं ना कहीं जाकर इस मैच में वो रंगत ला सकते हैं। लेकिन ये सेट बल्लेबाज मैदान पर हैं और ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपना विकेट जल्दी नहीं देते। लेकिन देखेंगे एक बार और हमें गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिलता हुआ। फुरकान मुल्ला को लाया जा रहा है गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। इस गेंद को खेला है विजय पाटिल ने, बल्ले का मुंह तिरछा करते हुए खेला। थर्ड मैन की दिशा में गेंद फील्ड हुई। ज्योतिबा गिलबिले खड़े हैं उस थर्ड मैन पर, कोई रन नहीं बना। फुरकान मुल्ला फिर एक बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गई है थर्ड मैन के इलाके में। ज्योतिबा गिलबिले ने गेंद को उठाया लेकिन 1 रन दौड़कर पूरा किया। विजय पाटिल अब जा पहुंचे 10 पर।
24 पर अमय भातकांडे, पारी की रन संख्या 44। सीध में डाली। अमय भातकांडे ने रक्षात्मक तरीके का स्ट्रोक खेला, बॉलर की दिशा में कोई रन नहीं बना। वापस चले फुरकान मुल्ला। फुरकान मुल्ला की अगली गेंद अमय भातकांडे के लिए। इस बार अमय के बल्ले के अंदरूनी से किनारे से लगकर गई है। विनीत अडूरकर खड़े हैं लॉन्ग ऑन पर। जब तक कि वो गेंद को उठाते थ्रो करते, 1 रन दौड़कर पूरा किया। इसे 1 रन के साथ रन संख्या बनी है 45-45। अमय भातकांडे जा पहुंचे 25 पर। 16 गेंदों का सामना किया, 3 चौके 1 छक्का उनके खाते में शामिल। इस बार बैकफुट पर गए, करारा पंच खिला है और गेंद जाएगी एक्स्ट्रा कवर के बाद 4 रन के लिए। विजय कुमार पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, बल्ला थोड़ा सा आड़ा किया उन्होंने। आड़ा करते हुए उस गेंद को कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से निकाल दिया 4 रन के लिए। इस चौके के साथ अब 14 पर जा पहुंचे विजय पाटिल। पारी की रन संख्या 49, 49 for 1। विजय पाटिल ने इस ओवर में कुल मिलाकर 6 रन आए। उस चौके को मिलाकर तो 6 ओवर में 49, 49। 84 गेंदों का खेल बाकी और 84 गेंदों में 69 रनों की जरूरत। काफी देर से चेतन बैलूर मैदान पर आए हैं, उनका स्वागत है। और अब पावर प्ले समाप्त हुआ। पावर प्ले में 49, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब आगे का कवदेकाल सुनाने के लिए आएंगे हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर चेतन बैलूर। सावधान साहेब 20 ओव्हर तो येऊ नकोस इथं असं त्याला हे करून टाका, दाबून टाका त्याला। तोंड कसं करते पाणी सुक Thank you, Pramod. It is 49 for 1. Oh, trying to hit a big one there. Big appeal. Catch caught behind. Caught behind there. Thick edge, in fact. Well, I was looking at the square. Like, nevertheless, it was the edge there, taking the edge. Good catch there by the wicket keeper Rudra Gowda, standing up to the stumps. There is definitely a deflection. I think Dhruv Naik wicket keeping today. We thought it is Rudra, but Rudra is on a break today, and it is Dhruv Naik who's keeping the wickets, and he picks up that good catch, standing up to the stumps. A deflection of the edge of the bat of the batsman Amay Bhatkande. Amay Bhatkande got 25 of the 17 deliveries that he faced. So just chasing a moderate total, you can say a low scoring game, moderate total of 117 set by Mohan More this morning. They began with a fly off there, but then suddenly losing their way. And I think it is Rahul. Ravi. किडीच दिलेलं आहे त्याला कसं विचारलं बघितलंस म्हणजे आमच्यावर विश्वास नाही कशाला आम्ही आहे की नाही म्हणजे आम्ही काय कीपरले पण भरोशाचे नाही बाहेरचे लोक हुशार आता तुझं बरोबर तू येऊ नको जरा गडपवर सांगतो
स्विच ऑफ नको एरोप्लेन मोडवर घाल आणि जाऊन बसला कुठे इथेच सवय नाही No, says umpire Mansoor Bade Bhai. Maybe it was of the bat there. Big appeal by the bowler and also keeper going up. Nevertheless, it is Kedar Usulkar today. He's playing his debut match in this tournament. Kedar Usulkar. खेळला की काल सगळे पुरं फ्लॉप येतात लावून देऊन दिलेलो Again, flighted delivery. Oh, thick edge there. The ball going in the slip cordon. Nevertheless, the third man fielder coming in and running. It was not a catch, but the ball going down and just in the slip cordon there. Sloppy fielding by the slip fielder. Slip is in position as the batsman crossover for another single. With that single taken, the scorecard further ticks along to 50. 50 comes up on the board for Arjun Veer. 50 runs. 5.1 1 विकेट आणि ते मुद्दाम Again, played with soft hands there. Vijay Kumar Patil there trying to play with soft hands, trying to steer it and guide it down for a dot ball. Onto the back foot and played it towards deep square leg. The fielder comes in and fields wanting two, and two comfortable runs in the end. Good running by these two batsmen, I would say. Slightly sloppy fielding there by the square leg, deep square leg fielder. Furkan Mullah there, slightly sloppy. The batsman capitalizing and converting that 1 into 2, 52. And this time, boundary signaled by umpire Mansoor Bade Bhai. Acknowledged by my scorer. 4 more for the picking with those 4 runs. It also completes the overs after the completion of 7 overs. A scorecard reading 56 for the loss of 2 wickets. 56 runs for the loss of 2 wickets after the completion of 7 overs. Current run rate being 8 runs and required run rate is just 4.77. I see no why that Arjun Veer Shri Sai Socials can't win this match from here on with just run rate required 4.77 runs required from here on. If at all they have to win this match, we would like to see what Nagendra Patil will have and does. Furkan Mullah comes into the attack. Furkan comes with his bowling quota, second and innings 8th over to the batsman Kedar Usulkar. Full pitch delivery, converted it to a full toss and played it, driven it towards the wideish of long on. The batsman crosser for another easy single. With that single taken, the scorecard further ticks along to 57 for the loss of 2 wickets. Wearing it in a outside paper, it is not mandatory for wearing it in colleges. Played with soft hands there towards the fielder in the cover, Nagendra, the captain there. Importantly, a dot ball. Again, going onto the back foot and trying to cut him there into the cover region. Nagendra Patil standing in the short cover for a dot ball. 15. ते काय सांगतायत नाही 1 ओव्हरला 10,000 वाले संपलं फटकन संपलं
Again, this time in the cover region. And again, they're getting a hand on it, wanting two there. That time, Prasad More, the fielder, fields the batsman crossover for 2 more runs. With those 2 runs, is the scorecard for the limps along to 59 for the loss of 2 wickets. Or pitch to delivery there again, wide-ish of cover. The sweeper cover comes in and fields. Prasad, the fielder there, the batsman crossover for 1 more single. With that, 60 comes up on the board. 60 for 2. $60 for 2. Played with soft hands to the short mid wicket. At the time the field, the bowler himself fielding in his own follow through. The batsman crossover for 1 more single. With that single, the scorecard for the ticks along to 61 and it also completes the over. 8 overs have been bowled and the scorecard reading 61 for the loss of 2 wickets. Kedar Usulkar is batting on 3 runs and Vijay Kumar Patil is batting on 23 of the 18 deliveries. 8 overs have been bowled and the scorecard reading 61. Well, one good thing for the Amon Mores, they have bowled 8 overs and they have not given any extras up till now. That is a good piece of bowling, I would say. No extras at all up till now. No wides, in fact. Ball turning and bouncing, importantly a dot ball there. Going onto the back foot and again cutting him in the cover region, and Nagendra the Patil, the fielder, the captain there in the cover for a dot ball. So 2 dot balls to begin with. Oh, trying to take the sweep shot there, scooping up, in fact taking top edge of the bat and the ball rolling towards the fine leg behind the keeper. Meanwhile, the batsman, yes, I think fair enough for a boundary. Boundary signaled by umpire Mansoor Badeba, acknowledged by my scorer. 4 more for the taking with those 4 runs. Scorecard for the ticks along to 65. Well, of course, fair play award there. The fielder accepting and telling yes, the ball crossed over the line. We did see that yesterday also. Abhishek Desai doing that. Again played it uppishly, cries of catch it. Oh, he drops it. He did all the good efforts to take Darshan Maikar there. Meanwhile, the batsman crossed for 2 more runs. Well, Darshan Maikar, one of the better fielders in the side, did everything good enough to come to the reach of the ball. And in the end putting it down. Again Kedar Usulkar going onto the back foot and pulling it towards mid wicket. Darshan Maikar coming, not a clean take there, nevertheless just allows the batsman for a single. With that single, the scorecard for the limps along to 68. But that catch went down, that of Darshan Maikar, putting it down. It don't look so easy. He made it look easy, but then putting it down. So it's Vijay Kumar Patil on strike there. There's nothing really left much in this match. Oh, this time Vijay Kumar trying to play it. He was too early into the shot. Trying to play it onto the onside towards mid wicket. Got the leading edge of the bat and the ball scooping up in the air. Where Anand Kumar picks up his second wicket. Caught and bowled. So 2 wickets now for Anand Kumar. With that, it also completes the over. So 3 wickets down for
Arjun Veer Sai Social 68 for 3. The captain goes back. Vijay Kumar Patil. Caught and bowled Anand Kumar. 23 runs that he got of 19 deliveries. He was too early into the shot. The ball coming slower than anticipated, taking the leading edge of the bat and going to the bowler himself in his follow through. Anand Kumar making no mistake. 9 overs have been bowled and the scorecard reading 68 for 3. Well, at the fall of Arjun Veer Sri Sai Social's third wicket, it is Alim Madiwale walks on to the crease, a big hitter of the ball. Maybe they want to shift momentum and change gears. They know that how important this match is. If at all they win quickly than anticipated, that will definitely make an impact on the run rate of Arjun Veer. So that is the reason maybe Alim Madiwale has been picked up and brought into the side today to make some big hittings and take that score quickly. Nevertheless, 9 overs have been bowled and the scorecard reading 68 for 3. Well, Prasad More comes into the act. Prasad More comes into his bowling quota's first over and innings 10th over to the batsman Kedar Usulkar. Kedar Usulkar is batting on 10 runs of the 9 deliveries that he has faced, and the man to join him is Alim Madiwale. 9 overs have been bowled and the scorecard reading 68. The shot third man, you can see, I didn't notice him earlier, is coming back to the line now from inside the circle. Jyotiba Gilvile, an experienced campaigner. JG, Jyotiba Gilvile, yes, a senior member of the camp, experienced. Again played off his pads there towards the wideish square leg. Oh, fumble there and misguiding the square leg fielder as well from fine leg. The fielder fumbled. The batsman crossover for 2 more runs. 2 easy runs for picking. It looked like a single there, but 2 runs for the taking. With those 2 runs, the scorecard for the ticks along to 70 for the loss of 3 wickets. This time driven it straight the fielder there. Oh, fumble, diving and fielding there, saved a certain boundary, and this time it is Darshan Mayekar there. Full marks to the fielder at long on. Meanwhile, the batsman crossover for a single. .2 overs have been bowled and the scorecard reading 71 for the loss of 3 wickets. Played with soft hands there, wanting to take a run, a gentle push towards short cover region. Ravi Pillai coming in quickly and fielding importantly a dot ball. Vinny Tadurkar there fielding at long on. The batsman crossover for another easy single. With that single, the scorecard for the Limps to 72. 9.4 overs, 2 more deliveries before the completion of this over, and probably drinks will be called on to the fields. Outside the off stick, and this time it is wide. A good take there by Dhruv outside the. This is the first wide that is coming up in the 10th over.
Again, trying to hit a big one there. Beaten all ends up trying to pick it from outside off stick and trying to play onto the onside. Beaten all ends up into the hands of the keeper. Not a clean take there, nevertheless, for a dot ball. With that dot ball, score still stands at 73 for the loss of 3 wickets, 9.5 overs. Again, outside the off stick, Kedar Usulka trying to play it on the front foot. Beaten all ends up, and 10 overs have been bowled with that dot ball, and scorecard reading 73 for the loss of 3 wickets. 10 overs have been bowled, and the scorecard reading 73 for 3 after the completion of 10 overs. And they're going at a run rate of 7.3. Required run rate is just 4.50. Another 45 runs required of 60 balls left over. Another just 45 more required of 60 balls. Drinks been called onto the grounds after the completion of 10 overs, 73 for 3. Madiwale, not a clean hit there, but the ball landing in no man's area at mid wicket for a single. And with that single, the scorecard for the limps along to 74. Nothing really much left to tell you that, but you never know. 3 wickets are down, another 3 wickets, and they can pressurize Mohan More can pressurize Arjun Veer. Trying to hit a big one, no, says umpire.
Kedar Usulkar trying to go down on one knee and trying to play a big one towards mid wicket. No one close at onside. All three on the fence, square leg, mid wicket, and long on. And Jyotiba Gilbile flighting the delivery to the batsman Kedar Usulkar. This time Upish, and what a shot that is for a huge six there. With that six, the scorecard for the ticks along to 80 for the loss of 3 wickets. And good there by Darshan Maikar, showing some athleticism, jumping and taking the ball outside. A wonderful cricketer and a fielder there, Darshan Maikar. Well, that was a good shot there. Flighted delivery by Jyotiba Gilbile. And Kedar Usulkar playing a lofted drive over long gone for a huge 6. With that 6, the scorecard ticks along to 80 runs for the loss of 3 wickets. This time a slightly flatter one going onto the back foot and playing it in the cover region. Ravi Pillai coming in quickly and fielding. Meanwhile, the batsman crossover for a single. With that single, the scorecard for the limps on to 81 for the loss of 3 wickets. Played with soft hands. Ali Madiwale waited for the ball to come and reach him with no really much footwork, just pushing it gently towards long off. Darshan Maikar comes in and fields. The batsman crossover for another single. With that single, the scorecard for the ticks along to 82. Again trying to play a big one there towards the wideish mid wicket. I think it is Nagendra Patil there this time. The batsman have to settle down for a single. With that single fielded off the mid wicket, it also completes the over. So after the completion of 11 overs, scorecard reading 83 for the loss of 3 wickets. 83 runs for the loss of 3 wickets. And the ball lands in no man region. Well, the batsman survives dangerously, but just a single taken. With that single, the scorecard for the moves to 84. Well, the body language of more and more is really shoulders down. They're not really very encouraged or encouraging each other. They know there's nothing much left in this match. He's clean bowled this time again by Prasad More has clean bowled him. So the 4th wicket goes down in the form of Alim Madiwale. Just managed to get 3 runs of the 5 deliveries. Clean bowled by Prasad More. Let me tell you, if they can just hang on and they can make a match out of it. 84 for 4. Another 2-3 wickets and we have a match on Sports On. Very important. Let me tell you, they just have to pull up. If Nagendra Patil, the captain, can just talk a bit and moralize them from where they are shoulders down, they can pick up and they can put another 2-3 wickets and pressurize them. It would be very, very interesting to see how the match would be. 4 wickets down, now we have a match on. 84 for 4.
काँग्रेसचंच आहे ते पंजाबचं त्यांची लोक सगळं तेवढं काय कळत नाही आमच्या ह्याच्यात कॉलेज शाळेला नाही आहे बाकी तुम्ही सगळं झापू शकता कोण कसं थोडं महत्व नाही हे अंग झापायसाठी आहे त्यांची मौलीच सांगाल ती On the carpet towards long on as the batsman cross over. Vaibhav Kiribagi moves on to 1 run. And the scorecard limps along to 85. That gets Kedar Usulkar on strike, who's batting on 22. A well played 22 for Kedar. He's also got 1 6 and 1 boundary. 18 balls, 22 for Kedar Usulkar. Another young boy showing some skill there again, going to hit it towards the mid wicket. A fielder comes in and fields Anand Kumar, and 2 runs for the taking. Good 2 runs by these 2 batsmen. With those 2 runs, Kedar moves to 24 and scorecard moves to 87. Well, outside the off stick, wide signal by umpire Sadiq Kittur, another extra added on in the form of a wide, and the scorecard further ticks along to 88. 30 more required now of 50. Played upishly towards mid short. We got a chance there. Chance. We got direct hit there. Well, it's a direct hit, and up goes the finger. Good piece of fielding there. That is what I was telling you. 5th wicket goes down in the form of Kedar Usulkar. Yes, no by Vaibhav Kiribagi, and Kedar Usulkar. Good fielding there towards his left. Ravi Pillai, the fielder, and did he have time? He looked where to throw, how to throw, and he threw it directly to the stumps there. Good shot and good throw. 5th wicket goes down. Let me tell you, 88 for 5 is not good. 88 for 5, and we have a match on Sports On. Let me tell you, another 30 more required from here on, and half of the side is back in the dugout. Well, it is Sudeep Sateri, the boss, coming onto the pitch. Yes, I know he had a look at the commentary when we said we given him the nickname as the boss. Sudeep Sateri walks onto the crease at the fall of 5th wicket in the form of run out. That was of Kedar Usulkar. Managed to get 24 runs of the 20 deliveries. Well played for his 24 runs, Kedar Usulkar. And 88 for 5, and Sudeep Sateri walks onto the crease. Floated delivery in full pitch delivery, wanting 2, and 2 is the call, running dangerously and comfortably home in the end. Good running by Vaibhav Kiribagi. It was his danger end. He made 2 more for the taking. So Sudeep Sateri opens his account with 2 runs, and it's also called a no ball there. Indication coming, no ball. Just the 3 inside the circle. Very shrewd and sharp umpire there. Mansoor Badebhai keeping an eye and watch on the game. Just 3 in the circle. It's a free hit indicated by Sadiq Kittur. Free hit now, and Sudeep Sateri on strike. Trying to go onto the back foot and pulling it towards the wideish of mid wicket, wanting 2 there.
Slightly fumbled by the fielder again, and 2 more for the taking. With those 2 runs of the free hit, the scorecard moves to 93 now. 93 for the loss of 5 wickets. 12 overs have been bowled. 12 overs have been bowled, and the scorecard reading 93 for the loss of 5 wickets. Another 25 more required, just 25 more runs of 48 balls left over in this innings and before the completion of this match. Going onto the back foot and again cutting him towards the sweeper cover this time. A fielder coming in, fumble there, and one more for the taking. With that, the scorecard moves to 106 now. Driven it off the front foot to the pitch of the ball, and scorecard with that moves to 107. It also completes the over. 13 overs have been bowled, and the scorecard reading 107. 13 overs and scorecard reading 107. Another 11 runs more required. Just 11 more of 42 deliveries. Sudeep Sateri is batting on 5 runs, and Vaibhav Guripagi is batting on 14. Another boundary for taking there, an outside chance for the bowler. It would have been a wonderful catch if Ravi Pillai had to take it at the cover region. It looked like a catch there. Nevertheless, with that boundary in the extra cover region, the scorecard moves to 1-1-1. Oh, thick edge there. The ball coming towards the fine leg. Really can't set field for
such a shot. So 4 runs with that the scorecard for the moves to 115. Another 3 more required. Of 40 balls, just 3 more runs there. Can he finish with a boundary? Yes, he does that. So the boss finishes with the boundary. With that boundary, the match comes to an end, and Arjun Veer, Sri Sai Socials have won this match pretty comfortably in the end. That is the end of the match. So this morning 117 was scored by Mohan More of 20 overs for 8, and in doing so 13.3 overs, and they have chased 119 and completed this innings. Comfortable win for Arjun Veer, Sri Sai Socials. Having an easy walk, they'll be pretty happy. Match has finished than anticipated pretty early because of the short score. Nevertheless, both the teams played wonderfully. So I request both the teams to please come for the presentation. Vijay Patil, the captain of Arjun Veer, take initiative and get your team quickly. And also Nagendra Patil, the captain of Mohan More, get your team quickly for the presentation. Thank you. Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for eye. I didn't wanna walk the plank. No, but the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the pain, I was covered in a tidal wave, But I'm a fighter. Try to take me down, I'm going higher. Baby, you've been playing with
Maybe when it's still a die, you know it's an eye for eye. Everyone that you lie in the dead of night. You can save your alibi. I already know you lied. Oh no, no, don't even try. Watch the flame in me ignite. You didn't wanna walk the plank. But the Mariona again. Baby, it was dark, it was hard to see. And that's when a spark lit inside of me. Oh, I was lost in reverie. One day you will see what you made of me, what's inside of me. One day you will see I found my inner peace. You are to release in the dead of night. In the dead of night. Maybe when it's still a die, you know it's an eye for eye. Everyone that you lie in the dead of night. 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 And one day you will see what you made of me, what's inside of me. Oh, and one day you will see I found my inner beast, and you are to release. We also welcome you for this presentation ceremony with the present director of Gymkhana, that is Mr. Chandrakant Bandi. Boys, if you can just put your hands together for this people who have come here for the presentation. And before I finish with the losing captain, Mohan Moraj Nagendra. To tell you, Nagendra
you wanted to finish on a high, nevertheless you ended up. But let me tell you, you are one of the best teams in this tournament. What do you want to tell your boys? Yeah, they played very well. In between, we had very crucial matches which we have lost, and it's nothing like that. We haven't played very well. We have showed our best, and I know in the next tournament they'll come very strongly. Yes, as you say, they'll come strongly. But let me also tell you that we really oblige on behalf of the committee and everybody that you were very kind, the entire team of Mon More, you as a captain and all the players. Even when the matches were adjusted, you came in laughingly, you got adjusted to the situation. The morning matches you played in the afternoon matches you played in the morning. The dates were shifted, but you never complained much. And even on the field, at the Fair Play Award also, your team showed very much the best of the things. The sportsmanship spirit. What do you say about that? We really thank you and appreciate that. Yeah, first of all, I will thankful to Union Gymkhana for organizing such a wonderful tournament, and I really appreciate that the whole team they agreed to play in the afternoon matches. They changed themselves and they shifted their matches and all. And really, if such a good tournament is happening, and we should appreciate and we should respect their calls, and we have done that. Yes, well said, and we really appreciate that. And thank you very much. You really entertained us. Maybe 1 or 2 matches you had won and you would be qualified, but unfortunately you ended up. This match your shoulders were lost down. Nothing like that. We had a opportunity also, but we gave our 100%. I feel that. Well said. Congratulations to you. Well played in this entire tournament. You as a captain and your owner Mohan More, the entire team, all the cricketing members. Thank you very much. You entertained us. And may you keep playing like this and entertain and keep winning in wherever you play from here on. That is the end of the road for you in this tournament. Thank you very much, Nagendra. Thank you, sir. Nagendra Patil, the captain of Mohan More. That is the end of the road for them here. Now I would like to call the winning captain. Well, Vijay. Very happy to see you. This time is no. ये अच्छा लगा कि इस बार टॉस कैप्टन अलग और बात के लिए अलग नहीं आप आए, बहुत खुशी लगा. कैसा लगा ये मैच जीत कर? अच्छा एफर्ट था बॉयज का, और जितना टारगेट एक्सपेक्ट किए थे उससे कम में रिस्पेक्ट किए और अच्छा फिनिश भी किया. Well, now that you have won, you have disturbed the table and you want to end up in the top one, you say, because you are looking a very dangerous team, a very young side. You just ended up the last match you lost, I think. This match you came back very strongly, and now that you have finished in 13.3, that will definitely affect the run rate also. हम ऐसा टेबल टॉप कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ मैच बाय मैच जा रहे हैं और हर एक मैच इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. I would like to tell you that last time you were very soapy and slappy, the captain's changing, not coming in time, but you listened to what we said and you come to really appreciate that. That is what we want. Thank you very much. What would you like to tell your boys? Because I think you have 2 more matches to go. So what would you like to tell your boys? मैं ये बोलना चाहूँगा हमारे बॉयज को यही मोमेंटम कंटिन्यू करते रहेंगे और हमको चैंपियंस होना. Oh great, you have already said that you want to be champions. Get this moment. Keep continuing. Congratulations on your win today and all the best for the remaining matches. Thank you, Vijay. Thank you. Vijay Patil, the captain of Arjun Veer Sri Sai Social. Now plenty of awards to be given away. This first award to be given away at the hands of the past president Ashok Patil sir. The best catch, Ravi Pillai. There were lots of catches taken and dropped as well, but it was just that Ravi, he took a better catch, so Ravi Pillai. Next, for the maximum sixes, there were a lot of guys, 2-3 guys in contention. It is for that 6 which went out of the compound onto the road by Amay Bhatkande. No, then they have written Amay, so sorry, what is written to? The one who hit outside the ground. Yes, it is Sujay, then please come. Sorry, it's misprinted here. I just read out what is given to me, sorry guys, so Sujay, sorry. At the hands of Sadanand sir. Amay Bhatkande म्हटलं कोण सांगितलं हे नागे Sorry, I misjudged it. It was written as Amay. Sorry Amay, you can hit one more and you can take later on. Last but not least, we have to decide who to be the impact player. This award to be given away at the hands of Sri Shivaji Rao Mitrikar. So it is Dhruv Naik, the impact player who made an impact today. Dhruv.
He kept wickets today. In fact, not a regular keeper, I believe, but today in the match he is a regular keeper, but not given opportunity. He kept today, kept the wickets. It is Rudra who takes up the tape. Well played, Dhruva. You just be here. We need you for the photograph later. Thank you. Last but not the least, this award to be given away at the hands of Ashok Patil and everybody, the ex-president. For the man of the match, it was decided for a person who performed well. It was very difficult since there were just 113 on the board. The jury decided it should go to Arjun Patil. It's 4 overs, 9 runs and 3 wickets. A short scoring game, so it was decided for the bowler. Arjun, if you can have a word with me, it'd be a great help. Well, Arjun, how does it feel to get this man of the match? You got plenty of man of the matches earlier. How does it feel to get this one? So I feel really good to contribute for the team's win, and I would like to thank God for the performance. Yes, your performance came good. Just 4 overs and 9 runs. Really good. How did you bowl today? Oh, I was just doing the basics, and I was just trying to do what the captain asked me to do. Can we expect more performance from you with bat and ball? You did it with ball today. Didn't get an opportunity to do with the bat. But you are an all-rounder kind of person you are. We can expect more, something like this from you, many more. Yeah, I'll give my 100% usually. Well said, and congratulations on this win. May you keep winning and entertaining us, and also pick up some more man of the matches awards. Congratulations, Arjun. Thank you. Thank you very much. Please pick your man of the match award at the hands of the past president of Union Gymkhana, that is Ashok Patil sir. That's all that we have from the presentation. Once we finish up, we'll have the impact and the man of the match player for the photograph. The match has got over earlier than anticipated. Thank you very much all the people that you present here. Thank you Ashok sir, Sadanand sir, Shivaji Rao. Thank you very much. Thank you Chandrakant sir. Thank you. That's all that we have. For you people it is good night. Good night.
'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make. And I can help you decide who you're loving now, and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up, but my heart can't easily let you go. I try to tell myself this isn't love, and I hate that I never really know if I should stay or be alone. If I should stay
yeah, knows that I'm a goat. They don't want it, yeah, they scared of what I know. Told you the budget, yeah, I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, yeah. A lot of people back home on my back and they know. Trying to get on my line, cause the people I know. Manifest this year, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows. Manifest this year, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows. Yeah. Shorty loves it, yeah, loves that I'm a goat. Yeah. Yeah. I am the memory tracking you down, 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 down. I am the memory tracking you down. Back to the sound.
to please come for the toss with the list. Swapnil and Rahul Naik. Swapnil, please make it fast. You're not supposed to make the guest wait. Swapnil, away. You're listening to me? Please come quickly, my friend. Thank you. Swapnil, list. Tails is the call, and tails it is. It's tails. स्वप्निल क्या करना चाहोगे? फील्डिंग करना चाहेंगे. क्यों बोल के पूछूंगा नहीं करना चाहते. इतने रन पे आप रोकना चाहते. 130 140 तक रोकना चाहेंगे और चेस करेंगे सर. तब्दीली कोई चेंज नहीं है. सर एक चेंज है. तनिष नाइक आउट है और भरत गाड़ेकर इन. ये मैच आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आप जानते हो ये जीत पे अगर आप टेबल डिस्टर्ब कर सकते हो और आपका पैर काफी जमा सकते हो ऊपर 4 में. सर प्रेशर कुछ नहीं है. अपना 100% लेके बस. Play well and you entertain and make a better team. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. That was Swapnil. And well, Rahul, what would you do if you were the top? No, we would have batted first. And now that you've gone to bat first, how much you want to put up? Round about 160. That would be good. And I know that the kind of team you are, the Daddy's Army, you don't have anything much to stable, but you definitely have a point to prove to yourself and the others that you are a better team. Yeah, of course, things didn't go our way, but we want to prove this in these 2 matches we play and we give our best. So let's hope we play well and win this match. Definitely. And any change now today, if you have any change? Yeah, there are 3 changes it's mentioned in the list. Yes, you have big 3 changes now. Hope big changes come through. And may the better team win and you entertain and big from you as well. Yeah, hope so, sir. Hope so. All the best for this match, Rahul. All the best and thank you. Thank you, sir. Thank you. The news, that was Rahul Naik, the captain of Vishnu. The news from the center is that Swapnil Reddy, the captain of Sai Sports Hubli Tigers, has won the toss and elected to ball first. Well, we have 10 minutes, 5 minutes to walk in and 10 minutes the match will begin. And also, Sai Sports Hubli Tigers, if you want to choose the ball, please choose the ball. The umpires are waiting. Sai Sports Hubli Tigers, if any one of you want to choose the ball, choose it. Thank you.
beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I'm down and on my knees and I may fall as I'm so close to the edge. Cause you won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself off from the roof. Cause you fucking love it when I fade. Cause you won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself off from the roof. Cause you fucking love it when I fade. Take you home with me. Take you home with me. I don't get what you're saying. All of these games you're playing. Can't bother reading your message. No, I'm not here for your show, wasn't asking. But I've been quitting what you're taking. I've been sipping cause I'm making no regrets, I'm not insistent. Just go and be what you are, I'm not missing you, yeah. I'm fucking down with all this shit you told me. Just to God that I met you, damn you hold me down. All my fortune's just been wasted, all gone. Oh, you made me feel alone. You thought there's a cure. I went and let you be. Now I know for sure I don't wanna take you home with me.
विश्व स्ट्राइकर्स का हो रहा है और उनके सामने तगड़ी टीम खड़ी है साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स। टॉस जीता साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के कप्तान ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सलामी जोड़ी मैदान पर मिलिंद चौहान के साथ रोशन जवली। भरत गाड़ीकर दूर वाली छोर से गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए लेग स्टंप के बाहर गेंद को डाल रहे थे और इस लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को वाइड करार दी अंपायर सादिक। जी नहीं माफ कीजिए, मेरा ध्यान थोड़ा सा बढ़ गया था, तो पैड पर लगकर गेंद गई। ठीक बल्लेबाज सामने थे मेरे, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बहरहाल डॉट गेंद। ओ क्या जबरदस्त लॉक स्वीप खेला है मिलिंद चौहान ने और ये गेंद गई है सेंट जेवियर्स स्कूल्स में और उसके बाद वापस भी आई। सबसे बड़ा छक्का उस सीधे सेंट जेवियर्स के ऊपर जाकर गेंद गिरी। क्या शुरुआत की है मिलिंद चौहान ने बड़ी विस्फोटक तरीके से। पहली गेंद पैड पर लगी, लेकिन दूसरी गेंद थोड़ी सी ओवर पिच मिल रही थी, उस पर उन्होंने स्लॉक स्वीप खेला। क्या टाइमिंग थी, लाजवाब टाइमिंग, बढ़िया टाइमिंग के चलते छक्का बना, खाता खोला छक्के के साथ मिलिंद चौहान ने और विश्व स्ट्राइकर्स ने खाता खोला 6 रन बगैर किस नुकसान के। बड़ी धमाकेदार शुरुआत, विस्फोटक शुरुआत करते हुए मिलिंद चौहान। अब ये छक्का लगने के बाद बहुत सारी चर्चाएं चल रही है तमाम खिलाड़ियों के बीच में। विकेट कीपर अब हेलमेट विकेट कीपर राहुल शिंदे अब नजदीक आकर खड़े रहेंगे हेलमेट पहनकर। भरत गाड़ीकर दूर वाले छोर से एक और अच्छा ड्राइव ऑन ड्राइव खेला मिड विकेट के इलाके में। किरण तलड़ेकर डीप में खड़े हैं, उन्होंने गेंद को रोका। 1 रन के साथ 7 पर जा पहुंचे मिलिंद चौहान और विश्व स्ट्राइकर्स का स्कोर बनता हुआ 7 बगैर किसी नुकसान के। भरत गाड़ीकर की ये गेंद ओ छकाया सभी को छका कर गेंद गई। रोहित पोरवाल रोक नहीं पा रहे हैं, रोकी जा सकती थी ये गेंद, बल्ले का अंदरूनी से किनारा लेकर गई थी और इनसाइड एज लेने के बाद राहुल शिंदे को बहुत दिक्कतें पैदा हुई। शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े थे रोहित पोरवाल, लेकिन उनको भी मुश्किल बना उस गेंद को रोकने के लिए और ये 4 रन बने। इन 4 रनों के साथ रोशन जवली का विश्वसनीय स्ट्रोक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 4 कीमती रन अब उनके खाते में जा रहे हैं और रन संख्या बनी है अब 11। भरत की यह गेंद नीचे रही, अच्छी गेंद, गुड लाइन पर टप्पा खिलाया, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद गेंद ज़्यादा उठी नहीं, नीचे रह कर गई। लेकिन रोशन जवली ने कवच के इलाके में गेंद को खेला और कवच पर फील्डर खड़े हैं कप्तान स्वप्निल लड़बे, उन्होंने गेंद को रोका, कोई रन नहीं बना, वापस चले अपने बॉलिंग मार्ग पर भरत गाड़ीकर। इस बार गेंद को फिर एक बार कवच के इलाके में खेला, डाइव लगाई कप्तान ने। जैसे डाइव लगाकर गेंद को रोक रहे थे, वो देखने के बाद रन लेने का वैसे भी कोई इरादा नहीं था और 11 रन का ये ओवर भरत गाड़ीकर का समाप्त हुआ। तो पहली ओवर में एक विस्फोटक तरीके की शुरुआत हमें देखने को मिली। एक लंबा गगनचुंबी छक्का लगा रहे थे मिलिंद चौहान, उसके बाद एक इनसाइड एज लेकर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई फाइन लेग के ऊपर। तो कुल मिलाकर 11 रन इस ओवर में आने के बाद अब राजेंद्र दंगनवर के पास गेंद, अपने कोटे का पहला, पारी का दूसरा ओवर वो जारी करने के लिए तैयार और सामने खड़े हैं मिलिंद चौहान। विश्व स्ट्राइकर्स का यह 6ठा मैच है लीग में। साइड स्क्रीन की तरफ कुछ लोग हैं, इसलिए नहीं साइड स्क्रीन सरकाला बस
विश्रुत की अगर हम बात कर रहे थे तो पहले 5 मैचेस खेले हैं विश्रुत स्ट्राइकर्स की टीम ने इस लीग में, 2 में जीत 3 में हार, ऐसा उनका प्रदर्शन रहा है। और साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स ने पहले 4 मैचेस खेले हैं, 2 में जीत 2 में हार, ऐसा उनका प्रदर्शन रहा है। छठा मैच विश्रुत का, तो 5वां मैच लीग में चलता हुआ साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स का। तो अब ठीक ठाक बनता हुआ स्क्रीन, राजेंद्र दंगटावर लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी का मोर्चा संभाल रहे हैं फिरकी गेंदबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज, और उनके सामने खड़े हैं इस वक्त मिलिंद चौहान। 2 खिलाड़ी हैं मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के इलाके में। पहले 6 ओवर का अनिवार्य पावर प्ले जो है उसमें 2 ही खिलाड़ी रहेंगे 30 गज दायरे के बाहर। करारा ड्राइव खेला, लेकिन पॉइंट के ऊपर बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा भी देखने को मिलता हुआ। मिलिंद चौहान जब तक कि गेंद को रोकते फील्डर 1 रन का इजाफा कर चुके हैं। मिलिंद चौहान जा पहुंचे 8 के व्यक्तिगत स्कोर पर, पारी की रन संख्या बनी है 12। बगैर किस नुकसान के जीत अनिवार्य विश्रुत के लिए। इस गेंद को अच्छी फ्लाइट दे रहे थे, लेकिन रोशन जवड़े ने इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से धकेला। उसका बस के इलाके में गेंद गई, वहां पर गेंद फील्ड हुई। शायद यश कल्सन नंबर लगता है उस इलाके में, उन्होंने गेंद को रोका, कोई रन नहीं बना। लेग ब्रेक गेंद तकरीबन डाल रहे थे, गुगली किस्म की गेंद डाल रहे थे, लेकिन बैकफुट पर जाकर इस गेंद को मिड विकेट के इलाके में खेला। डीप में फील्डर मौजूद, लेकिन 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ अब रन संख्या आगे बढ़ती हुई 13 5 पर खेल रहे हैं रोशन जवड़ी, और 8 रन बनाकर 4 गेंदों में मिलिंद चौहान। बैकफुट पर गए, ड्राइव किया, लेकिन कवच के इलाके में सीधे फील्डर के पास गेंद को खेला। गैप नहीं ढूंढ पा रहे थे। स्ट्रोक तो अच्छा था, टाइमिंग बढ़िया बनाई, लेकिन उस कवच के खिलाड़ी को छका नहीं पाए, क्योंकि गली, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, ये घेरा बंदी करके रखी हुई है ऑफ साइड के ऊपर। और नीचे रही, इस बार ड्राइव किया, थोड़ी सी मिस फील्डिंग होती हुई, लेकिन मिलिंद चौहान तो तैयार नहीं थे रन लेने के लिए। खतरे को देखकर तकरीबन 4-5 कदम आगे बढ़ तो गए थे जबड़ी रन को लेने की कोशिश, लेकिन बाद में वापस भेजा उनको। डेड गेंद, तो हिंदी में क्या कहेंगे डेड गेंद को? मरा हुआ गेंद। बैकफुट पर गए, ड्राइव किया इस गेंद को, लेकिन रन नहीं मिलेगा। नंद कुमार मलतवाड़कर खड़े हैं, उन्होंने गेंद को रोका, और ये एक अच्छा ओवर, एक किफ़ायती ओवर समाप्त हुआ। पिछले ओवर में 11 रन आए, लेकिन इस ओवर में सिर्फ 2 रन आते हुए तो किफ़ायती गेंदबाजी और राजेंद्र दंगनवर करते हुए हमें नजर आए। पावर प्ले के दरमियान दोनों बल्लेबाजों को खामोश रखने में कामयाब हुए। इस तरीके से 2 ओवर में 13 रन बना रही है विश्व स्ट्राइकर्स की टीम, बिना कोई विकेट खोकर। फिर एक बार भरत गाडेकर दूर वाले छोर से अपने कोटे का दूसरा, पारी का तीसरा ओवर वो जारी करेंगे। सामना करेंगे रोशन जवड़ी, जिनका व्यक्तिगत स्कोर है 5, 1 चौका उनके खाते में शामिल। और मिलिंद चौहान खेल रहे हैं 8 रन बनाकर। 6 मैचेस में कुल मिलाकर 72 रन है रोशन जवड़ी के खाते में। इस बीच इस गेंद को खेला, लेकिन हल्के हाथों से एक्स्ट्रा कवर के इलाके में स्वप्निल लड़वे ने गेंद को रोका, कोई रन नहीं बना। मिलिंद चौहान 6 मैचेस खेले हैं, 77 रन कुल मिलाकर उनके खाते में बने हैं अब तक। आज एक बड़ी पारी की अपेक्षा जरूर। ये कॉट एंड बॉल का मौका बन सकता था, लेकिन बहुत तेज गेंद निकल गई भरत गाडेकर के ऊपर से, और 1 रन बना। थोड़ी हवाई स्ट्रोक खेल रहे थे रोशन जवड़ी, सीधी गेंद डाल रहे थे। हाफ वॉलीबर उस गेंद को लेकर खेला जरूर था, लेकिन 1 रन लॉन्ग ऑन की दिशा में दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ 6 पर जा पहुंचे अब रोशन जवड़ी। ये गेंद करारा ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में दंदना तो वह चौका मिलिंद चौहान के बल्ले से निकलता हुआ।
थोड़ी शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहे थे, थोड़ी जगह बनाने का मौका दे रहे थे, विड्थ मिली और जैसे विड्थ मिली टूट पड़े उस गेंद के ऊपर मिलिंद चौहान। एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से उस गेंद को उन्होंने निकाल दिया और ये दंदना तो वह चौका है। मिलिंद चौहान का स्कोर आगे बढ़ाते हुए 12, पारी की रन संख्या बनी है अब 18 बिना किसी नुकसान के। बड़ी धमाकेदार शुरुआत होती हुई। ओ इस बार गलत स्ट्रोक का चुनाव कर रहे थे मिलिंद चौहान, सीधी गेंद डाल रहे थे भरत गाड़ेकर, थोड़ी सी स्लोवर वन भी डाल रहे थे और कहीं ना कहीं जाकर मिलिंद चौहान स्लॉग स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद के लाइन से थोड़े से अलग होकर खेल रहे थे। इसका खामियाजा भुगत रही है टीम और खुद मिलिंद चौहान। गेंद के मेरिट के हिसाब से वो बल्ला नहीं चला रहे थे, गेंद की काबिलियत को वो पढ़ नहीं पा रहे थे, मन बनाकर वो खेल रहे थे, परिणाम स्वरूप क्लीन बोल्ड हुए। भरत गाड़ेकर महंगे ज़रूर साबित हो रहे थे, लेकिन अंततः उन्होंने मिलिंद चौहान का विकेट लिया। आउट होने से पहले 12 रन बना रहे थे, 9 गेंदों का सामना किया, एक छक्का एक चौका उनके खाते में शामिल था, लेकिन एक बड़ी पारी की अपेक्षा ज़रूर कर रहे थे उनके डगआउट में बैठे हुए तमाम खिलाड़ी, लेकिन आज 12 रन पर ही उनको वापस लौटना पड़ा है पेविलियन में। अब अंगदराज हिटलमनी आए हैं मैदान के ऊपर, पारी की रन संख्या 18 पर 1। अब तक 16 रन दिए हैं, 1.4 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं भरत गाड़ेकर। 16 रन देकर एक बड़ी मछली अपने अभी जाल में फंसाई है। मिलिंद चौहान जैसे विस्फोटक बल्लेबाज का विकेट उनके खाते में जाता हुआ। बढ़िया किस्म की गेंद डाल रहे थे, स्लोवर वन डाल रहे थे और इस स्लोवर वन पर बीट हुए और बोल्ड होकर वापस लौटे मिलिंद चौहान। अब अंगदराज हिटलमनी आए हैं मैदान पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं अंगदराज हिटलमनी। अब तक 6 मैचेस में 112 रन उनके खाते में बने हैं, सर्वश्रेष्ठ स्कोर उनका रहा है 54। तो रोशन जबड़ी 6 मैचेस में 73 रन वो कुल मिलाकर बना रहे हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है 53। तो दोनों के खाते में अर्धशतक जरूर हैं, लेकिन आज एक और बड़ी पारी होनी चाहिए क्योंकि जीत विश्व स्ट्राइकर्स को कहीं ना कहीं मौका बनेगा उनके लिए वो 3-4 में आने का, अगर जीत जाएंगे आज तो। कट किया उस गेंद को, ये पसंदीदा स्ट्रोक है बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में। बहुत बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा बनाते हुए नंद कुमार मलतवाड़कर थर्ड मैन के ऊपर से भागे वो, और इस थर्ड मैन के ऊपर जब तक कि वो गेंद को फील्ड करते थ्रो करते, अंगदराज के पास समय था 2 रन दौड़कर पूरा करने का। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 खाता खोलने में कामयाब अंगदराज। इस गेंद को फ्लाइटेड है, तकरीबन वो सीधी गेंद डाल रहे थे, अच्छी ओवरपिच गेंद को डाल रहे थे और अंगदराज हिटलमनी ने गेंद को कवच के इलाके में खेला। किरण तड़ेकर ने गेंद को उठाया, कोई रन नहीं बना। कामयाब ओवर की समाप्ति हो रही है भरत गाड़ेकर की। कुल मिलाकर 2 ओवर 18 रन 1 विकेट, ये रहा बॉलिंग विश्लेषण भरत गाड़ेकर का। तो 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद विश्व स्ट्राइकर्स की टीम 20 रन बना रही है 1 विकेट खोने के बाद। करते हुए कप्तान स्वप्नी लड़वे, और उन्होंने अब डोमिनिक फर्नांडिस को मोर्चे पर लगाया है और सामना करेंगे रोशन जबड़ी, जिनका व्यक्तिगत स्कोर है 6 एक चौके की मदद से। डोमिनिक फर्नांडिस की बहुत बढ़िया गेंद थी, यह शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ज़रूर थी, लेकिन बहुत अंदर की तरफ भी आई और इस अंदर की तरफ आती हुई गेंद को मिड ऑन के इलाके में खेला। किरण तड़ेकर मिड ऑन पर खड़े हैं, उन्होंने गेंद को रोका, कोई रन नहीं बना। अच्छी स्विंग, इन स्विंगिंग गेंद थी डोमिनिक फर्नांडिस की, शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ज़रूर थी।
हवा में खेला, लेकिन लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरी। बड़ा आसान छक्का बना रहे थे डोमिनिक फर्नांडिस की जो तेज़ गति की गेंद है, उस गति का बिल्कुल अच्छा इस्तेमाल किया रोशन जवड़ी ने और बढ़िया टाइमिंग बनाई उन्होंने। और इस लाजवाब टाइमिंग के चलते एक आसान सा छक्का वो बना रहे हैं। ज़्यादा कोई मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ी उस छक्के को जड़ाने में। बड़े आसान तरीके का छक्का रोशन जवड़ी के बल्ले से निकलने के बाद अब उनका स्कोर है 12, पारी की रन संख्या बनी है 26 एक विकेट खोने के बाद। विश्व स्ट्राइकर्स 26 for 1। डोमिनिक की गेंद, अच्छी गेंद, थोड़ी सी कमर की ऊंचाई तक उठकर आई, सीधी गेंद डाल रहे थे और इस गेंद को उन्होंने मिड ऑन की तरफ खेला। किरण तलेकर ने गेंद को उठाया, कोई रन नहीं बना। अच्छी वापसी डोमिनिक फर्नांडिस की, एक छक्का खाने के बाद वो एक डॉट गेंद भी कराते हुए रोशन जवड़ी को। डोमिनिक की गेंद, पंजों के ऊपर खड़े रहकर स्टीयर किया उस गेंद को, लेकिन उस थर्ड मैन के इलाके में सीधी फील्डर की तरफ ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर जा रही थी गेंद। दिशा दिखाने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन सीधी फील्डर की तरफ गेंद को खेला रोशन जवड़ी ने। कोई रन नहीं बना। गेंद फील्ड होकर वापस आ रही है डोमिनिक फर्नांडिस के पास। 26 पर 1 विश्व स्ट्राइकर्स। सीधा ड्राइव खेला लॉन्ग ऑन के इलाके में। किरण तलेकर ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन का इजाफा रोशन जवड़ी के खाते में। 13 पर जा पहुंचे रोशन जवड़ी। पारी की रन संख्या विश्व स्ट्राइकर्स 27 एक विकेट खोने के बाद। 27 for 1। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज अंगद चिटलमनी, जिनका व्यक्तिगत स्कोर है 2 रन, अब सामना करेंगे डोमिनिक फर्नांडिस का। तो दाएं बाई की जोड़ी जब तक मैदान पर है तब तक सभी को परेशानी होगी। फील्डर्स को बार बार अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, अंपायर्स को भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल अंपायर्स ने अपनी जगह नहीं बदली, पॉइंट पर ही वो खड़े हैं। सादिक कित्तूर, ओ इनसाइड एज, अंदरूनी किनारा लिया। थोड़ी सी हड़बड़ाहट के साथ उस गेंद को खेल रहे थे अंगद चिटलमनी, ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अंदरूनी किनारा लिया गेंद ने बल्ले का। फाइन लेग के ऊपर गेंद जब तक कि रोहित पुरवाल फील्ड करते, 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ ये ओवर भी समाप्त हुआ। 8 रन आए कुल मिलाकर इस ओवर में। 3 पर खेल रहे हैं अंगद राज, 12 पर खेलते हुए रोशन जवड़ी। तो कुल मिलाकर अब ओवर समाप्त हुए 4 और 7 रन प्रति ओवर के रफ्तार से 28 रन बना रही है विश्व स्ट्राइकर्स 1 विकेट खोने के बाद। मिलिंद चौहान आउट हुए। 12 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना किया था उन्होंने। 1 छक्का 1 चौका उनके पारे में शामिल, लेकिन भरत गाड़ेकर ने उनको बोल्ड किया था। अब गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए आए हैं दूर वाले छोर से किरण तलेकर। तो लगातार परिवर्तन करके देख रहे हैं, हर एक गेंदबाज को टटोल कर देख रहे हैं। स्वप्नी लेड़वे दंगन नंबर को 1 ओवर की गेंदबाजी करवाई, उसके बाद उनको विश्राम दिया। डोमिनिक फर्नांडिस को उन्होंने मोर्चे पर लगाया। दूर वाले छोर से उन्होंने ऑफ द टोस फ्लिक किया उस गेंद को मिड विकेट के इलाके में। गेंद 1 रन बनेगा। छक्का जड़ाने में कामयाब, क्या आसान नहीं है उस इलाके में छक्का लगाना, लेकिन बल्ले का मुंह पूरी तरीके से खोल कर उस गेंद को इनसाइड आउट के अंदाज में खेला।
उस कवच के इलाके में छक्का। रोशन जवड़ी के बल्ले से निकलने के बाद 19 पर जा पहुंचे रोशन जवड़ी, 35 पर 1। और टॉपेज लगकर गेंद हवा में, लेकिन मलतवाड़कर बहुत दूर खड़े हैं। एक टप अप करने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर गई, 4 रन के लिए है। ये टॉपेज लगी थी, गेंद किनारा बहुत बड़ा लेकर हवा में निकल गई, लेकिन बहुत फाइन गेंद गई। और मलतवाड़कर थोड़े स्क्वायर थर्ड मैन पर खड़े हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल बना वो, लेकिन ये चौका। रन आ रहे हैं जैसे भी हो विशुद्ध के लिए। रन संख्या बनी है अब 39। इस बार इस गेंद को अच्छा ड्राइव खेला, लेकिन सीधे मिड ऑफ के ऊपर बगैर किसी रन के। इस बीच डॉट गेंद तो किरण तड़कर अब तक 4 गेंदें डाल चुके हैं, 11 रन दिए उन्होंने। 23 पर खेलते हुए रोशन जवड़ी, 4 पर अंगद राज हिटल बनी। वो बोल्ड हुए, सीधी गेंद डाल रहे थे, बहुत ही खराब स्ट्रोक का चुनाव कर रहे थे, गेंद के मेरिट के हिसाब से नहीं खेल रहे थे। वो आगे निकलकर स्टंप्स को खुला छोड़कर खेल रहे थे, और उनका पूरा डिफेंस जो था उस डिफेंस को छकाने के बाद बोल्ड हुए। तो किरण तड़ेकर 11 रन तो दे रहे थे ज़रूर, लेकिन एक खतरनाक साबित हो रहे थे। रोशन जवड़ी को बोल्ड करने में कामयाब हुए। गलत स्ट्रोक खेला, सीधी गेंद डाल रहे थे। किरण तड़ेकर सफल होकर आगे निकले, गेंद के लाइन से हट गए, हटकर उस गेंद को खेलने की कोशिश, और इसका खामियाजा भुगतने के बाद 23 रन बनाकर वापस लौटे हैं पवेलियन में रोशन जवड़ी। तो 2 विकेट अब खो रही है 39 पर, 39 for 2। तो दोनों बल्लेबाज जो आउट हुए बोल्ड, दोनों ने स्ट्रोक की खेलने की गेंद के मेरिट के हिसाब से नहीं खेल पाए, गलत स्ट्रोक का चुनाव वो कर रहे थे, और उसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ा। बहरहाल अब आकाश दत्त प्रसाद जम्बो लेकर आ रहे हैं मैदान पर। उनको अब बल्लेबाजी करने के लिए दत्त प्रसाद आए हैं मैदान पर। तो किरण तड़ेकर 1 विकेट उनके झोले में जाता हुआ, भरत गाड़ेकर के खाते में 1 विकेट जाता हुआ। तो कुल मिलाकर अब 2 विकेट के नुकसान पर विश्व स्ट्राइकर्स 39 रन बना रही है, और ये पारी का 5वां ओवर चलता हुआ, आखिरी गेंद इस ओवर की। इसके बाद एक और ओवर पावर प्ले का रहेगा, और तब कहीं जाकर पावर प्ले का सिलसिला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगले ओवर तक पावर प्ले जारी रहेगा। अब दत्त प्रसाद आए हैं, एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल है, लेकिन 3 ही मैचेस खेले हैं, कोई ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं दत्त प्रसाद ने, और 3 रन ही उनके खाते में, 8 रन उनके खाते में है। कुल मिलाकर 8 रन ही खाते में है उनके, ज़्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला उनको। लेकिन आज एक बड़ी पारी खेलने की कोशिश उनके तरफ से होगी। किरण की गेंद, इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में खेला। नंद कुमार मलतवाड़कर थर्ड मैन के ऊपर से आकर जब तक कि गेंद को रोक कर थ्रो करते, खाता खोलने में दत्त प्रसाद कामयाब हुए। बैकफुट पर जाकर उस गेंद को उन्होंने दिशा दिखाने का काम किया थर्ड मैन के इलाके में। एक कामयाब ओवर की समाप्ति हो रही है। इस ओवर में कुल मिलाकर रन आए 12, लेकिन 1 विकेट भी मिला रोशन जवड़ी का, जो कि बड़े ही खतरनाक साबित हो रहे थे हुबली टाइगर्स के लिए। साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स। अब देखिए रन संख्या बनी है 5 ओवर के बाद 40, 8 रन प्रति ओवर के रफ्तार से रन बना रही है इस वक्त विश्व स्ट्राइकर्स की टीम। तो एक और परिवर्तन हमें देखने को मिलता हुआ, डोमिनिक फर्नांडिस को 1 ओवर के बाद विश्राम देकर खुद अब कप्तान मोर्चे पर लगे हैं स्वप्नी लेड़वे। रनों की रफ्तार ठीक है, 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से 40 रन बना रही है 45 ओवर में। इसी रफ्तार से भी अगर खेल को बचे 15 ओवर्स में अगर खेल को आगे बढ़ाएंगे तो भी 160 स्कोर बनेगा, और ये अच्छा स्कोर माना जाएगा इस मैदान पर। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाल रहे थे, हल्के से इस गेंद को धकेल कर खेला, और कवच के इलाके में जब तक कि फील्डर गेंद को रोकते 1 रन दौड़कर पूरा करने में कामयाब हुए।
दत्त प्रसाद और इसी रन के साथ 2 पर जा पहुंचे दत्त प्रसाद। पारी की रन संख्या बनी है 41, 2 विकेट के नुकसान पर। अंगदराज बाएं हाथ के बल्लेबाज। इस गेंद को कवच के इलाके में खेला और कवच पर जब तक कि गेंद को फील्डर रोकते 1 रन दौड़कर पूरा करने में कामयाब हुए। बयालीस 2 विकेट के नुकसान पर। नो बॉल का इशारा हो रहा है। नो बॉल के चलते फ्री हिट होगी। 1 रन दौड़कर भी पूरा कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब रन संख्या बनी है 44। नहीं दिया, बैट लगा तो बैट लेग बार नहीं दिया, बैट डालो। दिया तो ये करने का। करारा ड्राइव खेला, यहाँ पर 4 रन। किरण तलरेकर के पास कोई भी मौका नहीं था। क्या करारा ड्राइव खेला, जबरदस्त ड्राइव। अंगदराज हिटलमनी के बल्ले से निकलता हुआ ये दंदनाता हुआ चौका स्कोर को आगे बढ़ा रहा है। अब 48, 9 पर जा पहुंचे अंगदराज। ये पहला चौका उनके खाते में शामिल। चार, एक बार और थर्ड मैन के इलाके में गेंद गई है 4 रन के लिए। तो अब चौकों की बारिश हमें देखने को मिल रही है और स्वप्निल एड़वे अब तक थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। 4 गेंदों पर 12 रन उन्होंने दिए हैं। इस गेंद को आने दिया बल्ले के ऊपर, उसके बाद हल्के से मोड़ भर दी उस गेंद को। गेंद का आने का इंतजार कर रहे थे बल्ले के ऊपर और जैसे गेंद बल्ले पर आई मोड़ दिया उस गेंद को कलाई के सहारे स्क्वायर लेग के इलाके में। और जब तक कि वहां पर गेंद को फील्डर रोकते 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ अंगदराज हिटलमनी जा पहुंचे 14 पर और पारी की रन संख्या बनी है 53, 53 for 2। तेज गेंद डाल रहे थे लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ उस गेंद को थर्ड मैन के इलाके में खेला। 4 रन, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुए थे दत्त प्रसाद। थोड़ी तेज गेंद डाल रहे थे ऑफ स्टंप के बाहर। एंड वक्त पर अपना बल्ला उन्होंने चला कर खेला। बाहरी किनारा जानबूझकर लेने दिया बल्ले का दत्त प्रसाद ने और चौका बना। ये बहुत ही महंगा ओवर चला गया। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर था और इस अंतिम ओवर में 17 रन आए हैं। तो 57 रन 6 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद अंगदराज हिटलमनी अब जा पहुंचे 14 पर और दत्त प्रसाद खेल रहे हैं 7 रन बनाकर। तो बड़ी अच्छी शुरुआत कहूंगा। भले ही 2 विकेट खोए हो लेकिन रनों की रफ्तार बहुत बढ़िया चल रही है। अब देखिए 40 रन बने थे 5 ओवर में। 8 रन प्रति ओवर के रफ्तार से वो रन बना रहे थे लेकिन ये 17 रन का ओवर स्वप्निल एड़वे का समाप्त होने के बाद अब 9.5 रन रेट बनता हुआ। तो 6 ओवर में पावर प्ले में बढ़िया रन बने हैं 57। अच्छा स्कोर माना जाएगा 57 रन 9 ओवर में। 2 विकेट खोकर विश्व स्ट्राइकर्स दूर वाले छोर से के रन तड़ेकर मोर्चे पर लगे हैं। अंगदराज को अच्छी गेंद डाली, सीध में डाली। खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं और अपना सुरक्षा कवच बनाकर उस गेंद को खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा था किरण तड़ेकर ने। और गेंद सीधी बॉलर के तरफ आई। फॉलो थ्रू में गेंद को उठाकर धीरे धीरे ताना बना भूनते हुए वापस जा रहे अपने बॉलिंग मार्ग पर किरण तड़ेकर। अब क्या फील्डिंग लगाई गई है देखेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए थर्ड मैन है, गली, पॉइंट, स्वीपर कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ।
शॉर्ट गेंद डाल रहे थे, कट करने का प्रयास चला, गेंद थोड़ी सी नीची भी रही और राहुल शिंदे को घुटनों के बल बैठकर उस गेंद को रोकना पड़ा। उन्होंने गेंद को रोका, कोई रन नहीं बना। ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट और शॉर्ट फाइन लेग, ये 3 खिलाड़ी हमें ऑन साइड पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पर। ऑफ द टोस फ्लिक किया इस गेंद को, मिड विकेट के इलाके में गेंद, डीप में से भरत गाड़ेकर आ रहे हैं उस गेंद को उठाने के लिए, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पा रहे हैं अंगद राज हिटलमनी को। इस एक रन के साथ अब अंगद राज हिटलमनी जा पहुंचे 15 के व्यक्तिगत स्कोर पर। पारी की रन संख्या आगे बढ़ते हुए 58 रन 58, 2 विकेट के नुकसान पर विश्व स्ट्राइकर्स। टॉस जीता था साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स की टीम के कप्तान स्वप्निल रेलवे ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। उसके जवाब में अब तक 58 रन 2 विकेट खोने के बाद बना रही है विश्व स्ट्राइकर्स की टीम। स्टीयर किया इस गेंद को, थर्ड मैन के इलाके में रोहित पोरवाल खड़े हैं, साफ सुथरी फील्डिंग की है उन्होंने, लेकिन एक ही रन बनता हुआ। बहुत तेज गेंद जा रही थी उस थर्ड मैन के इलाके में, लेकिन बड़े चौकन्ने थे रोहित पोरवाल, उन्होंने बाउंड्री के करीब गेंद को रोका। एक रन के साथ अब अंगदराज दत्त प्रसाद जा पहुंचे 8 पर। पारी की रन संख्या 59, 59 for 2। किरण तड़ेकर की गेंद, फिर एक बार थोड़ी अंदर की तरफ आती हुई गेंद को बैकलिफ्ट कम करते हुए बल्ला नीचे लाकर हल्के से मोड़ दिया उस गेंद को मिड विकेट के इलाके में और एक रन बनाने के बाद अब विश्व स्ट्राइकर्स का स्कोर है 60-60, 2 विकेट के नुकसान पर। अब तक इन दोनों ने मिलकर 13 गेंदों में 21 रन जोड़े हैं तीसरे विकेट के साझेदारी में। ये थोड़ी सी दिलासादायक बात होगी विश्व स्ट्राइकर्स के लिए कि अब तक 13 गेंदों पर 21 रनों की साझेदारी चलती हुई। और बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे दत्त प्रसाद, अच्छी स्विंग हुई गेंद, उसके बाद बीट भी हुए दत्त प्रसाद। तो ये ओवर अब समाप्त हो रहा है किरण तड़ेकर का। इस ओवर में सिर्फ 3 रन आए, बड़ी किफ़ायती गेंदबाजी की है किरण तड़ेकर ने और अब ओवर समाप्त हुए हैं 7 और 7 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 60 रन बने हैं, 60 for 2 विश्व स्ट्राइकर्स। इससे पहले कि अब नए ओवर की शुरुआत हो, आगे का विवरण देने के लिए आएंगे माइक्रोफोन पर हमारे साथी कमेंटेटर चेतन बैलूर अंग्रेजी में। नो प्रॉब्लेम, धन्यवाद, मंडळ आभारी आहोत। ट्रॅकसूट कुठला घेतला जे नाही आला तरी चालतंय, आज सांभाळून घेते। Again off the back foot and flicking of his pads towards the square leg, Nandkumar Malatwadkar comes in and fields the batsman crossover for a single. With that single, the scorecard for that ticks along to 61 दोन झाले, एक डॉट एक डॉट सिंगल। played it uppishly, but the ball lands in no man region with that single as the batsman crossed over. The scorecard for the ticks along to 62 for the loss of 2 wickets. Again trying to cut it, a direct hit there, oh clear chance there, a fumble. You can't expect that from the bowler Swapnil Relve. Good piece of fielding there by the fielder at Gully.
and the batsmen survive. It was a good fielding and good throw as well, but nevertheless, Swapnil Yalve just didn't pick the ball there, didn't collect it properly. On the bounce, it was in front of him. And the chance goes begging. It would have been so easily third wicket. Nevertheless, single came of that. And in the end, dot ball now as the batsman going onto the back foot and trying to cut it in the cover region. Drive it, in fact, off the back foot. Going down on one knee and flicking it towards square leg for a boundary there. Boundary signal by umpire Mansoor Bade acknowledged by my scorer. 4 for the taking. With that 4, it also completes the over. So after the completion of 8 overs, scorecard reading 67 for the loss of 2 wickets. Angad Raj Hittalmani and Datta Prasad Jambavekar have managed to put up 28 runs of partnership. Angad Raj Hittalmani is batting on 18 of the 15 deliveries, and Datta Prasad Jambavekar is batting on 13 of the 9 deliveries that he has faced. 13 for Datta Prasad and 18 for Angad Raj, and both these batsmen together have put up 28 runs of partnership. Well, it is, you can see if that Ajaz Qureshi, one of the finest players of the tennis ball tournament, he's here to watch this beautiful game. So we also welcome Ajaz Qureshi. We can see him live on the television, on the TV screens. He's watching it very closely. Very interested in the game of cricket. Silently. They're going back to the match. Dominic comes up with his bowling quotas first over and innings 9th over. Batsman played a flick shot of his pads towards the deep square leg. The fielder comes in and fields the batsman crossover for another single. With that single taken, the scorecard for the limps along to 68. This is comparatively a quiet start for Vishrut as expected. Nevertheless, these two batsmen, Datta Prasad Jambavekar and Angad Raj Hittalmani, both Datta Prasad trying to cut him down, going onto the back foot, making some room for himself, trying to play that cheeky shot there, using the pace of the ball of the bowler Dominic Fernandez. Beaten, all ends up into the hands of the keeper for a dot ball. Not dot ball, the score still stands at 68. Again played it there. Oh, this time good stop there at wideish shot third man, in fact. Very difficult to understand what position he's fielding in, whether it was wideish third man or gully. Fine, but nevertheless, good stop, I would say. With that stop, as the batsman crossed over, another run for the taking. With that run, the scorecard for the ticks along to 69 for the loss of 2 wickets. Again played it all along the ground towards the long off for a single. With that single, the scorecard for the ticks along to 70 for the loss of 2 wickets. 8.4 overs have been bowled. 2 more deliveries before the completion of this over, and it is 8.4 overs, 70 for 2. Outside the off stick there, slightly ball keeping low and bouncing in front of the wicket keeper signaled by umpire Sadiq Kittur. Another one for the taking as the batsman crossed over. Not a clean take there in front of the wicket keeper as the ball bounced. Rahul Shinde, the wicket keeper, nevertheless 1 run for the taking in the form of buys.
Slightly short of length there. Good punch shot there. Oh, direct hit maybe would have been in trouble, but nevertheless, good fielding there by the fielder. Rajendra Danganavar coming in quickly from gully region and fielding the ball, and also had a shy at the stumps. He knew that if he had to hit the sticks, the batsman Datta Prasad would have been in trouble. The batsman crossover and survive, and good covering and backing up by Bharat Gadekar from mid wicket. The batsman crossover for a single and survive. So with that, last run also completes the over. So 9 overs have been bowled, and the scorecard reading 72 for the loss of 2 wickets. They're going at an run rate of 8 runs per over. 9 overs have been bowled, and the scorecard reading 72 for the loss of 2 wickets. So this change in bowling now, it is Nand Kumar Malatwadkar. Nandu coming into the act from the commentary box end to the batsman Angadraj Hittalmani, who's batting on 21 of the 18 deliveries, and Datta Prasad Jambavekar is batting on 14 of the 12 deliveries. Lofted drive there towards long off, and a couple of bounces. Does it go to Kiran Tarlekar, the fielder? The batsman crossover for another easy single. With that single, Angad goes to 22 and takes the scorecard ticking along to 73. We are in the 10th over of the innings, and tell you that 73 for 2, 9.1 overs. Oh, cheeky shot there, trying to go down on one knee and flicking it towards the fine leg. The fielder running behind it, maybe Yash, it is Yash Kalsanavar. Meanwhile, the batsman cross for 2. They'll have to settle down with 2 runs. Well, good stop. They're running behind the ball as well. It looked like a certain boundary. Nevertheless, 2 more for the taking. With those 2 runs, the scorecard for the ticks along to 75 for the loss of 2 wickets. Again, a similar kind of a shot there. Datta Prasad trying to go down on one knee and field it. Again, towards the wideish long leg. And another single for the taking, and good fielding by Yash Kalsanavar as well. With that single, the scorecard for the limps along to 76. 9.3 overs, 76. Played it uppishly there. Lofted, scooped drive. Long off drive towards long off. Kiran Tarlekar comes in and fields. Batsman crossover for another single. With that single, the scorecard further ticks along to 77. Full pitch delivery, playing with soft hands there towards the point region. Datta Prasad, nevertheless, dot ball importantly. 9.5 overs have been bowled, and the scorecard reading 77 for the loss of 2 wickets. Drinks will be called on to the field now. One more to go. 9.5. And no, says umpire. Good dot ball to finish the over. And 10 overs have been bowled, and the scorecard reading 77 for the loss of 2 wickets.
So then, nevertheless, it is 11 overs have been bowled, and the scorecard reading 83 runs. 11 overs, 83, and they're going at a run rate of 7.55 runs per over. 83 for 2. It's Nand Kumar Malatwadkar coming in there. Going down on one knee, and Datta Prasad Jambavekar again trying to paddle sweep it towards the mid wicket. The batsman crossover for a single. With that single taken, the scorecard further ticks along to 1 run of the bat and 84 for 2. Oh, good shot there. Inside out shot going to the pitch of the ball and driving it loftedly over the extra cover for a boundary. What a shot that was. A front foot lofted drive by Angad Rath Hittalmani. With that boundary, the scorecard now ticks along to 88, and Angad Raj Hittalmani goes to 32 of 25 with 4 boundaries. A well played 32 runs for Angad Raj Hittalmani with 4 boundaries of 25, and Datta Prasad Jambavekar is equally supporting him there well. 19 of 19 deliveries. Again, sweep shot there on the bounce towards the square leg. Rajesh Danganamar, one of the better fielders in the side. The batsman crossed for another single. With that single taken, the scorecard further ticks along to 89 for the loss of 2 wickets. Good shot there. This time we got to wait and watch. Oh, he puts it down. Who else it is? Dominic Fernandez, one of the better fielders. It's a huge 6 there. The ball flying past after hitting the hands. Even if he had to field well, the ball would have been inside. You don't expect that from a fielder like Dominic Fernandez. Well, Dom made a big mistake. It was a 6. Yes, that again, he telling that it's a 6. Fair play, definitely. And playing in the fairness of the game, Dominic telling it is a 6. We appreciate that, the fairness of the fielder telling that the ball was over the line, but nevertheless, the catch would have got taken. Good shot there of that 6, and again trying to play towards the third man using the pace of the ball, getting an thick inside edge, and the ball rolling onto the short fine leg. Rahul Shinde, the wicketkeeper himself, goes and fields the batsman crossover for a single. With that single, the scorecard further ticks along and limps to 96 for 2. Good 96 that they have made in 11.5 overs. Stepping it out, playing it loftedly towards long gone, and the fielder being Kitty Krishna Bagadi. Kitty, good fielding there on the bounce by Kitty. One more for the taking. With that single, it also completes the over. So after the completion of 12 overs, scorecard reading 97 for 2. 12 overs have been bowled, and the scorecard reading 97 for 2. They're going at a run rate of 8.08 runs per over. Datta Prasad Jambavekar has gone quickly to 26 of 21 with 1 6 and 2 boundaries. 26 for Datta Prasad, and Angad Raj Hittalmani is batting on 34 of 27. And let me tell you, both these together have put up a wonderful and good partnership of 58 runs in 44 balls. Good 58-run partnership between Angad Raj Hittalmani and Datta Prasad Jambavekar. 12 overs have been bowled, and the scorecard reading 97 for 2. Kiran Tarlekar, the Vadagaon Express, coming in now from the quarters end to the batsman Angad Raj Hittalmani. Kiran Tarlekar comes up with his bowling quota's 3rd over and innings 13th to the batsman Angad Raj Hittalmani. Again, playing with soft hands, trying to play on to the onside, was late into the shot, the ball hitting the bat, and defensive shot played, rolling onto the pitch area. The bowler himself in his follow through, fielding it for a dot ball. Who again dug it out of the block hole there, wideish on the offside. A Yorker length delivery.
Angad Hitalmani did well enough to just touch the bat at that Yorker length delivery outside the off stick. The ball rolls toward the short third man area. Swapnil Elve, the captain, comes in and fields. The batsman crossed over for a single. With that single taken, the scorecard for the ticks along to 98 for the loss of 2 wickets. Again, good shot there. Oh, straight to the fielder at gully. Rajendra Dangan there on the bounce. Did well enough. Simple regulation take there. On the bounce, good fielding and a good stop. Importantly, a dot ball. Width was offered there to the batsman from Kiran Tarlekar. And did it. Dattaprasad Jambavekar had a cut at it. But straight to the fielder at gully for a dot ball. Again, converted into a full toss. A Yorker length delivery. The ball going towards the square leg. 2 was the call, but just given away 1. Good fielding there by the fielder at square leg, coming in quickly. Sarfraz Mullah, the fielder there, came in quickly and fielded just to give away a single. With that single, the scorecard for the ticks along to 99. 12.4 overs have been bowled. 2 more deliveries before the completion of this over. Kiran Tarlekar to Angad Hitalmani. Good shot there off the front foot, wideish off long on. Dom coming in and fielding. This time, good single and good fielding as well. With that, 100 comes up on the board for Vishrut Strikers. 100 runs, 100 for 2. 12.5 overs, 100 runs for 2 wickets. Those 2 wickets to go down were of Milind Chavan, got 12 runs of the 9 deliveries, and Roshan Javli got 23 of the 16. Again, trying to cut him down late, wanting to play him late there. Beaten all ends up into the hands of the keeper for a dot ball. Good dot ball to finish the over. Well, Kiran Tarlekar has given away 18 runs in the 3 overs that he has bowled. The Vadgaon Express, Kiran Tarlekar has given away 18 runs in the 3 overs that he has bowled and picked up 1 wicket. That 1 wicket that Kiran Tarlekar picked up was of Roshan Javli. Roshan Javli, who got 23 before he was dismissed, clean bowled by Kiran Tarlekar. Roshan Javli got 23 of 16 and Milind Chavan got 12 runs of the 9. And I think it would be Rajendra Danganawar coming into the act. Rajendra Danganawar coming into the act with his bowling quotas. Third over and innings 14th to the batsman Angad Hitalmani. Angad Raj is batting on 36 of the 30 deliveries that he has faced, and Dattaprasad Jambavekar is batting on 27. And the partnership 61 between them now. Good partnership. Stepped out and played it loftedly. The ball falling short of a long on fielder in front of the commentary box. That is Swapnil Elve, the captain himself. Good fielding, but a bad throw, I would say. It would have straight away gone to the keeper into the hands. Nevertheless, just a single for the taking always. With that single, the scorecard for the ticks along to 101, 101. For those who have joined in late, let me tell you, Swapnil Elve, the captain of Sai Sports Hubli Tigers, won the toss and elected to ball first. A reverse sweeper straight to the field, a Kitty there, and Kitty at the gully and point. Misses the ball completely before he could field it neatly. The batsman take the advantage and cross over for a single. Good shot there, I would say. A reverse sweep by Dattaprasad, going down and one knee and reversing reverse sweep play to the bowler Rajendra. Slightly short of length of his pads did he play it. Rohit Purwal running behind it towards the fine leg. Square leg fielder comes in and fields. Nandkumar, I believe, Maratwalkar. 2 more for the taking. Good fielding as well and good running in between the wickets by these 2 batsmen. With those 2 runs, the scorecard for that ticks along to 104 for the loss of 2 wickets. With those 2 runs, Angad Hitalmani goes to 39. Again, cutting him there to wideish of deep point there, wanting to the fielder. Bharat Gadekar comes in and fields. Good fielding there by Bharat Gadekar on the bounce. Does it come inside just to give away a single? With that single, the batsmen have to
satisfy themselves and take the scorecard ticking to 105 for the loss of 2 wickets. Wide signal there by umpire Mansoor Baldebai. You can see that after the ball hitting the ground and then going to the wicket keeper. Good take there by the wicket keeper, standing up to the stumps. Again made some room there and cut it towards the widest of point. Sarfraz Mullah coming in and then fielding it on the bounce there towards the field on the bounce. Good fielding, I would say. Good take as well by Rahul Sindhu, standing up to the stumps. Another single for the taking. With that single, the score further moves to 107 for the loss of 2 wickets. Again, cutting it down straight to the odd bounce there. A good fielding, I would say, by the batsman. By the fielder as well. Good shot, but good stop there for a dot ball. With that dot ball, it also completes the 14th over and the score cut leaving 7. I was just trying to imitate Michael Holding, one of the finest commentators that I've ever seen. So to tell you that. Well, I was just trying to try because one of my friends told me I want to listen to you how it looks when a West Indian can speak. So Michael Holding, one of my favorite commentators, it was very nice to imitate him, to try to imitate him. Nevertheless, coming back, it is 14 overs have been bowled and the scorecard reading 107 for the loss of 2 wickets. They are going at a run rate of 7.64 runs over. 107 for the loss of 2 wickets. 14 overs have been bowled. I would say it is a good run, healthy run rate at 7.64. Datta Prasad Jumbo Wicker is batting on 29 of 26. Good 29 runs for Datta Prasad Jumbo Wicker. He's coming into the groove, into the slot, coming into this team of Vishnu strikers. And Angad Raj Hittalmani is batting on good 40 runs of 34. Importantly, these two batsmen together have put up a partnership of 68 runs. From middle and off towards the wideish mid wicket. Oh, chance, we got to wait and watch. Oh, and run out there in the end. There was no 2 runs for the taking. Let me tell you that it was just a single. One of the better and the finest fielders, that is Yash Kalsanavar, coming in quickly at the mid wicket. And let me tell you, it is gone, a wicket thrown indeed. Datta Prasad a good piece of fielding there by Yash Kalsanavar from deep square leg and mid wicket. Did he come in quickly? Datta Prasad Jumbo Wicker was not looking at the fielder. He was just interested in taking 2 runs. Meanwhile, a good batting there by Datta Prasad Jumbo Wicker. Got magnificent 30, good 30 runs of 27 deliveries. He was looking very good and dangerous, but he's run out now. And no mistake of Angad Raj. Angad Raj knew that he's one of the better fielders and you should not run. And Datta Prasad Jumbo Wicker threw his wicket away by himself, trying to take take that second. Nevertheless, 70 runs of partnership there. Good 70 runs of partnership between Datta Prasad Jumbo Wicker and Angad Raj Hittalmani.
Datta Prasad and Angad Raj put 70 runs together and took the score to 109 for 3 now. Angad Raj Hittalmani is batting on 41 of 35 deliveries, and to join him is the captain, the big man, Rahul Naik. Well, today slightly Rahul Naik has come up the order. We have seen him always coming up down the order after 5 or 6 wickets, but today he's coming at number 5 after the loss of 3 wickets. Rahul Naik to face Bharat Kadekar. Going onto the back foot and punching it towards mid wicket. Kiran Tarlekar comes in and fields the batsman, crossover for another single. With that single, the scorecard further ticks along to 110 for the loss of 3 wickets. With that single, Rahul Naik opens his account and crosses over, and the scorecard reads 110. Again, flicked it off his pads there towards the deep square leg. Again, Yash Kalsanavar straight to the fielder Rahul Shinde for a single. Good fielding, I would say. As the batsman crossed over for the single, the scorecard moves to 111, 111 for 3, 14.4 overs. 2 more deliveries before the completion of this over. Oh God, again punched it off the back foot there, getting that big back lift of the bat and punching it towards long off the back foot drive. Another single for the taking. With that single, Rahul moves to 2 and takes the scorecard ticking to 112. Good cut shot there to the field. Oh, fumble there. It looked like an easy stop there to Malatwadkar, Nandkumar Malatwadkar, missing it completely at the shot third man. It looked like he's going to stop it. One of the better fielders in this side. We have seen earlier Nandkumar Malatwadkar fielding very well, but not today on this ball. Diving to his left, trying to stop it, missed it completely, and 4 runs for the taking. With that 4 runs, it also completes the overs. After the completion of 15 overs, scorecard reading 116 for the loss of 3 wickets. With that boundary, Angad Raj Hittalmani goes to 46 of 37. Rahul Naik is batting on 2 of 2. 15 overs have been bowled and the scorecard reading 116 for 3. 15 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 116, 3 विकेट के नुकसान पर. 15 ओव्हरचे षटकारानंतर धाव संख्या झाले 116, 3 गडी बाद. Good shot there this time, right over the big 6 there. Well, Anil, you have to run up quickly there. The ball has gone inside. We could see that right over the commentary box. The ball has just gone inside. It is there. At least give us 2 minutes of time, Mansoor Bhai, till the ball comes. Or you always have the chance. Or the ball coming. ಹದಿನೈದು ಓವರ್ಗಳು ಆದಾಗ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿತ್ತು 116 ರನ್ನುಗಳು. 6 ರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸಿ 122, 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 15.1 ಓವರ್ಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ 122 ರನ್ನುಗಳು ಓಟಗಳು 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 15.1 ओवर के बाद स्कोर हुआ 122, 3 विकेट के नुकसान पर. How was my other English? Did you listen? No. Yes. That was Michael holding for you. And it was also Marathi I spoke for you. I don't know Marathi, but still I spoke in Marathi.
Swapnil Yadav comes in and fields it just to keep away a single. So with that single, Rahul Naik moves to 9, and that gets Angadraj Hittalmani on strike, who's batting on 46. What a shot that was at the bat of Rahul Naik for a huge 6 earlier. Shot of length again, cut it to the sweeper cover. Bharat Gadekar comes in and fields the batsman crossover for a single. With that single taken, the scorecard moves to 124 for the loss of 3 wickets. Again, a lofted drive there, but Swapnil Yadav trying his best and just over the line for a huge 6 there. This is the kind of Rahul Naik that we have seen earlier, and he's cutting it loose to say as he has come up the order. With that 6, the scorecard further moves to 130, and Rahul Naik moves to 15 of 5 deliveries. They have a point to prove today. This afternoon when I was talking to Rahul Naik, the captain, he said, we have nothing to lose but prove a point that they are one of the better teams and better players in this side. Shot of length there, trying to hit a big one. Rajendra coming himself. Oh, he takes it in the end. Yes, he'll be a happy man. Rajendra Danganawar picks that wicket of Rahul Naik. Rahul Naik back to the hit after hitting 2 big sixes. He got 15 runs in just 6 deliveries that he faced. So 15 runs for Rahul Naik. A good short cameo innings comes to an end at the fall of the captain Rahul Naik himself. So at the fall of Rahul Naik, the scorecard reads 140 for 4. Definitely we have plenty of overs left and they can score and pile up some runs there. So Madan Belgaonkar walks onto the crease. Maddie walks onto the crease at the fall of Rahul Naik, captain, who managed to get 15 runs of the 6 deliveries that he faced. 15.5 overs have been bowled and the scorecard reading 130 for 4. बॉल उठा के जरा अंदर रखना है चेंज मत देना है बोलता हूं मैं going over the back foot and again pulling it towards square leg. Nandkumar Malatwadkar this time at the deep square leg as the batsman crossover for a single. With that single, the scorecard moves to 131 after the completion of 16 overs, and Angadraj Hittalmani moves to 47. मुंह में डाला है तो मुंह में डालने को क्या सवाल नहीं एक इनिंग सांग बच्चा और आराम रेस्ट करो जरा जो भी कुछ फैन डाउन दे दो अगले जवाब न दो good shot there, but yes, up goes the finger there. Angadraj trying to go down on one knee and trying to sweep it. Nevertheless, he was caught in front of the wicket. Just LBW, a magnificent inning comes to an end of the bat of Angadraj Hittalmani. Angadraj Hittalmani got 47. Wonderful 48 did he get there. Angadraj Hittalmani, a magnificent 48 of 40 balls. Missed out on a 50 there, trying to sweep across the line, trying to go down on one knee. He was caught in front of the wicket, judged LBW.
and fifth wicket goes down there. So 2 wickets in succession in the form of captain Rahul Naik and set batsman Angad Raj Hittalmani. Well played for his magnificent 48, Angad Raj Hittalmani, of 40 balls. Nevertheless, 16.1 overs have been bowled and the scorecard reading 131 for 5. Rabani Dafedar there at the crease at the fall of Angad Raj Hittalmani. Watchfully played of the bowling of Bharat Gadekar. Bharat Gadekar has picked up 2 wickets, given away 27 runs in his bowling quota of 3.2 overs. Another 4 balls left over in this. Again, half-hearted appeal there, but of the bat, I believe, not really interested. The umpire, the bowler, and the wicket keeper also. Not a loud shout, just saying how was that, but nevertheless, they knew that it was of the bat. And one more dot. So 2 dot balls in succession there. Again, trying to hit a big one there. Beaten all ends up there. Rohit Porwal coming behind it towards the fine leg. Got the inside edge of the bat and ball rolling on towards the fine leg. You really can't set the field for this kind of a shot. And 4 more for the taking. With those 4 runs, the scorecard further ticks along to 135 for the loss of 5 wickets. 16.4 overs have been bowled and the scorecard reading 135 for the loss of 5 wickets. With that boundary, Rabani Dafedar opens up his account with that boundary and goes to 4 runs. Maddie Madan Belgaumkar has still yet to open the account. Trying to hit a big one there. What a shot that is. You got to wait and watch. 6 there of the toes. It's called as a stand and deliver. Big back lift and hitting it over the long off, as the long off fielder slightly being wideish. And with that 6, the scorecard moves to 141. They've got a good score there. 141 for 5. Again, trying to go down and one knee, trying to confuse the batsman there. Sarfraz Mullah coming in from square leg and fielding the batsman crossover for a single. With that single, Rabani Dafedar moves to 11 runs of the 5 deliveries and the scorecard reading 142 for the loss of 5 wickets. 17 overs have been bowled and the scorecard reading 142 for the loss of 5 wickets. As there is change in bowling, there is change in commentary. I ask my co-commentator to take on in Hindi. तगड़ा स्कोर खड़ा करने में अब तक कामयाब हुई है। 5 विकेट खोई है विश्वट की टीम ने, लेकिन अभी भी 17 ओवर का खेल पूरा हुआ है। अभी भी 18 गेंदों का खेल होना बाकी है। रबानी दफेदार और मदन बेलगांवकर, ये 2 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज मैदान पर। हो एज लेकर गेंद गई है, बड़ा सा किनारा लिया है, थर्ड मैन की दिशा में इनसाइड आउट खेलने का प्रयास कर रहे थे रबानी, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लिया। थोड़ी अच्छी उछाल लेकर गेंद जा रही थी, डोमिनिक फर्नांडिस की अच्छी आउटस्विंगिंग गेंद थी, लेकिन थर्ड मैन के ऊपर जब तक कि गेंद को फील्ड करते 1 रन के साथ 12 पर जा पहुंचे रबानी। पारी की रन संख्या 143, 5 विकेट के नुकसान पर। 143 फॉर 5। ओहो, ये थोड़ी सी ठहर कर आई गेंद, टप्पा पड़ने के बाद
थोड़ी फंस कर जा रही थी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। बाय का 1 रन दौड़कर पूरा किया। विकेट कीपर राहुल शिंदे बहुत दूर खड़े हैं और सफाई के साथ उस गेंद को रोक नहीं पा रहे थे जो कि नीचे रहकर आ रही थी उनके लिए। दस्ताने से लगकर गेंद थोड़ी सी छिटक कर गई और दोनों ने मिलकर 1 बाय का रन पूरा किया। 144 5 विकेट के नुकसान पर। डोमिनिक फर्नांडिस सीधा ड्राइव खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में। किरण तर्लेकर हैं उस इलाके में और ये देखिए किरण तर्लेकर सबसे बेहतरीन फील्डरों में से एक है, लेकिन उनके तरफ से भी थोड़ी मिसफील्डिंग हमें नज़र आ रही है। और जैसे देखा कि किरण तर्लेकर के हाथ से गेंद छिटक रही है, दूसरा भी रन दौड़कर पूरा किया है रबानी दफेदार और मदन बेलगांवकर मिलकर और रन संख्या बनी है अब 146 5 विकेट के नुकसान पर। तो ये कहीं ना कहीं बढ़िया गेंद डाल रहे थे, थोड़ी स्लोअर वन डाल रहे थे, गति में थोड़ा सा परिवर्तन ला रहे थे डोमिनिक फर्नांडिस और एक पुल शॉट खेलने का मन पहले ही बना रहे थे रबानी दफेदार। उन्होंने बल्ला चलाया ज़रूर, लेकिन इस मर्तबा गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। राहुल शिंदे विकेट के पीछे खड़े हैं, उन्होंने गेंद को गैदर किया बगैर किसी रन के। और यॉर्कर बहुत बढ़िया स्टॉक गेंद का इस्तेमाल किया, लेकिन उतनी ही सफाई के साथ उस गेंद को खोद कर खेला। बल्ले का अंदरूनी से किनारे लेकर गई स्क्वायर लेग की दिशा में। भरत गाड़ेकर है उस इलाके में, उन्होंने गेंद को रोका, लेकिन 1 रन दौड़कर रबानी ने पूरा किया। रबानी जा पहुंचे 15 के व्यक्तिगत स्कोर पर। पारी की रन संख्या 147 147 फॉर 5। पारी का 8वां ओवर चलता हुआ और आखिरी गेंद इस ओवर की। ओ फिर एक बार इनसाइड एज लेकर गेंद गई है स्क्वायर लेग की दिशा में। भरत गाड़ेकर हैं, उन्होंने गेंद को रोका। 1 रन दौड़कर पूरा करेंगे। दूसरे की मांग कर रहे थे रबानी, लेकिन खतरे को देखकर मदन बेलगांवकर उनको वापस लौटा रहे थे। अन्यथा निश्चित तौर पर एक और खतरा नजर आ रहा था हमें, लेकिन अंततः खतरा टालने में कामयाब। तो ये ओवर समाप्त हुआ डोमिनिक फर्नांडिस का। तो कुल मिलाकर 18वें ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 148 रन बना रही है विशु स्ट्राइकर्स 5 विकेट के नुकसान पर। मिलिंद चौहान 12 रन बना रहे थे। रोशन जबड़ी 23 शानदार पारी खेली। नर्वस 40 के शिकार बने, लेकिन अंगद राज हिटलमनी 48। उसके बाद राहुल दत्त प्रसाद जम्मू लेकर 30 रन की आकर्षक पारी खेली। उन्होंने राहुल नाइक 15 रन बनाकर आउट हुए। अब ये जोड़ी मदन बेलगांवकर और रबानी दफेदार मैदान पर हैं। अब कुल मिलाकर 12 गेंदों का खेल बचा है। तो क्या 20 रन और जोड़ पाएंगी इन 12 गेंदों में? 20 या 25? 175 का क्या टारगेट रखने में कामयाब होंगे या फिर 165 के अंदर रोकने की कोशिश करेगी साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स की टीम? ये हम आगे चलकर देखेंगे। फिलहाल किरण तर्लेकर के पास गेंद। अब तक 3 ओवर 18 रन 1 विकेट। ये रहा उनका बॉलिंग विश्लेषण। शॉर्ट गेंद डाल रहे थे, लेकिन बहुत बाहर गई गेंद और अंपायर सादिक कित्तूर ने बाहें फैलाकर वाइड का इशारा किया। इस 1 रन के साथ विशु स्ट्राइकर्स 149 149 फॉर 5। टप्पा बड़ा अच्छा डाल रहे थे, लेकिन दिशा से थोड़े भटक गए। गेंद ज़्यादा स्विंग हुई, ज़रूरत से ज़्यादा स्विंग होने की वजह से वाइड गेंद करार दी। इस बार राहुल शिंदे को दिक्कतें हुई उस गेंद को रोकने में। दूसरे रन के लिए पलटे, लेकिन नंद कुमार मलतवाड़कर का थ्रो बहुत ही कमज़ोर बना। एक और वाइड का इशारा हो रहा है। 2 रन भागकर भी पूरे किए। कुल मिलाकर 3 रन। अब 150 का आंकड़ा पार करने में कामयाब विशु स्ट्राइकर्स 152 5 विकेट के नुकसान पर। तो अभी तक कोई गेंद नहीं डाल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर 4 रन आए हैं वाइड के, वो भी किरण तर्लेकर की अगली गेंद। इस बार सटीक गेंद डाली, अनुशासित भरी गेंद डाल रहे हैं। 2 वाइड गेंदों के बाद अब किरण तर्लेकर एक अच्छी गेंद डाल रहे हैं मदन बेलगांवकर के लिए। थोड़ी लंबाई भरी गेंद डाली, फुल लेंथ डिलीवरी डाली उन्होंने, लेकिन मदन बेलगांवकर खड़े खड़े बल्ला चला रहे थे, फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और गेंद उनको चकमा देने के बाद गई विकेट कीपर राहुल शिंदे के दस्तानों में बिना किसी रन के।
फिर एक बार अच्छी बाउंस कर गई गेंद, गुड लेन पर टप्पा खिलाया, जैसे सीम पर गेंद गिरी अच्छी उछाल लेकर गई। मदन बेलगांवकर जगह बनाकर उस गेंद को कुछ अपर कट के अंदाज में खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मात खा गए। तो अच्छी गेंदें डॉट डालने में कामयाब। 2 वाइड गेंदें डालने के बाद किरण तलेकर, रन संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं है, 152 पर 5। और अब स्लॉट में गेंद दे रहे हैं और ये गगनचुंबी छक्का लगता हुआ रोड के ऊपर जाकर गेंद गिरी और ये बहुत बड़ा छक्का, शायद कार के ऊपर गेंद गिरी हो। क्या लंबा छक्का मदन बेलगांवकर जड़ा रहे हैं। स्लॉट में गेंद डाल रहे थे, पाले में गेंद मिली और जैसे पाले में गेंद मिली उस गेंद को उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उठा दिया और ये गगनचुंबी छक्का जिमखाना का मैदान छोड़कर सामने वाले पुलिस क्वार्टर्स के तरफ गई। वहाँ पर एक कार खड़ी है, उस पर गेंद गिरी लेकिन वापस भी बहुत जल्दी आई। तो ये छक्का लगने के बाद अब रन संख्या बनी है 158। इस छक्के के साथ मदन बेलगांवकर जा पहुँचे 7 के व्यक्तिगत स्कोर पर और कुल मिलाकर विश्व स्ट्राइकर्स एक अच्छी स्थिति में है। अब तक 19वां ओवर खेल चलता हुआ। इस बार यॉर्कर लेन की गेंद को लो फुल टॉस में तब्दील करते हुए खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में और लॉन्ग ऑन के ऊपर जब तक कि गेंद को रोकते 1 रन दौड़कर पूरा किया। 8 पर जा पहुंचे मदन बेलगांवकर। पारी की रन संख्या बनी है 159, 5 विकेट के नुकसान पर 159 for 5। रबानी दफेदार बड़े विस्फोटक तरीके के बल्लेबाज हैं। 1 छक्का 1 चौके के साथ 15 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। अब किरण तलेकर तैयार हो रहे हैं इस ओवर की 5वीं गेंद डालने के लिए। ओ जगह बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, गुड लेन पर टप्पा खिलाया, अच्छी उछाल ले रही थी गेंद और इस उछाल भरी गेंद के ऊपर आने के बजाय वो थोड़ा सरक कर खेलने की कोशिश कर रहे थे और उस सरकने की वजह से गेंद उनको चकमा देकर गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद ऐसे समय पर कर रहे हैं किरण तलेकर, जहाँ पर रन रोकना बड़ा ज़रूरी है। इस ओवर की हम बात करें तो अब तक वाइड को मिला के 11 रन दे रहे हैं किरण तलेकर। ओ फिर एक बार छकाने में कामयाब। बहुत बढ़िया लाइन लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए किरण तलेकर इस ओवर में थोड़े से महंगे ज़रूर साबित हुए, लेकिन कई अच्छी गेंदें भी डाली जहां पर उन्होंने बल्लेबाजों के लिए लगातार सवाल खड़े किए। कई सवाल पूछे उन्होंने, खासतौर पर रबानी को 2 मरतबा सवाल पूछे, 2 मरतबा उन्होंने सवाल पूछे थे मिलिंद बेलगांवकर को। लेकिन अब 19वीं ओवर का खेल समाप्त होने के बाद अब 159 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना रही है विश्व स्ट्राइकर्स की टीम। आखिरी 6 गेंदें इस इनिंग्स की। डोमिनिक फर्नांडिस मोर्चा संभालने के लिए तैयार। अब तक 3 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं डोमिनिक फर्नांडिस, कोई मेडन नहीं रहा उनका। बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है, 17 रन दिए हैं लेकिन कोई विकेट नहीं है उनके खाते में। अच्छा ड्राइव खेला, एक्स्ट्रा कवर के तरफ गेंद, लॉन्ग ऑफ से स्वप्निल लड़वे भागे, बहुत तेज दौड़कर दूसरा भी रन नहीं पूरा कर पाए मदन बेलगांवकर। अच्छा थ्रो किया था, टप्पा पड़ने के बाद गेंद राहुल शिंदे के दस्तानों में आ गई और लंबे लंबे डग भरने के बाद भी पहुंच नहीं पाए अपने लक्ष्मण रेखा के अंदर मदन बेलगांवकर। 1 ही रन बना उनके खाते में, लेकिन रन आउट हुए वो दूसरा रन बनाने के चक्कर में। तो कुल मिलाकर अब 6 विकेट खो रही है विश्व स्ट्राइकर्स की टीम 160 रन पर। मदन बेलगांवकर 9 रन बनाकर आउट हुए। 7 गेंदों का वो सामना कर रहे थे। एक गगनचुंबी छक्का उन्होंने जड़ा दिया था पिछले ओवर में किरण तलेकर की गेंदबाजी पर, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य कहना चाहिए कि अब वो ऐसे मौके पर रन आउट हुए हैं जब उनका रहना ज़रूरी था मैदान पर। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं है। लेकिन मनोज पाटिल हैं, एक ऐसे बल्लेबाज हैं मनोज पाटिल, ये भी बड़े आक्रामक किस्म के बल्लेबाज हैं मनोज पाटिल। अब 5 गेंदों का खेल बाकी है, देखेंगे क्या 175 बना पाएंगे। ओ बोल्ड हुए, बहुत बढ़िया यॉर्कर लेन के गेंद डाल रहे थे मनोज पाटिल को और पहले से ही वो बिल्कुल जगह बनाकर खेल रहे थे। स्टंप्स को बिल्कुल खुला छोड़ा था उन्होंने
और उस खुले स्टंप्स के ऊपर सीधी गेंद डाल रहे थे डोमिनिक फर्नांडिस। तो मनोज पाटिल हाजिरी लगाकर वापस लौटे हैं पवेलियन में। किसी को तकलीफ नहीं दी, ना स्कोरर, ना कमेंटेटर, ना गेंदबाज को किसी को तकलीफ नहीं दी। मनोज पाटिल ने हाजिरी लगाकर वो वापस लौटे हैं पवेलियन में। तो गेंद के लाइन में आकर खेलना चाहिए था, लेकिन गेंद के लाइन से आप अलग होकर खेलने की कोशिश करोगे तो बॉलर कहीं ना कहीं वो ऐसी स्टॉक गेंद का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर जाकर गेंद स्टंप्स पर लगेगी। और ऐसे ही हुआ। डोमिनिक फर्नांडिस ने जैसे देखा कि वो स्टंप्स खुले छोड़कर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, एक सटीक यॉर्कर डाली और जिस पर मनोज पाटिल बोल्ड हुए। 7वां विकेट खो रही है विश्व स्ट्राइकर्स की टीम। नए बल्लेबाज मैदान पर सुनील पाटिल आ चुके हैं। एक और अच्छी यॉर्कर डाली, लेकिन इस बार गेंद के लाइन में आकर खेला। ये सही तरीका होता है यॉर्कर लेन की गेंद को खेलने का, और सुनील पाटिल ने वो सही तरीका अपनाया और इस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर खेलकर खाता खोला सुनील पाटिल ने। पारी की रन संख्या बनी है 161 रन 7 विकेट के नुकसान पर, 161 for 7। 3 गेंदों का खेल इस इनिंग्स का बाकी। 15 पर खेल रहे हैं रबानी। अब क्या करेंगे? ऑफ द टोस फ्लैग किया, लेग स्टंप के ऊपर यॉर्कर डाल रहे थे। 1 रन पूरा किए, या दूसरे के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस मरतबा रब्बानी बहुत तेज दौड़े। उन्होंने रफ्तार दुगनी की दूसरे रन के लिए और 2 रन दौड़कर पूरे किए। इन 2 रनों के साथ 17 पर जा पहुंचे रब्बानी दफेदार। पारी की रन संख्या विश्रुत 163 7 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदें बची हैं कुल मिलाकर। ये बड़ी अच्छी यॉर्कर डाल रहे थे, टकने पर डाल रहे थे वो यॉर्कर, लेकिन पहले से जगह बनाकर उस गेंद को फ्लिक करने में कामयाब हुए। ऑफ द टोस जाकर रबानी दफेदार मिड विकेट के इलाके में। जोखिम भरा रन तो था दूसरा, लेकिन जोखिम उठाने के अलावा अब बचा भी क्या है, क्योंकि अब अंतिम क्षण चल रहे हैं इस मैच के। अंतिम 2 गेंदें ही हैं। अब रन बनाना बहुत ज़रूरी है। ये देखने के बाद रबानी अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरा भी पूरा किया रन। अच्छी यॉर्कर लेन की गेंद, एक बार और अच्छा ड्राइव खेला है मिड ऑफ के ऊपर। गेंद येड़वे गेंद को रोक रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर सुनील पाटिल रन आउट हुए। सर पर थ्रो किया था, कोई ऊंचा थ्रो नहीं था, लेकिन डोमिनिक फर्नांडिस ने गेंद को गैदर भी अच्छी तरीके से किया था। सुनील पाटिल रन आउट, 1 रन बना। अब आकाश असल कर आए हैं मैदान पर। 18 पर रबानी। पारी की रन संख्या 164 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद। हम सोच रहे थे, अटकलें लगा रहे थे कि 175 बनेगा, लेकिन ये ओवर बड़ा ही सनसनीखेज रहा है डोमिनिक फर्नांडिस का। फुल टॉस थी गेंद। हाँ, यहाँ पर 1 रन दौड़कर पूरा करने में कामयाब हुए, और ये रन जो बना वो बाय का बना। इस तरीके से बैट को लगी होगी गेंद, देखें बाय दिया। जी हाँ, बिल्कुल बाय का रन 165। तो 165 पर 20 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 8 विकेट खोने के बाद विश्व स्ट्राइकर्स एक अच्छा स्कोर बनाया है उन्होंने। ये 165 रन एक अच्छे स्कोर माने जाएंगे, अच्छी रन संख्या माने
We're falling hard to find the answer. Will this life we live be all that matters? The life of dreams is moving faster, and no one knows the constant fear of what comes after, and we'll never know. It's weighing me down, got my feet on the ground. Let's hide away from the light, and run away from this night. Let's run away. कुछ वहाँ पर सवाल हासिल के लिए वहाँ पर रखे गए हैं, कुछ इंटरव्यू प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर एक जाने माने खिलाड़ी बेलगाम शहर के महफूज दस्तेदार भी उपस्थित है और इजाज कुरैशी टेनिस बॉल ऑल इंडिया टेनिस बॉल के यहाँ पर स्टार क्रिकेटर है। तो यहाँ पर खानापुर के तालुका में खेलने के लिए आए थे, तो वहाँ पर आज मैच नहीं हुए, तो उन्होंने यहाँ पर हाजिरी लगाई है। तो इस वजह से थोड़ी सी वहाँ पर कुछ गुफ्तगू, कुछ सवाल उनसे हम करेंगे, इस सवालों का वो जवाब देंगे। इजाज कुरैशी, क्या कहेंगे आप बेलगाम शहर के इस एटमॉस्फेयर के बारे में, यहाँ का जो माहौल है, जिस तरह से यहाँ पर क्लाइमेट है, जिस तरह से क्लाइमेट कैसा लगा आपका, और इस तरह से यहाँ का बेलगाम क्रिकेट कैसा है और क्या डिफरेंस है आपके यहाँ पे जो क्रिकेट खेलते हैं टेनिस में और यहाँ के टेनिस बॉल क्रिकेट में? पहले तो मैं बेलगाम में ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला हूँ। वहाँ महफूज भाई की तरफ से मैं आया था 2-3 टूर्नामेंट खेलने के लिए। उसके बाद एक दूसरा टूर्नामेंट है, डेपो का टूर्नामेंट खेला, अभी ये खानापुर के टूर्नामेंट है। टेनिस क्रिकेट में बारे में अगर यहाँ का क्रिकेट बोले जाए तो बहुत अच्छा क्रिकेट होता है, फेयर क्रिकेट रहता है और लॉन्ग और ज़्यादा करके अच्छे प्लेयर्स में देखने को मिलते हैं। आपके बेलगाम सिटी के जितने भी आजू बाजू के एरिया थे सब अच्छे प्लेयर है। मैं उनके साथ में खेला हूँ और लेदर क्रिकेट में तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो फर्स्ट टाइम ग्राउंड में देख के अच्छा लगा कि इतने इम्प्रूव हो चुके हैं प्लेयर, अच्छा परफॉर्मेंस भी किया, बैटिंग में बॉलिंग में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे। मैं बहुत टाइम देखना चाहता था कि ये लेदर क्रिकेट बेलगाम का वो खेलता हूँ, क्योंकि रब्बानी दफ्तेदार मुझे हर टाइम बोलेंगे मैं लेदर क्रिकेट खेलता हूँ, लेदर क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम मैं खुद ही बोला कि मैं तेरा मैच देखने के लिए आता हूँ, तो देख के अच्छा लगा। ये डिटेल प्रीमियर लीग जो बेलगाम प्रीमियर लीग है, अच्छा क्रिकेट मुझे लगा देख कर। ये ग्राउंड का भी अरेंजमेंट अच्छा किया है, क्रिकेट और अरेंजमेंट भी ऑर्गेनाइजर ने अच्छा किया है। तो इस हिसाब से क्रिकेट के फेवर में अगर देखा जाए तो बेलगाम क्रिकेट बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि लास्ट 3 से 5 ईयर्स पहले मैंने ये क्रिकेट इधर देखा था बेलगाम का, तो थोड़ा सा नॉर्मली क्रिकेट था, लेकिन अभी अपग्रेड हो चुका है इधर का लेदर क्रिकेट और टेनिस क्रिकेट भी। तो अच्छे प्लेयर भी इधर से निकल रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक देता हूँ मैं यहाँ के बीपीएल टूर्नामेंट के लिए। थैंक यू। और इस मैदान के बारे में, यूनियन जिमखाना मैदान है, बहुत पुराना मैदान है, लेदर बॉल क्रिकेट काफी दिनों से यहाँ पर खेला जाता है और इस यूनियन जिमखाना की तरफ से ये आयोजन किया गया है। बेलगाम प्रीमियर लीग ऑप्शन हुआ था खिलाड़ियों का, तो 8 टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया है। तो इस टूर्नामेंट और आयोजन को देखकर कैसा लगता है? सच में लेदर क्रिकेट की में देखा जाए तो ऐसा अरेंजमेंट कोई नहीं करता है। फर्स्ट टाइम मैं बीपीएल और बेलगाम प्रीमियर लीग देख रहा हूँ कि इतना बड़ा आयोजन किया है। हमारे एरिया में भी, पुणे एरिया में भी ऐसा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं करते, तो नॉर्मली थोड़ा सा ग्रासी क्रिकेट नॉर्मली टर्फ क्रिकेट के हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं। बाकी का साइड में जो अरेंजमेंट किया है कि लाइव टेलीकास्ट वगैरह, स्टेज और प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट के लिए बाइक के अरेंजमेंट हमारे पुणे में भी नहीं रहता, तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है कमेटी ने। तो बेलगाम प्रीमियर लीग के जितने भी ऑर्गेनाइजर कमेटी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा अरेंजमेंट किया है बेलगाम सिटी के लिए। और एक सवाल आपसे, लेदर बॉल और क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट में क्या डिफरेंस है? लेदर बॉल क्रिकेट तो बेसिक एकदम प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेट के हिसाब से तो है, लेकिन सीधे बैट से जितना खेलेंगे तो हिसाब से लेदर क्रिकेट में आप रन करोगे और बड़े लेवल का क्रिकेट खेलेंगे। टेनिस क्रिकेट में तो क्या आप शफल होगे, जितना खेलेंगे उतना रन करेंगे, लेकिन लेदर क्रिकेट में वो क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। जितना आप प्रॉपरली आपके पास स्किल है आपको लेदर क्रिकेट में दिखाना पड़ता है। टेनिस क्रिकेट में आप जो भी शॉट खेलेंगे
चैनल के व्यूवर्स के लिए कुछ सजेस्ट और एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर एक बेलगाम का लोकल चैनल है, यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स। ये बेलगाम का चैनल बना हुआ है। हम दूसरे यूट्यूब चैनल वालों को स्पोर्ट्स ऑन चैनल यहाँ पर बेलगाम से गजानन देवू जी इस चैनल के ओनर हैं, तो उनकी तरफ से एक आपको रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब व्यूवर्स के लिए वहां पर कुछ मैसेज है। जितने भी व्यूअर्स है स्पोर्ट्स ऑन के यूट्यूब चैनल पे अगर आप मैचेस देखते हो तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा उस व्यूअर्स को कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी इनके लाइव टेलीकास्ट होते हैं या टूर्नामेंट होते हैं तो उन टूर्नामेंट को आप व्यू करते रहे और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू जज भाई, मैथिल भाई, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो।
नहीं खोला। स्वप्न लड़वे 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। रबानी की धीमी गेंद, बहुत धीमी गेंद डाली उन्होंने और ये गेंद फाइन लेग के ऊपर गई है। मिलिंद चौहान डाइव लगा रहे थे, लेकिन डाइव लगाते लगाते गेंद ऑड बाउंस लेकर निकल गई फाइन लेग के इलाके में 4 रन के लिए। थोड़ी धीमी गेंद डाल रहे थे, लेग स्टम्प के ऊपर भी डाल रहे थे और इस गति में परिवर्तन जो लाकर गेंद डाल रहे थे, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है रबानी दफेदार को। और रोहित पुरवाल को मौका मिला था उस गेंद को फ्लिक करने का। फाइन लेग के इलाके में 4 रन बने। खाता खोलने में कामयाब रोहित पुरवाल। पारी की रन संख्या बनी है 9 रन बगैर किसी नुकसान के। 166 रनों का लक्ष्य पार करना होगा हुबली टाइगर्स। रबानी की क्या गेंद थी, अपराइट सीम का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, अच्छी बाउंस मिली और इस अच्छी बाउंसर पर कोई तोड़ नहीं था, कोई जवाब नहीं था रोहित पुरवाल के पास। छकाने के बाद गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन के। चलो इजाज भाई बाय। और डॉट स्वरूप ये गेंद। तो कुल मिलाकर 1 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 9 रन बन रहे हैं इस वक्त साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के लिए और कोई विकेट नहीं खो रही है अब तक। स्वप्निल एड़वे 5 और रोहित पोरवाल 4 रन। एक चौका स्वप्निल एड़वे के खाते में, एक चौका रोहित पोरवाल को मिलता हुआ पिछले ओवर में। अब देखेंगे कौन आ रहा है गेंदबाजी करने के लिए। अंगदराज हिटलमनी आए हैं गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, ऑलराउंडर हैं अंगदराज हिटलमनी। अपनी टीम के लिए कई बार उन्होंने अच्छी पारियां खेली, जब चाहे तब विकेट भी दिलवाए हैं अपनी टीम के लिए उन्होंने। एक बार और उनके कंधों के ऊपर कप्तान राहुल नाइक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं गेंदबाजी की और आज कहीं ना कहीं वो नर्वस फॉर्टिस का शिकार बने। 48 रन वो बना रहे थे लेकिन वो अर्धशतक नहीं बना पाए और 48 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन अब देखना ये होगा कि गेंदबाजी कैसे करेंगे आज अंगदराज हिटलमनी। उनके सामने खड़े हैं कप्तान स्वप्निल एड़वे जिनका व्यक्तिगत स्कोर है 5। पावर प्ले का सिलसिला जारी रहेगा। एक स्लिप, एक गली पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर। बैकफुट पर गए, पंच किया उस गेंद को मिड ऑफ के इलाके में। मदन बेलगांवकर भागे उस गेंद के लिए लेकिन वो गेंद की गति को कम करने में कामयाब हुए। लेकिन गेंद को सफाई के साथ रोक नहीं पा रहे थे मदन बेलगांवकर। लेकिन 1 रन दौड़कर पूरा किया स्वप्निल एड़वे ने। एड़वे जा पहुंचे 6 पर और साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स 10 बगैर किसी नुकसान के। 10 फॉर नो लॉस। ये बड़ा अच्छा मैच होगा, यकीन मानिए बहुत तगड़ा मुकाबला होगा इन दोनों के बीच में। करो या मरो का मैच दोनों टीम्स के लिए। कौन किस पायदान पर खड़ा है ये बात हम बाद में बताएंगे, लेकिन आज दोनों टीम्स कोशिश करेंगी कि 2 अंक हासिल करें ताकि कुछ मौके मिले उनको पहले 4 में आने के लिए। जद्दोजहद तो करनी ही होगी दोनों टीम्स को इस मैच में जीत हासिल करने के लिए। फिलहाल थोड़ा समय और ले रहे हैं फील्डिंग सेट करने में अंगदराज। अच्छी फ्लाइटेड गेंद करवाई, मिड ऑफ की तरफ गेंद को खेल रहे थे लेकिन बहुत तेज गेंद के ऊपर झपट्टा मारकर थ्रो कर रहे हैं और जैसे देखा कि थ्रो होने के बाद गेंद डिफ्लेक्ट हुई है। 1 रन दौड़कर पूरा किया। पलट कर भागे थे, रन लेने का इरादा छोड़ा था लेकिन विकेट कीपर ठीक तरीके से गेंद को गैदर नहीं कर पा रहे थे। यहाँ वहाँ लग कर गेंद छिटक गई और फिर जाकर 1 रन पूरा किया। रन संख्या बनी है 11। छह पर एड़वे, 5 पर रोहित पोरवाल। फ्लाइटेड गेंद करवाई, सिर्फ धकेला उस गेंद को कवच के इलाके में और दोनों के बीच में बड़ी अच्छी तालमेल थी, समझबूझ थी। कवच के इलाके में मदन बेलगांवकर आए इस गेंद के लिए लेकिन तब तक 22 गज का फासला दोनों ने मिलकर पूरा किया। रन संख्या बनी है 12।
कोई नुकसान नहीं है अब तक का साई स्पोर्ट्स सुपर टाइगर्स की टीम का। वो थोड़ी सी नीचे रही, थोड़ी तेज गेंद को डाल रहे थे, गति में परिवर्तन लाकर और इस गेंद को कट करने का प्रयास कर रहे थे रोहित पोरवाल, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं कर पाए, कोई रन नहीं बना। वापस अंगदराज। फ्लाइटेड गेंद, स्लॉक स्वीप करने का प्रयास, लेकिन इस बार थोड़ी सी गति में परिवर्तन लाया। धीमी गेंद डाली, पिछली तेज अब धीमी, और अच्छी टर्न लेकर गेंद गई। बगैर किसी रन के विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया और वापस चले अपने बॉलिंग मार्ग पर अंगदराज चिटलमनी। ये बोल्ड हुए। इस गेंद को अंदर आते हुए देखने के बाद भी वो जगह बना रहे थे, अपने सुरक्षा कवच बनाकर नहीं खेल रहे थे रोहित पोरवाल, जगह बना रहे थे और इतनी जगह बनाई उन्होंने कि गेंद उनको छगाकर स्टंप्स पर जार लगी। तो रोहित पोरवाल वापस लौट रहे हैं पवेलियन में। बहुत खराब स्ट्रोक का चुनाव कर रहे थे रोहित पोरवाल और उसके चलते वो 5 रन बनाकर बोल्ड हुए। तो पहला विकेट का नुकसान होता हुआ साई स्पोर्ट्स सुपर टाइगर्स की टीम का 12 पर। रोहित पोरवाल कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, ना अपने लिए ना अपनी टीम के लिए, लेकिन एक अच्छी गेंद पर वो बोल्ड हुए। लेकिन गेंद के मेरिट के हिसाब से, गेंद की काबिलियत के हिसाब से वो खेल तो नहीं रहे थे, बहुत सारी वो जगह बना रहे थे और वो जगह जो बनाई उन्होंने उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। बोल्ड होकर वापस लौटे पवेलियन में। अब स्वप्निल एड़वे का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे हैं यश कलसनवर, एक और भरोसेमंद बल्लेबाज यश कलसनवर। यश कलसन और अब मैदान पर आ रहे हैं रोहित पोरवाल का विकेट खोने के बाद। तो अंगदराज चिटलमनी ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब हुए हैं अपने पहले ओवर में। तो कुल मिलाकर अब ओवर समाप्त हुए हैं 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 12, एक विकेट खोने के बाद। रबानी दफेदार इस वक्त पवेलियन एंड से मोर्चा संभाल रहे हैं और उसका सामना करेंगे स्वप्निल एड़वे, कप्तान टीम के। फ्लिक किया उस गेंद को मिड विकेट के इलाके में, बहुत बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद जा रही है मिड विकेट के इलाके में। बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर देखने को मिलता हुआ, पैरों का सहारा लेकर उस गेंद को रोका राहुल नाइक ने। और जब तक कि गेंद वापस आ रही है 2 रन स्वप्निल एड़वे दौड़कर पूरा कर चुके हैं। इन 2 रनों के मदद से अब रन संख्या बनी है 14, एक विकेट के नुकसान पर। इस गेंद को कवच के इलाके में खेला, ऑन द राइज, ऑन द अप, लेकिन सीधी फील्डर के तरफ गेंद गई और रन की कोई गुंजाइश नहीं। गेंद फील्ड होकर वापस लौट रही है रबानी के पास। 14 पर एक विकेट, यह है स्कोर साई स्पोर्ट्स सुपर टाइगर्स का। 166 रनों का वो जवाब दे रही है लीग में। रबानी के गेंद बैकफुट पर गए, स्क्वायर कट खेला लेकिन सीधे पॉइंट की दिशा में, और पॉइंट पर फील्डर मौजूद जंबो के रूप में, उन्होंने गेंद को रोका। रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्ट्रोक तो बहुत बढ़िया था, टाइमिंग भी बढ़िया थी, लेकिन कैप में नहीं खेल पाए। और साफ सुथरी फील्डिंग के बाद दत्त प्रसाद ने गेंद को फील्ड किया और वापस लौटे अपने बॉलिंग मार्ग पर रबानी दफेदार। इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला, मिड ऑन से फील्डर ने आकर गेंद को फील्ड किया, लेकिन एक रन बड़े आराम के साथ दौड़कर पूरा किया है अब स्वप्निल एड़वे ने। एड़वे अब खेल रहे हैं 10 रन बनाकर, 10 गेंदों का सामना किया उन्होंने और रन संख्या बनी है अब 15, एक विकेट के नुकसान पर। यश कलसन ओवर
पहली मर्तबा सामना करने के लिए तैयार। रबानी दफेदार का बाएं हाथ के बल्लेबाज है मैदान पर और अब रबानी राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। यश कर्सन नंबर को, यश कर्सन नंबर के लिए ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी रखे गए हैं, एक फाइन लेग, एक मिड विकेट या फिर थोड़ा बहुत स्क्वायर लेग कह सकते हैं आप उस इलाके में, और उसके बाद एक मिड ऑन के ऊपर खिलाड़ी, मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, बैकवर्ड पॉइंट, गली, थर्ड मैन, स्वीपर कवर। रबानी के राउंड विकेट, ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, गुड लाइन पर टप्पा खिलाया, कमर के ऊंचाई तक उठी गेंद, बहुत तेज अंदर की तरफ घुस रही थी गेंद, लेकिन इस अंदर आती हुई गेंद के ऊपर जैसे तैसे बल्ला आड़ा करते हुए खेला उन्होंने बगैर किसी रन के। सामने की तरफ ही गेंद गिरी, कहीं दूर नहीं गिरी और कोई रन नहीं बना। बड़ी अच्छी गेंद डाल रहे थे राउंड द विकेट और गेंद वापस लेकर चले अपने बॉलिंग मार्ग पर रबानी। ओ ये पैड पर लगी है गेंद, फाइन लेग के इलाके में जा रही है, खिलाड़ी गेंद का पीछा करेंगे लेकिन संभव नहीं है उसको रोकना। लेग बाय का ये इशारा 4 रनों का होता हुआ, लेग स्टंप के बहुत बाहर गेंद जा रही थी, खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पैड से टकराने के बाद गेंद गई 4 रन के लिए। तो ये 4 रनों के साथ ओवर समाप्त हुआ। 19 रन 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद साई स्पोर्ट्स सुबह टाइगर्स की टीम बना रही है, 166 का लक्ष्य का पीछा कर रही है और अब 17 ओवर का खेल बचा है, यानी कि 102 गेंदों का खेल बचा है और 102 गेंदों में 147 रनों की ज़रूरत है। तो मौजूदा रन रेट चल रहा है 6.33 का और रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ से लेकर आगे चाहिए 8.65 का। सगळं सारखंच येतंय काय चायला चुकून का वाद होते। अब गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं, अंगदराज हिटलमनी अपने गोल्डन आर्म के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक विकेट चटकाया उन्होंने पिछले ओवर में, रोहित पोरवाल का विकेट उनको मिलता हुआ क्लीन बोल्ड करवाया, लेकिन अब स्वप्निल सामना करेंगे। ओ बुरी तरीके से छकाया, चारों खाने चित स्वप्निल लड़वे, अच्छी टर्न, गुडलेन पर टप्पा खिलाया, अच्छी टर्न लेकर गेंद गई, अच्छी स्पिन हुई, स्वप्निल लड़वे फ्रंट फुट पर बीट हुए। ओ कट करने का प्रयास, लेकिन इस मर्तबा नीचे रही गेंद, तकरीबन सुर्रा बनकर रह गई गेंद और जगह बना कर उस गेंद को खेलने की कोशिश स्वप्निल लड़वे कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पाए। राइटेड गेंद, अच्छी फील्डिंग, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर कप्तान कर रहे हैं राहुल नाइक, एक अच्छा स्ट्रोक खेल रहे थे ऑन द राइस, हाफ वॉली बनाकर, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग राहुल नाइक द्वारा, कोई रन नहीं बना। लगातार डॉट गेंदों का सिलसिला जारी रख रहे हैं इस ओवर में। जगह बनाई, कट किया, इस मर्तबा कोई मौका नहीं मिलेगा, पॉइंट और कवर्स के बीच में से उस गेंद को खेला और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई 4 रन के लिए। तो सब्र के इम्तिहान ले रहे थे अंगदराज हिटलमनी, लेकिन जैसे सब्र का बांध टूटा, यहाँ पर एक चौका बनाने में कामयाब हुए हैं स्वप्निल लड़वे। इन 4 रनों के साथ अब रन संख्या बनी है 23, 23 for 1। लड़वे जा पहुंचे 14 पर। राइटेड गेंद, इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से गेंद को खेला, अब कोई मौका नहीं मिलेगा, बहुत तेज आउटफील्ड है जिमखाना की और इसके चलते चौका बनता हुआ स्वप्निल लड़वे के बल्ले से। तो ये 2 गेंदों पर 2 चौके, पहले 3 गेंदे डॉट खेल रहे थे, थोड़े उलझन में फंसा रहे थे, लेकिन इन 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर अंगदराज हिटलमनी जो दबाव बना रहे थे, स्वप्निल लड़वे उस दबाव को हटा रहे हैं और अब रन संख्या बनी है 27, 1 विकेट के नुकसान पर। 27 for 1। ओ पुल किया, लेकिन मिस टाइमिंग भरा ये स्ट्रोक, आकाश हासिल कर पीछे की तरफ भागकर उस कैच को लेने की कोशिश कर तो रहे थे ज़रूर, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था ये कैच। टाइमिंग अच्छी नहीं बना रहे थे स्वप्निल लड़वे,
जिस ढंग से बल्ले पर गेंद आनी चाहिए थी उस तरीके से आई नहीं, लेकिन 30 गज दायरा पार किया था गेंद ने और पलटकर भाग भी रहे थे। आकाश असलकर उस कैच को लेने की कोशिश वो कर रहे थे लेकिन ले नहीं पाए उस कैच को, मुश्किल था उनके लिए। लेकिन 2 रनों के साथ अंगदराज हिटलमनी का ओवर समाप्त हुआ। 10 रन आए कुल मिलाकर इस ओवर में और 4 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 166 का जवाब दे रही है साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स का स्कोर है 29 फॉर 1। 20 रन बनाकर स्वप्निल रेलवे खेल रहे हैं। यश कल्सनवर ने अभी तक अपना स्कोरिंग का सिलसिला जारी नहीं किया। तो अब गेंदबाजी में हमें परिवर्तन देखने को मिलता हुआ सुनील पाटिल को लाया जा रहा है गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। रबानी दफेदार को 2 ओवर की गेंदबाजी के बाद अब उनको विश्राम दिया जा रहा है और अब एक विकल्प है विश्व के कप्तान के पास, वो है सुनील पाटिल के रूप में। उनको अब आजमाया जा रहा है। पेवेलियन एंड से वो गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे यश कल्सनवर, जिनको अभी अपना खाता खोलना है। 4 ओवर 29 1 विकेट के नुकसान पर। सुनील पाटिल की गेंद और फ्लिक किया इस गेंद को ऑफ द टोज जाकर वाइडिश लॉन्ग ऑन के इलाके में 4 रन। थोड़ी लंबाई भरी गेंद डाल रहे थे, लेग स्टंप के ऊपर भी थोड़ी सी डाल रहे थे और इस गेंद को सिर्फ उन्होंने उठा कर खेला उस मिड ऑन के सर के ऊपर से और ये 4 रनों के साथ यश कल्सनवर ने खाता खोला। 4 रनों के साथ रन संख्या अब आगे बढ़ती हुई विश्व स्ट्राइकर्स की 33, साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स की रन संख्या बढ़ रही है 33 फॉर 1। ड्राइव किया उस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के इलाके में, गेंद डीप में फील्डर मौजूद, गेंद को रोका लेकिन 1 रन कल्सनवर ने दौड़कर पूरा किया। यश कल्सनवर 5, पारी की रन संख्या साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर 34 फॉर 1। 132 की आवश्यकता और अभी भी 94 गेंदों का खेल होना बाकी। 94 गेंदों में 132 की चुनौती सामने है साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के लिए। तो 9 विकेट चाहिए विश्व स्ट्राइकर्स को इस मैच को अपने कब्जे में करने के लिए। रोमांचक मैच होगा आगे चलकर। इस गेंद को आने दिया बल्ले पर, उसके बाद इस गेंद को स्क्वायर कट किया लेकिन सीधे पॉइंट की दिशा में, गेंद फील्ड होने के बाद कोई रन देने का मौका नहीं है स्वप्निल रेलवे के लिए। गेंद वापस लेकर चले अपने बॉलिंग मार्ग पर सुनील पाटिल। बल्लेबाज को पाले में डालता है, स्लॉट में डालता है, तो अच्छे बल्लेबाज अगर उनके सामने हैं अंदर क्या लगता है तो उसका हश्र वही होगा जो अब हो रहा था। एक बड़ा छक्का, गगनचुंबी छक्का, गेंद ढूंढने में कई लोग लगे हैं। अब देखेंगे किसको क्या मिलेगा, गेंद किसको मिलेगी देखेंगे। सब जुटे हैं उस गेंद को ढूंढने के लिए। उसके आसपास आप देखेंगे तो जितने मज़ेदार किस्से यहाँ होते हैं शायद ही कहीं होते हैं। बहुत कहीं ऐसे आजू बाजू में चेतन बेलूर, पॉन्टिंग बैठे हैं और नवीन बैठे हैं, राकेश बैठे हैं, बड़े मज़ा के किस्म के लोग हैं। और
बड़ा अच्छा मनोरंजन करते हैं कुछ किस्से सुनाकर। हमारे स्कोरर रवि कन्वर भी गए हैं गेंद ढूंढने को। देखिए कितने जुनून और जज्बा है उनमें। स्कोरिंग का काम छोड़कर वो गेंद ढूंढने में लगे हैं। अब शायद गेंद मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, लेकिन अंपायर ने मांग की है दूसरी गेंद की। अब अगर ये गेंद नहीं मिल रही है तो वो दूसरी गेंद को लेकर खेल को आगे बढ़ाएं। तो देखें 10 लोग हैं जो बॉल ढूंढ रहे हैं, किसको मिलेगी वो तकदीर वाला होगा। तो दूसरी गेंद लेकर खेल को हम जारी करेंगे। अब वो गेंद जब मिलेगी तब हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो अब ज़्यादा वक्त आप ज़ाया नहीं कर सकते उस गेंद को ढूंढने में। आप इतना भी वक्त नहीं बर्बाद कर सकते। तो चलिए दूसरी गेंद लेकर हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। और ये बड़ा छक्का स्वप्निल अल्वे के बल्ले से निकलता हुआ। रन संख्या बनी है 40। एक विकेट के नुकसान पर 26 पर स्वप्निल अल्वे 18 गेंदों का सामना कर चुके हैं। 3 चौके 1 छक्का उनके खाते में शामिल। यश कल्सर नंबर 1 चौके की मदद से 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब खेल जारी होगा। तो थोड़ा विश्राम मिला सभी को, 1-2-3 मिनट का विश्राम मिला हम सबको। काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही है आज मैदान पर। काफ़ी मरतबा हमने देखा है कि खेल थोड़ा सा रोकना पड़ा था उस तेज़ हवा के चलते, लेकिन गर्मी के मौसम में ये ठंडी हवाएं सुकून दे रहा है सभी को। सुनील की गेंद बैकफुट पर गए, हवा में खेला, मिड विकेट के इलाके में गेंद। पहला रन, बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं राहुल नाइक। ढूंढू रे साजना जैसी बात कर रहे थे उस गेंद को लेकर। ठीक तरीके से पहले मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा वो गेंद को उठा नहीं पा रहे थे। उनका इरादा था कि एक ही एक्शन में पिकअप करें और थ्रो करें, लेकिन हो नहीं रहा था उनकी तरफ से। और बहुत तेज़ दौड़े, 2 रन दौड़कर पूरे किए। रन संख्या बनी है 42। बैकफुट पर गए, फ्लिक किया उस गेंद को मिड विकेट के इलाके में। राहुल नाइक आए अब गेंद के नीचे। साफ सुथरी फील्डिंग, सटीक थ्रो उनका विकेट कीपर के हाथों में। लेकिन 1 रन के साथ ये ओवर समाप्त हो रहा है। और कुल मिलाकर 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 43 रन बना रही है साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स की टीम। 29 रन बनाकर स्वप्निल अल्वे खेल रहे हैं और यश कल्सर नवर खेल रहे हैं 5 रन बनाकर। इससे पहले कि नए ओवर की शुरुआत हो, आगे का आंखों देखाल सुनाने के लिए आएंगे हमारे साथी कमेंटर चेतन बैलूर। देखो उधर आप करो, आप बोलो ना, मेरा नाम बोलो ना। अभी चलो। फुल फॉर्म में मदन बढ़ाओ कर मड्डा। ये नहीं, मैं अल्टरनेट कर रहा था, हिंदी इंग्लिश हिंदी ना। अच्छा बाकी क्या रहने आगे। अब आरिफ आएंगे आगे का आंखों देखाल सुनाने के लिए हिंदी में। इनके बाद अच्छा है ना, मैं देखा ही नहीं, वो इधर ही देखा।
शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पुल किया, गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में, खाली क्षेत्र वहां पर डीप विकेट के खिलाड़ी आकाश असलकर कोशिश जरूर कर रहे थे, रोक नहीं पाए, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51, 47 रन बने हैं, 47 लॉस ऑफ 1 विकेट। 166 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स। स्ट्राइक पर है स्वप्निल। इस बार खेला गेंद को कवर्स की दिशा, मिड ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी तैनात है, रब्बानी दफेदार ने गेंद को रोका, स्कोर बढ़ता हुआ 48, 1 विकेट के नुकसान पर। स्वप्निल रेलवे खेल रहे हैं 34 रन बनाकर, 5 रन बनाकर खेले यश कल्सन और बायत के बल्लेबाज स्ट्राइक पर। तो 166 रनों का लक्ष्य रखा है विश्रुत स्ट्राइकर्स ने। टॉस कौन जीता था? गेंदबाजी कर रहे हैं मदन बेलगांवकर, स्ट्राइक पर यश, बायत के बल्लेबाज। थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन, बायत के बल्लेबाज के लिए दाएं और बाएं की जोड़ी मैदान में। बेलगाम प्रीमियर लीग 6वां एडिशन चलता हुआ यूनियन जिमखाना के मैदान पर स्पर्धा स्पोर्ट्स ऑन चैनल पर यूट्यूब लाइव रखी गई है। इस पर तबाह हल्के हाथों से खेला, कलाइयों के सहारे मोड़ा उस गेंद को, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गेंद आई, शॉर्ट स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने गेंद को रोका, 1 रन बना, स्कोर बढ़ता हुआ 49, 1 विकेट के नुकसान पर, 49 लॉस ऑफ 1 विकेट। तो अच्छी साझेदारी बनती हुई अब तक 37 रनों की साझेदारी बन रही है। 12 रन पर पहला विकेट खो रही थी साई स्पोर्ट्स। ऑन द राइज खेलने की कोशिश, इस पर तबाह गेंद अंदरूनी किनारा लेते हुए, गेंद पैर से टकराई, फिर से एक बार गेंद को उठाया वहां पर विकेट कीपर ने, रन की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर रुका हुआ 49 पानी का 6वां ओवर चलता हुआ। मदन बेलगांवकर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार फ्लिक किया, ऑफ द टोस खेला है, गेंद को मिड विकेट की दिशा में, फिर से एक बार गेंद का पीछा कर रहे आकाश हसल कर, इस पर तबाह गेंद को रोकने में कामयाब, अच्छी फील्डिंग, 2 रन बने, स्कोर बढ़ता हुआ 51, 51 लॉस ऑफ 1 विकेट। पारी का 6वां ओवर चलता हुआ, आखिरी गेंद 6 इस ओवर की। स्ट्राइक पर स्वप्निल रेलवे। इस बार बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश, फिर से एक बार पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, अच्छी फील्डिंग, वहां पर पॉइंट के खिलाड़ी अंगद राज ने गेंद को रोका। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर का खेल पूरा हुआ है, अब तक 51 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। 166 रनों का लक्ष्य रखा है विश्रुत स्ट्राइकर्स ने। अब तक 6 ओवरों में 51 रन खर्चे हैं, 1 विकेट चटका है। आउट होने वाले बल्लेबाज रोहित पोरवाल। 36 रन बनाकर खेल रहे हैं स्वप्निल। अब तक 25 गेंदों का सामना किया है, 1 छक्का और 4 चौकों की सहायता से। और यश कल्सन और खेल रहे हैं 6 रन बनाकर 1 चौके की सहायता से। फिर से एक बार सुनील पाटिल गेंदबाजी के लिए। एक अच्छा मैच होने की संभावना, क्योंकि पॉइंट टेबल पर काफी कुछ वहां पर कशमकश है, तो सभी टीमें वहां पर भिड़ती हुई अपने पॉइंट टेबल पर टॉप 4 के स्थान के लिए। अब रंगतदार स्थिति जरूर है पॉइंट टेबल पर। 6 ओवर के समाप्ति के बाद 51 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। यश कल्सन और स्ट्राइक पर है, गेंदबाजी कर रहे हैं सुनील पाटिल कमेंट्री बॉक्स से राइट अप ओवर द विकेट। अच्छी गिनती, हल्के हाथों से खेला, शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद आई, मदन ने गेंद को उठाया, अच्छी फील्डिंग, अच्छी वापसी, वहां पर सही समय पे वापस पलटे बल्लेबाज, अच्छी गेंद, अच्छा क्रिकेट चलता हुआ यूनियन जिमखाना के मैदान पर। परिवर्तन के रूप में गेंद, धीमी गति की गेंद खेला, गेंद को वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद आती थी, अंदरूनी किनारा लेते हुए गेंद आई, फिर से एक बार यश के बल्ले से 2 रन बनते हुए, अच्छी फील्डिंग, मनोज पाटिल ने गेंद को उठाया वहां पर। स्कोर बढ़ता हुआ 53, 1 विकेट के नुकसान पर, 53 लॉस ऑफ 1 विकेट। इस मैच में अंपायरिंग का काम कर रहे हैं मंसूर बड़े भाई और सादिक कित्तूर स्क्वायर लेग अंपायर है। इस बार उछाला गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी तैनात है वहां पर, 1 रन लेने का मौका, स्कोर बढ़ता हुआ
54, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का 7वां ओवर चलता हुआ 54 रन बने हैं। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में चलती हुई सुनील पाटिल पहले ओवर में 14 रन खर्च कर रहे थे। इस ओवर में 3 गेंदों पर अब तक 3 रन खर्चे हैं। ये कौन है फील्डर? सलील सलील है? सलील बने सनील सनील सलील क्या सलील सलील मैंने सनील सनील पाटिल एक्स्ट्रा प्लेयर इस बार हल्के हाथों से खेला मिडॉन की दिशा में। लॉकन से खिलाड़ी आए, सनील ने गेंद को उठाया जब तक मौका था 1 रन पूरा करने का। स्कोर बढ़ता हुआ 55, 1 विकेट के नुकसान पर। 55 लॉस ऑफ 1 विकेट। पारी का 7वां ओवर चलता हुआ साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स और विश्व स्ट्राइकर्स के बीच आज के दिन का दूसरा मैच चलता हुआ। इस बार ऑन द राइज काफी अच्छा ड्राइव, अच्छी फील्डिंग, रोकने में कामयाब हुए सुनील पाटिल ने, मगर 1 रन से नहीं रोक पाए। 1 रन बना, स्कोर बढ़ता हुआ अब तक 56, 1 विकेट के नुकसान पर। साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स 56 रन जोड़ रही है, 1 विकेट चटकाए अब तक विश्रुति स्ट्राइकर्स ने। 166 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 56 रन बने। अभी भी एक जीत के लिए 110 रन बनाने। धीमी गति की गेंद थी, ओवर पिच बनाकर ड्राइव किया गेंद को, वहां पर लॉक ऑफ की दिशा में गेंद आती हुई शॉर्ट कवर के खिलाड़ी दत्त प्रसाद गेंद को रोकने की कोशिश जरूर कर रहे थे वहां पर। और थ्रो होता हुआ रब्बानी दफेदार बैकिंग कर रहे थे शॉर्ट फाइन लेग से। 2 रन से संतुष्ट हुए बल्लेबाज यश कर्सनवर। तो 58 रन बने हैं, 7 ओवर का खेल पूरा हुआ अब तक, 1 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर्स 58 लॉस ऑफ 1 विकेट। तो अभी भी 13 ओवरों का खेल शेष है इस पारी में। 78 गेंदे, 108 रन बनाने हैं जीत के लिए। 108 रन रिक्वायर्ड। साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स रिक्वायर्ड 108 इन 78 बॉल्स। 78 गेंदों में 108 रनों की जरूरत। तो रोमांचक मैच होने की संभावना। स्ट्राइक पर यश, नॉन स्ट्राइक पर है स्वप्निल अड़वे। गेंदबाजी के लिए आते हुए मदन बेलगांवकर। पारी का 8वां ओवर चलता हुआ 7 ओवर के समाप्ति के बाद 58 रन बने हैं। अब तक 46 रनों की साझेदारी बनती हुई स्वप्निल अड़वे और यश कर्सनवर के बीच। थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन। मोहन बोरे बेलगाम प्रीमियर लीग 6ठा एडिशन चलता हुआ यूनियन जिमखाना के मैदान पर आयोजन किया है। यूनियन जिमखाना ने 6ठा एडिशन चलता हुआ। अपने कोटे का दूसरा और पारी का 8वां ओवर लेकर बदन। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद को खेला वहां पर। गेंद फील्ड करने किया वहां पर खुद गेंदबाज बदन ने। स्कोर रुका हुआ 58, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से पर अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला इस पर तबाह शॉट कवर की दिशा में। रब्बानी दफेदार ने गेंद को रोका, 1 रन लेने का मौका। स्कोर बढ़ता हुआ 59, 1 विकेट के नुकसान पर। 59 लॉस ऑफ 1 विकेट। तो पारी का 8वां ओवर चलता हुआ 59 रन अब तक बने हैं। दाएं और बाएं की जोड़ी मैदान में, कुछ दिक्कत वहां पर खिलाड़ियों को। अगली गेंद लेकर मदन बेलगांवकर सामना करेंगे स्वप्निल अड़वे। दिशा दिखाने की कोशिश, गेंद को वहां पर गेंद छटाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद को दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वहां पर स्वप्निल अड़वे, नाकाम रहे। स्कोर रुका हुआ 59। अच्छी गेंद फिर से एक बार रोका वहां पर उस गेंद को। धीमी गति की गेंद थी, अच्छा वेरिएशन करते हैं। एक अनुभवी गेंदबाज है मदन बेलगांवकर विश्रुति स्ट्राइकर्स की तरफ से। अब तक 59 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का 8वां ओवर चलता हुआ। स्लैश किया इस मरतबा, पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से गेंद जाती हुई, कोई मौका नहीं इस मरतबा। गेंद को वहां पर 4 रन बने। फ्लिपर किस्म की गेंद कर रहे थे इस मरतबा। गति का इस्तेमाल किया बल्लेबाज स्वप्निल अड़वे ने। खेला उस गेंद को, स्लैश किया, पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से गेंद को उछाला। 4 रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 63, 63 लॉस ऑफ 1 विकेट। इस मरतबा ऑफ स्टंप से बाहर गेंद कर रहे थे। पिछली गेंद पर
2 गेंदों पर डट छटाने में कामयाब हुए थे। फिर से एक चौका लगा, इस बार खेला है गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में। एक टप्पा खाने के बाद गेंद फील्ड में आकाश ने गेंद को रोका। 1 रन बना, स्कोर बढ़ता हुआ 64-64, लॉस ऑफ 1 विकेट। 8 ओवर का खेल पूरा हुआ है। अब तक 8 रन प्रति ओवर के रन रेट से बल्लेबाजी चलती हुई 8 ओवरों में 64 रन बना रही है साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स। तो अच्छी बल्लेबाजी वहां पर 52 रनों की साझेदारी चलती हुई स्वप्निल अड़वे और यश कल्सनवर के बीच अर्धशतकीय साझेदारी बनी। अब तक 52 रन जोड़े हैं। 8 ओवर के समाप्ति के बाद 64 रन बने। तो जीत के लिए अभी भी 102 रनों की जरूरत, बचे हुए 72 गेंदों में। लास्ट ओवर में 6 आएगा खाली। पिछले ओवर में 6 रन खर्च हुए। वहां पर अच्छी गेंदबाजी जरूर है मदन बेलगांवकर द्वारा। दोनों की गेंदबाजी की है। मदन ने 14 रन खर्चे हैं, कोई सफलता उनके खाते में नहीं। गेंदबाजी में परिवर्तन, आकाश असलकर गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक पर है। स्वप्निल आएगा, स्वप्निल अड़वे स्ट्राइक पर। नॉन स्ट्राइक पर यश कल्सनवर। 52 रन जोड़े हैं। अब तक दोनों बल्लेबाजों ने साझेदारी में 52 रन बना रहे हैं। 1 विकेट के नुकसान पर 64 कुल रन संख्या। पहला विकेट 12 रनों पर खो रही थी, उसके बाद अब 64 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। तो 52 रनों की साझेदारी चल रही है पर स्वप्निल अड़वे और यश कल्सनवर के बीच। पारी का 9वां ओवर लेकर गेंदबाज आ रहे हैं आकाश असलकर। राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज अपने कोटे का पहला और पारी का 9वां ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे कॉमेंट्री बॉक्स एंड से। जीत के लिए अभी भी 102 रनों की जरूरत, बचे हुए 72 गेंदों में। शॉट ऑफ लेंथ, गेंद बैकफुट पर गए, पुल किया मिड विकेट की दिशा में। खिलाड़ी तैनात है वहां पर। राहुल नाइक ने गेंद को उठाया। दूसरे प्रयास में दूसरे रन की कोशिश होती हुई वहां पर 2 रन पूरे होते हुए। इस 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 66-66, लॉस ऑफ 1 विकेट। तो 66 रन अब तक जोड़ रही है। जीत के लिए अभी भी 100 रन बना रहे हैं। 166 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहा है साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, अच्छा क्रिकेट चलता हुआ यूनियन जिमखाना के मैदान पर। फिर से एक बार बैकफुट पर गए, कट किया। पॉइंट के खिलाड़ी अंगद राज ने गेंद को रोका। रन की गुंजाइश को खत्म किया वहां पर। फिर से एक बार आकाश असलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। 66 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का 9वां ओवर चलता हुआ। फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी। इस मरतबा खेला गेंद को वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जगह बनाने की कोशिश वहां पर चलती हुई स्वप्निल अड़वे द्वारा। इस मरतबा गेंद थोड़ी सी उछाल लेती हुई आई। उस गेंद को खेला वहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। 1 रन से संतुष्ट हुए बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 67, 1 विकेट के नुकसान पर। 67, लॉस ऑफ 1 विकेट। पारी का 9वां ओवर चलता हुआ है। फील्ड में थोड़ी सी परिवर्तन। यश कल्सन और बायत के बल्लेबाज स्ट्राइक पर। राइट आर्म राउंड द विकेट। इस मरतबा आकाश। दायरे के अंदर 4 खिलाड़ी। शॉट फाइन लेग्स, शॉट थर्ड मैन, पॉइंट शॉट कवर। फ्लैट दे रहे थे, स्वीप किया है गेंद को। फाइन लेग के खिलाड़ी सुनील सक्रिय ने गेंद को रोका। अच्छी फील्डिंग। दूसरे प्रयास के में गेंद को उठाया। 1 रन बना। स्कोर बढ़ता हुआ 68-68, लॉस ऑफ 1 विकेट। तो रोमांच भरा मैच है वहां पर। स्वप्निल अड़वे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है यश कल्सनवर। गेंदबाजी कर रहा है आकाश असलकर। 2 गेंदें शेष इस ओवर की। बैकफुट पर गए, खेला। शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद आती हुई दत्त प्रसाद ने गेंद को उठाया। रन की कोई गुंजाइश नहीं वहां पर। यश कल्सनवर द्वारा कोशिश होती हुई नकारा वहां पर स्वप्निल अड़वे ने। देखा गेंद सीधे खिलाड़ी के हाथ में है तो रोका वहां पर। स्कोर रुका हुआ 68। फिर से बार बैकफुट पर गए। इस मरतबा स्वीपर कवर की दिशा में गेंद को खेला। खिलाड़ी तैनात है मनोज पाटिल ने गेंद को उठाया। अच्छी फील्डिंग। 1 रन बना। स्कोर बढ़ता हुआ 69। काफी अच्छा ओवर वहां पर आकाश असलकर द्वारा। 5 रन खर्चे वहां पर आकाश असलकर ने इस ओवर में। 69 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का 9वां ओवर समाप्त हुआ। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 overs, 69, लॉस ऑफ 1 विकेट। साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स 69 रन अब तक बना रही है 1 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर का खेल पूरा हुआ है।
तो जीत के लिए अभी भी रन बनाने हैं 97, 66 गेंदों में। साई स्पोर्ट्स हुगली टाइगर्स रिक्वायर्ड 97 रन्स इन 66 बॉल्स। 11 ओवरों में 97 रनों की जरूरत है। 66 गेंदें और 97 रन बनाने हैं जीत के लिए साई स्पोर्ट्स हुगली टाइगर्स को। विश्रुति स्ट्राइकर्स की तरफ से गेंदबाजी के लिए अब तब्दीली, फिर से राहुल नाइक आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। तो प्रयास जारी है दोनों टीमों की ओर से, वहां पर एक अच्छा मैच जरूर है विश्रुति स्ट्राइकर्स और साई स्पोर्ट्स हुगली टाइगर्स के बीच। राहुल नाइक अपने कोटे का पहला और पारी का 10वां ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पर है स्वप्निल। और पिच बनाकर खेला गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। 1 रन बना, अच्छी फील्डिंग, 1 रन बना। स्कोर बढ़ता हुआ 70 लॉस ऑफ 1 विकेट। पारी का 10वां ओवर चलता हुआ 70 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। फील्ड में परिवर्तन, फिर से एक बार स्ट्राइक पर यश कर्सनवर बायत के बल्लेबाज। गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल नाइक। अपने कोटे का पहला और पारी का 10वां ओवर लेकर पुलिस लाइन से गेंदबाजी के मोर्चे पर अब लगाया गया है राहुल नाइक को। और पिच बनाया, उछाला उस गेंद को लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में, गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे आकाश असलकर। एक अच्छा कैच लपका वहां पर आकाश असलकर ने। तो दूसरी सफलता मिलती हुई अब विश्रुति स्ट्राइकर्स को। जैसे ही गेंदबाजी के लिए लगाया वहां पर अब गेंदबाज राहुल नाइक को विकेट चटकाया, वहां पर साझेदारी तोड़ने में कामयाब हुए वहां पर राहुल नाइक। 70 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 70 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो जलपान का समय मैदान में ड्रिंक्स ब्रेक का।
आती हुई लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी फिर से एक बार अच्छी फील्डिंग आकाश असलकर द्वारा 2 रन बनते हुए स्वप्निल के बल्ले से स्कोर बढ़ता हुआ अब 72 और 50 रन पूरे होते हुए स्वप्निल का अर्धशतक पूरा होता हुआ 51 रन बनाकर खेल रहे स्वप्निल 38 गेंदों का सामना किया है। इस बार दबाव पकड़े गए विकेटों के आगे वहां पर टप्पा खाने के बाद सीधी आ रही थी गेंद नीचे रहती हुई वहां पर टर्न करने की कोशिश हो रही थी उस गेंद को वहां पर स्वप्निल एडवे द्वारा मिड विकेट की क्षेत्र में कलाइयों के सहारे मोड़ने की कोशिश होती हुई वहां पर पकड़े गए विकेटों के आगे आखिर में गेंद को रोकने की कोशिश भी रोक नहीं पाए तो एलबीडब्ल्यू करार दिए गए वहां पर अर्धशतक की पारी समाप्त होती हुई स्वप्निल एडवे के रूप में तीसरा विकेट खोती हुई अब साई स्पोर्ट्स उगली टाइगर्स 3 विकेटें खो रही है 72 रन बने हैं इस ओवर में जरूर वापसी दिलाई है विश्रुत स्ट्राइकर्स को राहुल नाइक ने 2 विकेटें चटका रहे हैं जलपान समय के बाद फिर से एक बार विकेट गिरता हुआ साई स्पोर्ट्स उगली टाइगर्स का स्वप्निल एडवे आउट हुए 2 रन जरूर बना रहे थे पिछली गेंद पर अगली गेंद पर सीधी गेंद पर अच्छी गेंद फिर से एक बार टप्पा खाने के बाद तेजी से आई सीधी वहां पर उस गेंद को रोका गेंद फील्ड हुई राहुल नाइक द्वारा फॉलो पे गेंद को रोकने के बाद फिर से एक बार अपने बॉलिंग बार पर उसको रुका हुआ बात कर इस मरतबा अंदर आती हुई गेंद को समझ नहीं पाए वहां पर ऐसे तैसे खेला उस गेंद को राहुल छिंदे ने फिर से एक बार रनों पर अंकुश लगाते हुए इस ओवर में काफी बढ़िया ओवर समाप्त वहां पर राहुल नाइक द्वारा 3 रन देकर 2 विकेट चटकाए इस ओवर में राहुल नाइक ने तो कुल रन संख्या 72 3 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर का खेल पूरा हुआ है तो जीत के लिए अभी भी 94 रन बनाने हैं बचे हुए 60 गेंदों में 94 रन रिक्वायर्ड साई स्पोर्ट्स उगली टाइगर्स रिक्वायर्ड 94 रन इन 60 बॉल्स तो 10 ओवरों में 94 रनों का लक्ष्य अभी भी है वहां पर लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं साई स्पोर्ट्स उगली टाइगर्स 166 रनों का अब तक रन जोड़ रहे हैं 72 तो जीत के लिए अभी भी रन बनाने हैं 94 बचे हुए 60 गेंदों में तो अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन चलता हुआ लगातार राहुल नाइक द्वारा इस टूर्नामेंट में अब तक पिछले मैच में भी अच्छा प्रदर्शन रहा है गेंदबाजी में तो राहुल नाइक जाने जाते हैं बल्ले से लेकिन वहां पर अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाजी में विकेट चटकाया वहां पर पिछले ओवर में 2 विकेट चटकाए एक सेट बल्लेबाज को आउट किया था वहां पर स्वप्निल एडवे को और यश कर्षनवर दोनों सेट बल्लेबाजों को विकेट चटकाया अच्छी गेंद इस पर तबा टपा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ आती हुई गेंद को बल्ले का मुंह खोलते हुए खेला था पॉइंट के खिलाड़ी अंगद राज जब तक गेंद को आकर उठाते 1 रन पूरा हुआ खाता खोलने में कामयाब सरफराज बुल्ला स्कोर बढ़ता हुआ 73 3 विकेट के नुकसान पर 73 लॉस ऑफ 3 विकेट्स स्ट्राइक पर राहुल शिंदे और एक अनुभवी खिलाड़ी है राहुल शिंदे इस बार तबा बैकफुट पर गए खेल आगे इनको हाँ ना होता हुआ वहां पर फिर से 12 रन की कोशिश वापस पलटे सही समय में वहां पर खतरा जरूर बन रहा था सरफराज बुल्ला के लिए अंततः पहुंच गए वहां पर सरफराज बुल्ला 73 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर पारी का 11वां ओवर चलता हुआ जैसे ही शॉट खेला वहां पर राहुल शिंदे रन की कोशिश वहां पर फिर सरफराज बुल्ला काफी आगे निकल कर आए फिर जैसे देखा वहां पर खिलाड़ी झपट पड़ रहा है गेंद पर तो वापस भेजा वहां पर राहुल शिंदे ने सरफराज बुल्ला को तो उसको रुका हुआ 73 3 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद लेकर आकाश असलकर सामना करेंगे राहुल शिंदे ओवर पिच गेंद थी आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश ऊपरी किनारा क्या छूटा वहां पर दत्त प्रसाद द्वारा
एक रन की कोशिश होती हुई फिर से एक बार इस मर्तबा रन आउट हुए वहां पर कैच छूटा, जीवन दान मिला। रन की कोशिश राहुल शिंदे द्वारा होती हुई, एक रन की कोशिश वहां पर महंगा पड़ा राहुल शिंदे का विकेट मिलता हुआ। आखिरकार विश्रुत स्ट्राइकर्स को चौथी सफलता मिलती हुई। 73 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। काफी नाटमय रहा वहां पर पिछली गेंद पर, काफी मनोरंजनीय कैच छूटा। एक हवा में गेंद थी कवर्स की दिशा में, शॉर्ट कवर के खिलाड़ी दत्त प्रसाद एक अच्छे खिलाड़ी कैच लपकने की कोशिश जरूर कर रहे थे। दूसरे तीसरे चौथे प्रयास में वहां पर गेंद हाथ से छिटकी, फिर रन की कोशिश भी वहां पर। बल्लेबाजों को लालच हुई एक रन की, रन के लिए निकल पड़े राहुल शिंदे। रन आउट हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर। जिस बल्लेबाज का कैच छूट रहा था फिर से एक मौका दिया वहां पर राहुल शिंदे ने उनको। फिर से एक बार दत्त प्रसाद ने गेंद को उठाया, थ्रो किया सीधे वहां पर आकाश अतल करके हाथों पे, तो रन आउट होता हुआ वहां पर चौथे विकेट के रूप में राहुल शिंदे आउट हुए। डॉमिनिक अब नए बल्लेबाज मैदान में। 73 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। पिछले 2 ओवरों में पूरी तरह से वहां पर वापसी होती हुई विश्रुत स्ट्राइकर्स द्वारा इस मैच में 3 विकेट चटका रहे पिछले 2 ओवरों में। इस ओवर में भी एक रन आउट का विकेट मिला है, पिछले ओवर में 2 विकेट चटका रहे थे राहुल शिंदे। स्वीप करने की कोशिश इस मर्तबा लेग स्टंप से बाहर टप्पा खाते हुई गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, थोड़ी सी अपील हुई, उस अपील को नकारा अंपायर ने, तो स्कोर रुका हुआ 73 4 विकेट के नुकसान पर। राहुल नायक को भी 2 सफलताएं मिली है पहले ओवर में। फिर से बार फ्लैटेड गेंद थी, आमंत्रण दे रहे थे गेंद को खेलने की कोशिश ऑन साइड की दिशा में कर रहे थे सरफराज मुल्ला। बाहरी किनारे लेते हुए गेंद पॉइंट की दिशा में जाती हुई, तो ये दबाव होता है बल्लेबाजों पर जब विकेटें गिरती हैं, तो दबाव नजर आता हुआ अब बल्लेबाजों पर। बैकफुट पर गए खेल आगे इनको पॉइंट की दिशा में। अंगद राज तलमनी ने गेंद को उठाया, रन की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां पर। जानते हैं एक खिलाड़ी रन आउट हुए हैं उनके वहां पर, एक बल्लेबाज राहुल शिंदे। इस ओवर में भी 1 रन खर्च हुआ आकाश आसलकर द्वारा। 2 ओवरों की गेंदबाजी किया आकाश ने, 6 रन खर्चे हैं। अब तक 11 ओवर का खेल पूरा हुआ है। कुल रन संख्या 73 4 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 11 ओवर 73 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो डोमिनिक फर्नांडिस नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है सरफराज मुल्ला। एक अनुभवी खिलाड़ी डोमिनिक, क्षमता है डोमिनिक के बल्ले में भी। जीत के लिए अभी भी रन बनाने हैं साई स्पोर्ट्स सुपली टाइगर्स को 93 54 गेंदों में 93 रन रिक्वायर्ड इन 54 बॉल्स। 9 ओवर में 93 रन की जरूरत जीत के लिए साई स्पोर्ट्स सुपली टाइगर्स को। और पिच गेंद थी, फुल टॉस बनाकर खेला उस गेंद को मिड विकेट की दिशा में। अंगद राज ने गेंद को रोका, 1 रन लेने का मौका। डोमिनिक ने अपना खाता खोला, स्कोर बढ़ता हुआ 74 4 विकेट के नुकसान पर। 74 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। तो काफी अच्छा मैच चलता हुआ अब तक। आज के दिन का दूसरा मैच विश्रुत स्ट्राइकर्स और साई स्पोर्ट्स सुपली टाइगर्स के बीच। स्ट्राइक पर सरफराज, कट किया गेंद को पॉइंट की दिशा में। खिलाड़ी तैनात है, मदन ने गेंद को उठाया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। साफ सुथरी फील्डिंग मदन बेलगांवकर द्वारा। स्कोर रुका हुआ 74। फिर से एक बार ओवर पिच बनाकर खेला गेंद को मिड विकेट की दिशा में। इस मर्तबा सरफराज मुल्ला के बल्ले से 1 रन बना। स्कोर बढ़ता हुआ 75 4 विकेट के नुकसान पर। 75 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। फ्लिक किया इस मर्तबा गेंद को मिड विकेट की दिशा में। फिर से एक बार अंगद राज हरकत में आए, 1 रन से संतुष्ट हुए बल्लेबाज डोमिनिक। स्कोर बढ़ता हुआ 76 4 विकेट के नुकसान पर। 76 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। पारी का 12वां ओवर चलता हुआ 76 रन बने हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद अंदर आती हुई गेंद को खेला। शॉर्ट कवर के खिलाड़ी दत्त प्रसाद सुनील पाटिल ने गेंद को रोका। अच्छी फील्डिंग, 1 रन बना।
डॉट के रूप में गेंद आई वहां पर, स्कोर रुका हुआ 76। इस बार बैकफुट पर जाकर खेलने की कट करने की कोशिश होती हुई है, छटाती हुई गेंद बल्लेबाज को विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति, 12 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 76 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 76 लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 ओवर्स। तो अभी भी 8 ओवरों का खेल शेष इस पारी में। 48 गेंदों में जीत के लिए रन बनाने हैं 90। 90 रन रिक्वायर्ड इन 48 बॉल्स। 8 ओवरों में 90 रनों की जरूरत जीत के लिए साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स को। एक समय ऐसा लग रहा था वहां पर जब स्वप्निल और यश कल्सनवर के बीच साझेदारी बन रही थी, तो इसके बाद जैसे ही वहां पर एक ओवर में दोनों विकेटें गिरे, राहुल नाइक ने दोनों बल्लेबाजों को आउट किया, उसके बाद राहुल शिंदे रन आउट हुए, तो वापसी की कोशिश वहां पर फिर से चलती हुई साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स की तरफ से। स्ट्राइक पर डोमिनिक, गेंदबाजी के लिए आकाश। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, फिर से एक बार गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं, पॉइंट की दिशा में गेंद आई, 1 रन बना, स्कोर बढ़ता हुआ 77, 4 विकेट के नुकसान पर। 77 लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं आकाश। स्ट्राइक पर सरफराज मुल्ला। इस मरतबा आमंत्रण दे रहे थे गेंद पर, वहां पर उछाला उस गेंद को, बाहरी किनारा लेते हुए गेंद शॉर्ट कवर के खिलाड़ी इस मरतबा दत्त प्रसाद ने कैच लपका। सरफराज मुल्ला की पारी समाप्त होती हुई 5वीं विकेट का पतन होता हुआ साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स। 77 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 77 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। आधी टीम पवेलियन पहुंच चुकी है, 77 रन अब तक बने हैं। 166 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक 5 विकेटें खो रही है साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स। 77 रन बने हैं। तो अच्छी गेंदबाजी वहां पर आकाश असलकर द्वारा पहली सफलता आकाश को मिलती हुई। सरफराज मुल्ला का विकेट चटकाया, वहां पर एक फ्लैटेड गेंद दे रहे थे, वहां पर आमंत्रण दे रहे थे बल्लेबाज को। क्रॉस द लाइन खेल रहे थे बल्लेबाज सरफराज मुल्ला उस गेंद पर। बाहरी किनारा लेते हुए गेंद कवर्स की दिशा में, एक युवा खिलाड़ी आकाश असलकर अच्छा प्रदर्शन अब तक उनकी गेंदबाजी में चलता हुआ। अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं। 7 रन खर्चे, 1 सफलता उनके खाते में है। डोमिनिक नॉन स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज राजेंद्र दंगनवर। दाएं और बाएं की जोड़ी अब मैदान में। बाएं के बल्लेबाज राजेंद्र स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर डोमिनिक फर्नांडिस। तो दोनों बल्लेबाजों पर अब भार बना हुआ है साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स की तरफ से। 5 विकेट खो रही है, 77 रन बने हैं, जीत के लिए रन बनाने हैं 89 बचे हुए 46 गेंदों में। 89 रन रिक्वायर्ड इन 46 बॉल्स। आकाश असलकर इस मरतबा राइट आर्म राउंड 2 विकेट। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर गए, पुल किया, गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं। मनोज पाटिल ने गेंद को रोका, 1 रन बना राजेंद्र के खाते में। खाता खुलता हुआ राजेंद्र का 1 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 78, 5 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर डोमिनिक, अगली गेंद लेकर आकाश असलकर। थोड़ी सी तेज हवा है मैदान में, अच्छा मौसम क्रिकेट के लिए। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पूर्व मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई। इस मरतबा कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी को, सीधे बाहर गेंद 6 रन के लिए। पहला छक्का डोमिनिक के बल्ले से आता हुआ। जो दबाव बना रहे थे वहां पर, उस दबाव को कब किया इस छक्के ने मिड विकेट की दिशा में। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर पुल किया डोमिनिक ने। इस छक्के की सहायता से स्कोर छलांग लगाता हुआ 84, 5 विकेट के नुकसान पर। 82 रन रिक्वायर्ड, 44 बॉल्स। फिर से एक बार ओवर पिच गेंद उछाला है, गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में रोक नहीं पाए वहां पर रबारी दफेदार। गेंद गई छटाते हुए खिलाड़ी को 4 रन के लिए। एक छक्का लगने के बाद अगली गेंद पर चौका लगता हुआ डोमिनिक के बल्ले से स्कोर बढ़ता हुआ 88, 5 विकेट के नुकसान पर।
आज नहीं तो भी फील्ड तो करना था, रोकना तो रोकना पूरा भागा ना। तो आखिरी गेंद शेष इस ओवर की। तो पिछली 2 गेंदों पर महंगे साबित होते हुए आकाश असलकर इस मर्तबा वहां पर मौका था खिलाड़ी को, गेंद रोक भी सकते थे वहां पर, कैच का मौका, कैच की कोशिश होती हुई वहां पर। इसके बाद 7 है। पारी का 13वां ओवर चलता हुआ 88 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। तो डोमिनिक स्ट्राइक पर है, 13 रन बनाकर खेल रहे 5 गेंदों में, 1 चौका 1 छक्का लगाया अब तक। फिर से बार बैकफुट पर गए, खेला मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी तैनात है, राहुल नाइक ने गेंद को रोका, 1 रन लेने का मौका, स्कोर बढ़ता हुआ 89, 5 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 89 लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 13 ओवर्स। तो अभी भी 7 ओवरों का खेल शेष इस पारी में, 42 गेंदों में 77 रन बनाने हैं जीत के लिए, 77 रन रिक्वायर्ड इन 42 बॉल्स। मोहन बोरे बेलगाम प्रीमियर लीग 6वां एडिशन चलता हुआ यूनियन जिमखाना के मैदान पर आज के दिन का दूसरा मैच है साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स और विश्रुति स्ट्राइकर्स के बीच। टॉस कौन जीता था? साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, उसके बाद 165 रन खर्चे, विश्रुति स्ट्राइकर्स के लिए 166 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। तो अब तक 89 रन जोड़ रहे हैं, जीत के लिए अभी भी रन बनाने हैं 77, बचे हुए 42 गेंदों में, 77 रन रिक्वायर्ड इन 42 बॉल्स। अभी भी 7 ओवरों का खेल शेष है, 7 ओवरों में 77 रन बनाने हैं जीत के लिए साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स को। मैच में रोमांच अभी भी बहुत बरकरार है, क्योंकि डोमिनिक स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर राजेंद्र दगनवर, बायत के बल्लेबाज। ये जोड़ी है वहां पर साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स की तरफ से। तो गेंदबाजी के लिए राहुल नाइक पारी का 14 ओवर लेकर पुलिस लाइन से गेंदबाजी करेंगे। और पिच बनाकर खेलने की कोशिश, गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं, अंदरूनी किनारा लेते हुए गेंद शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में आती हुई खुद राहुल नाइक दौड़े, उन्होंने गेंद को रोका, 1 रन बना, स्कोर बढ़ता हुआ 90 रनों पर 90 लॉस ऑफ 5 विकेट। साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स 90 रन बना रही है, 90 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। पारी का 14 ओवर चलता हुआ राहुल नाइक फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे राजेंद्र के लिए। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, दिशा दिखाई गेंद को, वहां पर गली की दिशा में गेंद आती हुई पॉइंट के खिलाड़ी दत्त प्रसाद ने गेंद को रोका, जब तक मौका था 1 रन बनाने का वहां पर राजेंद्र के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 91, 5 विकेट के नुकसान पर 91 लॉस ऑफ 5 विकेट। स्ट्राइक पर डोमिनिक, इस ओवर में अगली गेंद लेकर राहुल नाइक, और पिच बनाकर स्लैश किया है, वहां पर पॉइंट और गली के बीच में से गेंद जाती हुई दोनों खिलाड़ियों के बीच से गेंद को निकालने में कामयाब डोमिनिक, 4 रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 95। अब आक्रामकता शुरू हुई है वहां पर डोमिनिक द्वारा, पिछले ओवर में भी 1 चौका 1 छक्का लगा रहे थे, इस ओवर में भी चौका लगा रहे वहां पर पॉइंट की दिशा में। इस मरतबा और पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी, गेंद स्लैश किया, उस गेंद को डोमिनिक ने पॉइंट और गली के बीच में से गेंद गई 4 रन के लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 95, 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला वहां पर, शॉर्ट कवर के खिलाड़ी सुनील पाटिल जब तक गेंद तक पहुंचते 1 रन पूरा हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 96, 5 विकेट के नुकसान पर 96 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। तो जीत के लिए अभी भी 70 रन बनाने हैं, बचे हुए 38 गेंदों में, 70 रन रिक्वायर्ड इन 38 बॉल्स। अच्छी गेंद इस मरतबा, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई, कांटा बदलती हुई गेंद बल्लेबाज को छटाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में।
छठा ओवर राजेंद्र को, अगली गेंद लेकर फिर से एक बार राहुल लाइक का फुल टॉस गेंद खेला है, वहां पर गेंद को लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में गेंद आती हुई आकाश असल करने गेंद को उठाया, 1 रन से संतुष्ट हुए बल्लेबाज, स्कोर बढ़ता हुआ 97, 14 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 97, लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 14 ओवर्स। तो अभी भी 36 गेंदों का खेल शेष है, 69 रन बनाने हैं जीत के लिए। 14 हो गया, 14 ओवर हो गया, और एक और बोलूं? नहीं, अभी मैच अच्छा है, 6 ओवर में 69 चाहिए। तो अभी भी 6 ओवरों में 69 रनों की जरूरत है जीत के लिए। साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स को 69 रन रिक्वायर्ड इन 36 बॉल्स। अब तक 97 रन बना रहे हैं साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स 5 विकेट के नुकसान पर। तो 10 गेंदों में 20 रनों की साझेदारी चलती हुई अब तक डोमिनिक फर्नांडिस और राजेंद्र दंगटवर के बीच 20 रन जोड़े हैं इन दोनों बल्लेबाजों ने 10 गेंदों में। तो गेंदबाजी के लिए फिर से आकाश असलकर गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक पर राजेंद्र। पारी का 15वां ओवर चलता हुआ, 97 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी मार रहे हो? सुनील सर का 69 रनों की जरूरत जीत के लिए, बचे हुए 36 गेंदों में। राइट आर्म राउंड द विकेट आकाश असलकर। फ्लैटेड गेंद थी, ओवर पिच बनाकर उछाला है गेंद को रोका वहां पर बाउंड्री लाइन के अंदर। सनील लॉक ऑफ के खिलाड़ी ने 1 रन बना, 2 रन बने वहां पर, स्कोर बढ़ता हुआ 99, 5 विकेट के नुकसान पर। फ्लैटेड गेंद थी, ओवर पिच बनाकर उछाला था राजेंद्र ने उस गेंद को। फिर से एक बार आकाश, स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज राजेंद्र दंगलवर। इस मर्तबा खेला वहां पर गेंद मिड विकेट की दिशा में इस मर्तबा आती हुई अंगद राज तलमनी ने गेंद को रोका, 1 रन से संतुष्ट हुए बल्लेबाज इस मर्तबा। इस 1 रन के साथ 100 रन पूरे होते हुए साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स 5 विकेट के नुकसान पर, 100 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। पारी का 15 ओवर चलता हुआ 100 रन बन रहे हैं जीत के लिए, अभी भी 66 रन बनाने हैं। स्ट्राइक पर डोमिनिक, आड़े बल्ले से खेला है गेंद को, गेंद जा रही है वहां पर स्क्वायर लेग की क्षेत्र में, खाली क्षेत्र तो वहां पर मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से गेंद को उछाला इस मर्तबा। आड़े बल्ले से खेला, स्वीप किया वहां पर उस गेंद को, टप्पा खाने के बाद आने दिया उस गेंद को। फिर से एक चाव का बत्ता वहां पर डोमिनिक के बल्ले से, स्कोर बढ़ता हुआ 104, 5 विकेट के नुकसान पर। तो 62 रनों की जरूरत बचे हुए 33 गेंदों में, 62 रन रिक्वायर्ड इन 33 बॉल्स। 24 रन बनाकर खेल रहे अब तक डोमिनिक। फिर से एक बार फ्लैट दे रहे थे गेंद को, उछाला गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक चौके के बाद फिर से एक छक्का लगता हुआ डोमिनिक के बल्ले से, स्कोर बढ़ता हुआ 110, 110 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। तो जीत के लिए अभी भी रन बनाने हैं 56, 32 गेंदों में। अच्छी बल्लेबाजी डोमिनिक फर्नांडिस द्वारा। तो 30 रन बनाकर खेल रहे हैं 11 गेंदों में। डोमिनिक फर्नांडिस का भी धुआंधार शुरुआत की है आते ही वहां पर, 11 गेंदों में 30 रन बनाए अब तक, 2 छक्के और 3 चौकों की सहायता से। तो जीत के लिए रन बनाने हैं 56, बचे हुए 32 गेंदों में। 56 रन रिक्वायर्ड इन 32 बॉल्स। कुल रन संख्या है 110। पारी का 15 ओवर चलता हुआ, अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं आकाश असलकर। पिछले 2 ओवरों में काफी महंगे साबित हो रहे हैं वहां पर आकाश। चल रहा था
सलीम हाय हेलो है हाय आ जाओ रवि सर है रवि सर जो पारी का 15वां ओवर चलता हुआ 110 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। तो अभी भी 2 गेंदें शेष इस ओवर की है। 2 और 6 दिया था नहीं अपने कोटे का चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं आकाश असलकर। 32 रन खर्चे, अब तक एक सफलता हासिल की है। पहले 2 ओवरों में 6 रन खर्चे थे, उसके बाद अगले 2 ओवरों में काफी रन बटोरे हैं वहां पर डोमिनिक फर्नांडिस ने। आकाश असलकर की गेंदबाजी पर प्रहार चलता हुआ अभी भी 2 गेंदें शेष है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, खेला है गेंद को स्वीपर कवर की दिशा में। खिलाड़ी तैनात है मनोज पाटिल इस पर। तब अच्छी फील्डिंग, गेंद को रोकने में कामयाब हुए। 1 रन बना, स्कोर बढ़ता हुआ 111। नेल्सन 111 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 1-1-1 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अच्छी गेंदबाजी वहां पर फिर से एक बार। इस मरतबा खेला है गेंद को स्वीपर कवर की दिशा में। राजेंद्र ने, राहुल नाइक ने गेंद को रोका। 1 रन लेने का मौका, स्कोर बढ़ता हुआ 112। 5 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर का खेल पूरा हुआ अब तक। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 ओवर्स 1-1-2 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 112 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स रिक्वायर्ड 54 रन्स इन 30 बॉल्स। 54 रनों की जरूरत बचे हुए 30 गेंदों में। साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स रिक्वायर्ड 54 रन्स इन 30 बॉल्स। 5 ओवरों में 54 रनों की जरूरत है जीत के लिए। रिक्वायर्ड रेट 10.80 साई स्पोर्ट्स के लिए बनता हुआ। 54 रनों की जरूरत है बचे हुए 30 गेंदों में। रोमांच मोड़ पर मैच है। 54 runs required 54 runs in 30 balls for Sai Sports Subli Tigers। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज राजेंद्र दंगन और नॉन स्ट्राइक पर डोमिनिक। तो 15 ओवर के समाप्ति के बाद 112 रन बने हैं गेंदबाजी के लिए मदन बेलगांव कराते हुए। अपने कोटे का तीसरा और पारी का 15वां ओवर लेकर मदन बेलगांवकर। पारी का 16वां ओवर चलता हुआ। आज के दिन का दूसरा मैच विश्रुत स्ट्राइकर्स और साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के बीच। फिर से एक बार अच्छी वापसी वहां पर साई स्पोर्ट्स द्वारा। इस बार स्लैश किया, कट गया गेंद को पॉइंट की दिशा में। स्वीपर कवर के खिलाड़ी ने गेंद को रोका। अच्छी फील्डिंग मनोज पाटिल ने गेंद को रोका। स्कोर बढ़ता हुआ 113। 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छा क्रिकेट चलता हुआ, अच्छा मुकाबला दोनों तरफा विश्रुत स्ट्राइकर्स और साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के बीच। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद हल्के हाथों से खेला कवर्स की दिशा में। शॉर्ट कवर के खिलाड़ी जब तक गेंद को उठाते वहां पर सनील। 1 रन बना, स्कोर बढ़ता हुआ 114। 5 विकेट के नुकसान पर। जब स्वप्निल अड़वे और यश कल्सन रन आउट हुए उसके बाद राहुल शिंदे का विकेट चटकाया विश्रुत स्ट्राइकर्स ने। 5 विकेट खोने के बाद जो वहां पर दबाव बना रहे थे उस दबाव को कम किया दोनों बल्लेबाजों ने। राजेंद्र दंगन के बल्ले से इस मरतबा मिड विकेट के दिशा में छक्का लगता हुआ। इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ, छलांग लगाता हुआ 120। 5 विकेट के नुकसान पर। 120 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। तो जीत के लिए अभी भी रन बनाने हैं 46 बचे हुए 27 गेंदों में। इस बार लंबा छक्का राजेंद्र के बल्ले से आता हुआ मिड विकेट की क्षेत्र में। विद द स्पीड खेला उस गेंद को वहां पर। अरे बॉलर रह के नहीं था बरोबर। अंगद को करना तो रे, अंगद को करना था। अभी अंगद को करना था। लेफ्टी करके नहीं काटे, लेफ्टी बैट्समैन।
राजेंद्र दंगनवर गेंदबाजी कर रहे हैं मदन बेलगांवकर। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद बल्लेबाज राजेंद्र को छटाते हुए विकेट कीपर ने गैदर किया गेंद को रोशन जवड़ी। स्कोर रुका हुआ 120, 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार खेला गेंद को, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग पॉइंट के खिलाड़ी द्वारा। खतरा बन रहा था वहां पर, जैसे ही देखा खिलाड़ी तैनात है अंगद राज ने गेंद को उठाया, वापस पलटे वहां पर राजेंद्र दंगन और अपने क्रीज में। स्कोर रुका हुआ 120, 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में आखिरी मर्तबा मदन बेलगांवकर। तो छक्का लगने के बाद भी अब तक 8 रन खर्चे इस ओवर में मदन बेलगांवकर ने। आखिरी गेंद शेष, खेला गेंद को इस मर्तबा ऑन द राइस खेला, स्वीपर कवर के खिलाड़ी ने गेंद को रोका। 1 रन बना, स्कोर बढ़ता हुआ 121। 16 ओवर का खेल पूरा हुआ अब तक। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 16 ओवर्स 121, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। तो 45 रनों की जरूरत है जीत के लिए, बचे हुए 24 गेंदों में। तो रोमांच मोड पर मैच है, 24 गेंदे 45 रन बनाने हैं जीत के लिए साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स को। 45 रन रिक्वायर्ड 45 रन्स इन 24 बॉल्स। तो मोहन मोरे बेलगाम प्रीमियर लीग छठा एडिशन चलता हुआ यूनियन जिमखाना के मैदान पर आज के दिन का दूसरा मैच चल रहा है विश्रुति स्ट्राइकर्स और साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के बीच। 166 रनों के लक्ष्य के जवाब में अब तक 121 रन बना रही है साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स। जीत के लिए अब 24 गेंदों में 45 रनों की जरूरत। गेंदबाजी में परिवर्तन, रब्बानी दफेदार गेंदबाजी के लिए अपने कोटे का तीसरा और पारी का 17वां ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे रब्बानी। कमेंट्री बॉक्स एंड से स्ट्राइक पर राजेंद्र, नॉन स्ट्राइक पर डॉमिनिक। अब रोमांच मोड पर मैच बरकरार है, वहां पर 24 गेंदों में 45 रनों की जरूरत है। जो आशाएं बन रही थी साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स की तरफ से, डॉमिनिक और राजेंद्र ने अब तक खरे उतरे जरूर है। 44 रन जोड़े अब तक राजेंद्र और डॉमिनिक ने 22 गेंदों में। 22 गेंदों में 44 रनों की साझेदारी बन रही है डॉमिनिक और राजेंद्र के बीच। 45 रनों की जरूरत बचे हुए 24 गेंदों में। फुल टॉस गेंद थी, खेला उस गेंद को टर्न किया, लो फुल टॉस गेंद पर मिड विकेट की दिशा में। 1 रन से संतुष्ट हुए बल्लेबाज राजेंद्र। स्कोर बढ़ता हुआ 122, 5 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर अब डॉमिनिक। 23 गेंदों में 44 रनों की जरूरत। 44 रन रिक्वायर्ड इन 23 बॉल्स। 43 रन रिक्वायर्ड इन 23 बॉल्स। 44 रन रिक्वायर्ड इन 23 बॉल्स। और पिच गेंद थी, ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में। खिलाड़ी तैनात है अंगद राज, हितलबनी ने गेंद को उठाया। 1 रन लेने का मौका। स्कोर बढ़ता हुआ 123, 123, लॉस ऑफ 5 विकेट्स साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स। तो 43 रनों की जरूरत बचे हुए 22 गेंदों में। अच्छी गेंदबाजी, अब तक 2 गेंदों पर 2 रन खर्चे हैं रब्बानी दफेदार। राइट आर्म राउंड 2 विकेट इस बार राजेंद्र दंगन ओवर के लिए। फुल टॉस गेंद थी, उछाला है गेंद को मिड विकेट की दिशा में। खाली क्षेत्र, वहां पर गेंद गई। गेंद गई वहां पर 6 रन के लिए मिड विकेट की दिशा में। फुल टॉस गेंद थी इस मर्तबा। धीमी गति की गेंद करने की कोशिश, परिवर्तन कर रहे थे रब्बानी दफेदार। उस गेंद पर आक्रमण किया राजेंद्र दंगनौर के बल्ले से। दूसरा छक्का लगता हुआ मिड विकेट की दिशा में। इस मर्तबा खेला है गेंद को थर्ड मैन की दिशा में। गेंद जाती हुई बाहरी किनारा लेते हुए 4 रन के लिए। तो भाग्यशाली रन इस मर्तबा बने वहां पर। राजेंद्र के बल्ले से फिर से एक चौका लगता हुआ। एक छक्का लगने के बाद अगली गेंद पर चौका बटोर रहे वहां पर। शॉर्ट थर्ड में रखा गया था वहां पर खिलाड़ी को। जैसे ही देखा वहां पर बल्ले का मुंह खोलते हुए खेला था राजेंद्र दंगन, ने उस गेंद को 4 रन बने वहां पर। स्कोर बढ़ता हुआ 133,
33 रनों की जरूरत जीत के लिए 20 गेंदों में। तो साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स फिर से एक बार वापसी करते हुए इस मैच में 33 रनों की जरूरत है जीत के लिए, बचे हुए 20 गेंदों में। 33 रन रिक्वायर्ड इन 20 बॉल्स। पटकी भी गेंद इस मरतबा छटाया रब्बानी दफेदार ने। अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश होती हुई राजेंद्र को इस मरतबा छटाया वहां पर। इसको रुका हुआ 133, 5 विकेट के नुकसान पर। तो 33 रनों की जरूरत है जीत के लिए। 33 रन रिक्वायर्ड इन 19 बॉल्स। तो आखिरी गेंद इस ओवर की शेष। रब्बानी दफेदार राइट आर्म राउंड द विकेट, सामना करेंगे राजेंद्र दंगनवर। अच्छी गेंद इस मरतबा रोक नहीं पाए वहां पर। खिलाड़ी भी पीछा जरूर कर रहे थे, रोक नहीं पाए शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी भी। लेग बाइस के रूप में 4 रन बने अतिरिक्त के रूप में। साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स के लिए भाग्यशाली रन जरूर है वहां पर। इस तरह से गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद को खेलने की कोशिश होती हुई वहां पर बल्लेबाज के पैड से टकराई गेंद, उछाल लेती हुई गेंद थी तो रोक नहीं पाए वहां पर। काफी करीब से गेंद निकली, विकेट कीपर रोशन जवड़ी के गेंद गई वहां पर। 4 रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 137, 5 विकेट के नुकसान पर। तो जीत के लिए अभी भी रन बनाने हैं 29, बचे हुए 18 गेंदों में। 3 ओवरों का खेल शेष है। 3 ओवरों में 29 रनों की जरूरत है जीत के लिए साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स को। 18 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है। 29 रन रिक्वायर्ड इन 18 बॉल्स। आखिरी गेंद, आखिरी ओवर, आखिरी गेंद, आखिरी रन तक चलेगा रोमांच इस मैच में। तो 18 गेंदों में 29 रनों की जरूरत। जो दबाव बना रहे थे वहां पर विश्रुति स्ट्राइकर्स 5 विकेट खोने के बाद साझेदारी बनती हुई 60 रनों की। 60 रन जोड़े हैं राजेंद्र दंगनवर और डॉमिनिक ने। 28 गेंदों में 60 रनों की साझेदारी। काफी ताबड़तोड़ और धुआंधार पारी चलती हुई वहां पर साझेदारी बन रही है डॉमिनिक और राजेंद्र के बीच। बदन फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए हल्के हाथों से खेला, शॉट कवर की दिशा में गेंद आती हुई। खिलाड़ी तैनात है सनील जब तक गेंद को उठाते। 1 रन पूरा हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 138, 5 विकेट के नुकसान पर। 17 गेंदों में 28 रनों की जरूरत जीत के लिए। 17 गेंदें 28 रन। अगली गेंद लेकर बदन, सामना करेंगे राजेंद्र। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर गए, खेला गेंद को वहां पर लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में गेंद आती हुई। खिलाड़ी तैनात है, आकाश हासिल करने गेंद को उठाया, दूसरे रन की कोशिश, दूसरा रन भी पूरा होता हुआ। 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 140, 5 विकेट के नुकसान पर। 63 रनों की साझेदारी चलती हुई अब तक 30 गेंदों में। राजेंद्र और डॉमिनिक के बीच 63 रन जोड़े हैं दोनों बल्लेबाजों ने। आड़े बल्ले से उछाला गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद नाकाम रहे वहां पर खिलाड़ी। गेंद काफी देर दूर तक वहां पर देर तक हवा में थी गेंद, कोशिश जरूर कर रहे थे वहां पर मिड विकेट के खिलाड़ी। चार रन बने वहां पर, तो सही से अनुमान नहीं लगा पाए खिलाड़ी उस गेंद को। काफी बढ़िया शॉट, रोलिंग शॉट खेला था राजेंद्र दंगनवर ने उस गेंद को मिड विकेट की दिशा में। इस बार स्लैश किया पॉइंट की दिशा में, अच्छी फील्डिंग इस मरतबा अंगद राज ने गेंद को रोका। 1 रन लेने का मौका, स्कोर बढ़ता हुआ 145, 5 विकेट के नुकसान पर। 145, लॉस ऑफ 5 विकेट। तो जीत के लिए रन बनाने हैं 21, बचे हुए 14 गेंदों में। तो अभी भी 2 गेंदें शेष इस ओवर की। पारी का 18वां ओवर चलता हुआ 145 रन बने। इस मरतबा अच्छी गेंद छटाने में कामयाब। डॉट गेंदें जरूर वहां पर मान्य रखती है विश्रुति स्ट्राइकर्स के लिए। स्कोर रुका हुआ अब तक 145, 13 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। पारी का 18वां ओवर चलता हुआ 13 गेंदें 21 रन। इस मरतबा भी छटाया, आखिर के 2 गेंदें डॉट करने में सफल मदन बेलगांवकर की अच्छी वापसी। तो 18 ओवर का खेल पूरा हुआ, 145 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 2 ओवरों में 21 रन बनाने हैं जीत के लिए साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स को। 12 गेंदें 21 रनों की जरूरत। 21 रन रिक्वायर्ड
इन 12 बॉल्स। तो 2 ओवरों में 21 रन बनाने हैं। 10.50 के रन रेट से बल्लेबाजी करनी होगी 2 ओवरों में, तो आसान नहीं है। 12 गेंदों में 21 रन, मैच दोनों तरफा है। 12 गेंदे 21 रन बनाने हैं जीत के लिए। 5 विकेटें झटका रहे हैं विश्रुत स्ट्राइकर्स। तो देखना है गेंदबाज 2 ओवरों के लिए कौन रहेंगे विश्रुत स्ट्राइकर्स की तरफ से। 12 गेंदे 21 रनों की जरूरत। अब रब्बानी दफेदार गेंदबाजी के लिए पारी का 19वां ओवर लेकर। काफी अच्छी गेंदबाजी जरूर हुई है विश्रुत स्ट्राइकर्स द्वारा। 18 ओवरों में अब तक कोई अतिरिक्त वाइड गेंद नहीं हुई है। इस बार दबा अंदराइज खेला है गेंद को, स्वीपर कवर की दिशा में गेंद आती हुई। सुनील पाटिल ने गेंद को उठाया पहले प्रयास में। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 रन बना, स्कोर बढ़ता हुआ 146। 11 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। गेंदबाज है रब्बानी दफेदार, स्ट्राइक पर डोमिनिक फर्नांडिस। एक अनुभवी गेंदबाज सामने है और एक अनुभवी बल्लेबाज। डोमिनिक स्ट्राइक पर गेंदबाजी कर रहे हैं रब्बानी दफेदार। तो 11 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है जीत के लिए साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स को। एक अच्छा मुकाबला गेंद और बल्ले के बीच चलता हुआ। सतहत्तर रनों पर पहले 5वां विकेट खो रही थी साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स। उसके बाद अब रन संख्या है 146, 5 विकेट के नुकसान पर। तो 11 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। पटकी भी गेंद बैकफुट पर गए, जगह बनाकर खेला उस गेंद को फाइल की दिशा में। गेंद गई 4 रन के लिए। 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 150, 5 विकेट के नुकसान पर। 150 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। एक 150 रन तक पहुंच रही अब तक साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स। काफी अच्छी बल्लेबाजी वहां पर, दबाव के समय में अच्छी बल्लेबाजी वहां पर संयम रखते हुए खेला डोमिनिक फर्नांडिस ने। अब तक 38 रन बनाकर खेल रहे हैं 18 गेंदों में, और 21 गेंदों में 34 रन बनाए हैं राजेंद्र डंगनवर ने। तो अच्छी बल्लेबाजी वहां पर राजेंद्र और डोमिनिक के बीच चलती हुई। 5 विकेट चटकाने के बाद ये जोड़ी वहां पर सरदर्द का कारण बनी हुई है विश्रुत स्ट्राइकर्स के लिए। अब स्थिति ऐसी है 10 गेंदों में 16 रनों की जरूरत जीत के लिए। क्या बोला कहाँ जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये बॉक्स घेऊनच जा, तिथे द्यायचं ना. तो जीत के लिए 16 रनों की जरूरत है। जीत बचे हुए 10 गेंदों में। 16 रन्स रिक्वायर्ड इन 10 बॉल्स। 10 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। अब तक 2 गेंदों पर 5 रन खर्चे हैं रब्बानी दफेदार ने। तो अभी भी 4 गेंदें शेष है इस ओवर की। 10 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है जीत के लिए। तो पिछली गेंद पर फाइन लेग की दिशा में चौका बटोरा था वहां पर डोमिनिक ने। शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी ऑन दी पैड्स, उस गेंद को टर्न किया था फाइन लेग की दिशा में। तो 150 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद इस मरतबा अंदर खेला, गेंद को कवर की दिशा में। स्वीपर कवर के खिलाड़ी आकाश असल करने गेंद को रोका वहां पर बाउंड्री लाइन के अंदर। अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन बना, तीसरे की कोशिश, 3 रन बने वहां पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अच्छा क्रिकेट वहां पर चलता हुआ साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स और विश्रुत स्ट्राइकर्स के बीच मैच चलता हुआ। तो काफी अच्छा मुकाबला अब तक चल रहा है। 153 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 153 लॉस ऑफ 5 विकेट। 9 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। 9 गेंदे 13 रन बनाने हैं जीत के लिए साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स को। स्ट्राइक पर बायत के बल्लेबाज राजेंद्र।
की भी गेंद स्लैश किया, गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में, खिलाड़ी तैनात है वहां पर। अच्छी फील्डिंग, सुनील सकरी ने गेंद को रोका। 2 रन लेने की कोशिश और थ्रो होता हुआ वहां पर बैटिंग कर रहे थे आकाश असलकर ने गेंद को रोका। एक शॉर्ट रन का इशारा वहां पर, तो जल्दी में होता है वहां पर बल्लेबाजों द्वारा, कुछ जल्दी होती है, दूसरे रनों की कोशिश होती हुई वहां पर, तो शॉर्ट रन हुआ, तो 1 रन बना। स्कोर 1 रन बना है। 154 रन बने अब तक 5 विकेट के नुकसान पर, 154 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। तो 12 रनों की जरूरत बचे हुए 8 गेंदों में। अच्छी गेंद इस मरतबा, पैड से टकराने के बाद गेंद गई वहां पर, पॉइंट के खिलाड़ी ने गेंद को उठाया, लेग बाइस के रूप में 1 रन बना। स्कोर बढ़ता हुआ 155 5 विकेट के नुकसान पर, 155 लॉस ऑफ 5 विकेट्स। पारी का 19वां और चलता हुआ आखिरी गेंद शेष इस ओवर की। 7 गेंदों का खेल शेष है, 11 रन बनाने हैं जीत के लिए। 7 गेंदों में 11 रनों की जरूरत है जीत के लिए साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स को। तो प्रयास जारी है वहां पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच। स्लैश किया इस मर्तबा, स्वीपर कवर की दिशा में गेंद, अच्छी फील्डिंग वहां पर, मनोज पाटिल ने गेंद को रोका। 1 रन बना, स्कोर बढ़ता हुआ 156। तो आखिरी ओवर में 10 रनों की जरूरत जीत के लिए साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स को। तो वहां पर आखिरी ओवर तक रोमांच लेकर आई है ये मैच। 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है जीत के लिए साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स को। 10 रन रिक्वायर्ड इन 6 बॉल्स। 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। देखना है आखिरी ओवर कौन करेगा। इस मैच का हीरो गेंदबाज रहेगा या बल्लेबाज। गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं अंगद राज तलबरी, बायत के गेंदबाज। गेंदबाजी के लिए अब आखिरी ओवर लेकर अंगद राज आते हुए। 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर डोमिनिक, नॉन स्ट्राइक पर है बायत के बल्लेबाज राजेंद्र दंगनवर। तो 156 रन बना रही अब तक साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स 5 विकेट के नुकसान पर। तो मैच दोनों तरफा अभी भी है। आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है जीत के लिए। जल्दी से आने का है। कितना ओवर डाल रहे हैं? 3rd ओवर क्या? अपने कोटे का 30 और पारी का आखिरी ओवर लेकर अंगद राज तलबरी। 2 ओवरों में 13 रन खर्चे हैं और एक सफलता उनके खाते में है। स्ट्राइक पर डोमिनिक 42 रन बनाकर खेल रहे हैं 20 गेंदों में। नॉन स्ट्राइक पर राजेंद्र 35 रन बनाकर खेल रहे हैं। 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है जीत के लिए। और पिच बनाकर खेला है गेंद को, वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद आती हुई रब्बानी दफेदार ने गेंद को उठाया। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 रन बना। स्कोर बढ़ता हुआ 157। तो 5 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है जीत के लिए। राजेंद्र स्ट्राइक पर अब बायत के बल्लेबाज। 157 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी कर रहे हैं अंगद राजा। तो 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर इस तरह से, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड बैंड, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट रखा गया है और शॉर्ट कवर पर रब्बानी दफेदार। इस मर्तबा वहां पर ऑफ से बाहर गेंद, अतिरिक्त में बढ़ोतरी। स्कोर बढ़ता हुआ 158। पहला अतिरिक्त वाइड के रूप में आता हुआ अंगद राज द्वारा पारी के आखिरी ओवर में। तो ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी। स्कोर बढ़ता हुआ 158। 8 रनों की जरूरत है बचे हुए 5 गेंदों में। नहीं पहला आया गेंद सफल हुआ। मैच पकड़ा इंटरेस्टिंग है लास्ट। बाद में ऐसा सफल होगा, बाद में बैट उठाया नहीं। खेला नहीं, खेला नहीं तो भी वो सफल हुआ है। तो फिर से एक बार अंगद राज, फिर से एक बार डिशाइन गेंद वहां पर ऑफ स्टंप से काफी बाहर। अतिरिक्त, दूसरा अतिरिक्त अंगद राज द्वारा होती है वहां पर।
159 रन पड़े हैं 5 विकेट के नुकसान पर। दबाव भरी गेंदबाजी वहां पर चलती हुई अंगद राज द्वारा। स्ट्राइक पर राजेंद्र दंगनवर, तो 2 अतिरिक्त रन खर्च करते हुए अंगद राज अब तक। इस मरतबा फ्लैट दे रहे थे, गेंद को उछाला है मिड विकेट की दिशा में, कोई मौका नहीं, गेंद गई बॉन्ड लेन के बाहर। 6 रन के लिए इस छक्के के सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 165 बराबरी पर पहुंची अब साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स। साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स 165 रन बना रही है 5 विकेट के नुकसान पर। इसको देने का नहीं, लेफ्ट हैंडेड है नहीं, फास्ट डालता तुझे नहीं, फास्ट भी डालने का नहीं, स्पिन के को डालने का नहीं, फास्ट डाल के छोड़ने का। यार कर क्या नहीं फास्ट यार कर डाल, मीडियम फास्ट डालो, फ्लिपर डालने का जी, बीच में टप्पा रखो, फास्ट डालने का नहीं नहीं, लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट हैंडर मुश्किल से है। एक 165 रन बने, तो जीत के लिए 1 रन की जरूरत, बराबरी पर पहुंच चुके हैं अब साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स। 166 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 165 रन जोड़ रही है वहां पर साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स, तो 1 रन दूर अपने जीत के लक्ष्य से साई स्पोर्ट्स। तो 4 गेंदों पर 1 रन की जरूरत है। स्ट्राइक पर राजेंद्र, ये भी स्टेट प्लेयर है ना राजेंद्र। और पिच गेंद थी, खेला गेंद को वहां पर पॉइंट की दिशा में, गेंद गए 4 रन के लिए। वहां पर जीत हासिल की है साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स ने, 5 विकेट से जीत हासिल की है वहां पर। तो काफी अच्छा प्रदर्शन दोनों टीमों द्वारा वहां पर, अच्छा संघर्षपूर्ण मैच रहा, आखिरी ओवर तक काफी अच्छा प्रयास वहां पर, अच्छा प्रदर्शन दोनों टीमों के बीच। आखिरी ओवर में जीत हासिल की वहां पर साई स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स ने, 5 विकेट से मैच जीता। काफी बढ़िया प्रदर्शन
to the sea. Maybe I never say forever into the light. Every time I try to breathe, but you were right and carry me where I've loved and I have died. So I won't hold back, and you should know that what's never good, just have regrets. So I won't go back, oh, when I got me to forget the time I lost, but no regrets. Moonshine back again. So I won't hold back, and you should know that what's never gone, just have regrets. So I won't go back, oh, when I got me to forget the time I lost, but no regret. Won't let me forget. Our scorer also Pramod Jappu and Ravi sir. Welcome sir. Allow it. But please. Well, we have two Ravi students and Ravi Kalmari, Ravi Malcher, along with Pramod Jappu, our commentator, and also the president of Union Gymkhana, Gymkhana. Rahul Naik, losing captain first. Let me finish quickly. I don't want to take much time. We are here. Well, hard luck Rahul, you really had it on. You felt sharp in the end. You began very nicely. And you were short of some 15-20 runs. You could have put up more. It would have been more interesting match. No, I think 165 was a good total. We couldn't defend it. Actually, up to 15th over we were in the game. So after that, Dominic and Rajendra played really well. Hats off to them the way they played, and we should learn from them how to build a partnership. And yeah, we are running still. Let's hope for the best next. No problem. That is always keep learning, and you are learning as said. And
Definitely, if you had won today, you would have disturbed everybody a lot, and you would have also had an outside chance to get into that final four. Yeah, now we are disturbed, but it's okay. It happens in the game. It's a T20 tournament. It's a very short format of the game. It happens, and we have to see that if we lose, we have to take it in a nice way and move on. Well, anyway, you don't get disturbed. We wanted you to disturb others. Nevertheless, you will do that. And hard luck on this game. What would you like to tell you about? You have one more game left, I think, and you will come back. You will definitely prove a point there. Yeah, we have one game to go. Just give it a all. That's what we can do. But you really played well. You all as a team played well. You entertained us a lot. It was wonderful cricket. We enjoyed, especially not with the bat, but your bowling is really coming good. You become from batsman to a bowler. Yeah, with time it changes, but it's good that I'm contributing from the ball, and I would like to contribute from the bat as well. You started well, but you could not get big. You got 2 big sixes, but you just were short. Nevertheless, hard luck today, and all the best for the remaining matches. Yeah, thank you, sir. Thank you very much. That was round night. Now the winning captain, Swapnil Elve. Well, always nice to see him smile big there. He's got a big name also. He knows it why it is. Well, how does it feel, Sasa, to get this win? बहुत अच्छा लग रहा है सर ये विन के बाद. Of course, एक जीत के बाद अभी आप शायद बहुत कंफर्टेबल होंगे और ऊपर 4 हिस्से में मतलब आप अपना पैर जमा रहे हो कि आप उस 4 में है और अदर टीम आपको बहुत नजदीक से देख रही. नहीं सर ऐसे कुछ कंफर्टेबल नहीं है. अभी 2 मैचेस है वो अच्छे से जीतना है सर मैचेस. डेफिनेटली बिकॉज टूर्नामेंट की शुरुआत में जब लोग बात कर रहे थे, सोच रहे थे, देख रहे थे, हमें सुनने को मिलता है नहीं ये टीम शुरुआत अच्छी होती है, स्टार्ट ऊपर अच्छी है, बड़ी नाम है स्वप्निल एल्वे. तो देखा है कि स्वप्निल एल्वे हो या ना हो, आपकी बैक डेप्थ है. तो यश टाइसन ओवर, डोमिनिक फर्नांडिस कम इनसाइड, ऑफ कोर्स दंगन ओवर. सो बहुत चीजें लोग आ रहे हैं. तो इट इज लुकिंग ए वेरी डिफरेंट साई स्पोर्ट्स हुडी टाइगर. इट इज लुकिंग वेरी डिफरेंट. मजा आ रहा है सब करके. सर मजा आ रहा है. सब लोग खुद के ऊपर बिलीव कर रहे हैं तो हम लोग अच्छे से जीत रहे सर. डेफिनेटली एक जीत के साथ अपना पैर आप हमारे क्या कहना चाहते हो अपने लड़कों से? क्योंकि 2 मैच आपके बाकी है तो बहुत एंजॉय करोगे. डेफिनेटली एक पॉइंट तो प्रूव करने में रहेंगे आप. सर कुछ नहीं, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है. जस्ट मोमेंटम जैसा है वैसा चलते रहेंगे. ऑल द बेस्ट. एंड आपके बोर्ड को भी एंटरटेन किया. थोड़ा बहुत डगमगाहट हो रही थी लेकिन यू जस्ट क्रॉस ओवर द लाइन वेरी कंफर्टेबली. कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस विन टुडे. ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग मैचेस इन दिस टूर्नामेंट. शायद आपको लकी कॉइन भी शायद काम आया हो. थैंक यू सर. Anyway, thank you, Swapnil. Now we have to give away plenty of awards. First and foremost for maximum sixes. It goes to none other than hitting 3 sixes. Third on match winning, not good, but Rajendra Danganapur, maximum sixes. I request Ravi sir to give away the maximum sixes. Of course, a very cute chocolate boy there. We've been always telling him he keeps shying a bit. Then we have to decide for the best catch, and I request Pramod Jappe to give the best catch. It was decided by the jury and the commentator panel. Akash Asankar, best catch. One good thing, I really appreciate that everybody being entire. That really helps. We don't know who it goes to because it takes some time. We appreciate that best catch, Akash Asankar. Yes, you can laugh also, Akash, no problem. You played wonderful cricket. Royal Chocolate Boy is coming up. Impact player, and it was decided for that person who bowled 4 overs, gave away 30 runs, picked up 1 wicket, also scored a magnificent 45, remained on the crease. Hit the winning runs also of 25 balls. It is Rajesh Danganawar, impact player. Sorry, Rajendra Danganawar. Well, last but not the least, I will tell you that we have to decide on the man of the match. It was for that person who bowled 4 overs, bowled wonderfully, gave away 38 runs, also picked up 2 wickets, and coming up for the second time I think in the man of the match in this tournament, and also got a magnificent 43 of 21 deliveries. Dominic Fernandez, Dom.
Well, Dom, congratulations. Hang on a bit. How does it feel to put the man of the match for the second time in this tournament? You have had plenty of man of the matches. I know you have also had the player of the tournament, but this one, how does it feel? I keep asking. It's always feels special to get a man of the match here because every time we are getting older and again we are coming back with a stronger intent to play the game and we are getting the man of the match, so it feels really good to get the man of the match again and again. Well said, it really feels, and I was just talking about walking around, we keep talking to people. This is very contradictory for me to say, as you said that you are getting older and older. Nevertheless, even our former captain MSD is also getting older, but he never gives up. So somebody is saying, when Dominic was नहीं जब तक धोनी खेल रहा है तो वो होता है. Somebody was telling me like that. They were comparing with me. I will not compare anybody, but they say like that. So you, as you say, you're getting older and older, like the kids getting older, the wine becoming better and better. You're getting better and better. Yeah, day by day we are working on it to get better and better. And I am also a fan of MS Dhoni, so I follow his all intents in my improvement of the game. Well said and great. And let me tell you that you already got 2 and you will get many more before the completion of this tournament. And you coming back into the track, you and Rangana are playing together, it really helped. It looked so simple in the end. Congratulations and may you get many more. Thank you very much. You really entertained us. Thanks, Dom. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Man of the match, that is Dominic Fernandez. I will also request the impact player to come in for the photograph. 1 minute, 1 minute. Yeah, now we can come. So you can put up a smile there, the impact player and the, look at the camera, and you can put up a smile. Yeah, I know that. Thank you very much. That's all that we have from the presentation that is this evening. The man of the match and the impact player. That's all we have. Thank you all the people. Thank you, Pramod Jappe.